Don't forget to subscribe and press the bell icon to never miss a video from testbook.com. Hello friends, a very good morning to all of you. So guys, I hope your preparation is going well and you have started revising all the subjects for GATE exam. So guys, now the time is high, है ना? And on 14th February, you will have your exam, mechanical people. So definitely civil people also have their exam and I think it's on the first week. So today is 26th December. So you have like almost 40 days with you for your exams. So 40 days for civil people, XC people and 47 days for mechanical people. तो आप सभी लोगों को all the very best. अब बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने सारे सब्जेक्ट्स को रिवाइज करना चालू कर दें. देखो एक्स्ट्रा तभी पढ़ना अगर आप रिवीजन अच्छी कर रहे हो, क्योंकि हमें याद रखना है कि फॉर एवरी सब्जेक्ट देयर मस्ट बी अराउंड 4 रिविजन्स. So first revision must be a written revision. So like we are doing today. Then second, third, fourth, these must be oral revisions. तो वैसे तो मैं हमेशा सजेस्ट करता हूं कि आप जब आपका सब्जेक्ट ऑन गोइंग है, व्हेन द सब्जेक्ट इज ऑन गोइंग, सो व्हाइल द सब्जेक्ट इज गोइंग ऑन यू शुड गिव एटलीस्ट 2 रिविजन्स. सो 1 रिविजन जस्ट आफ्टर द टॉपिक, 1 रिविजन आफ्टर द चैप्टर, है ना? एंड देन देयर शुड बी एडिशनल रिविजन्स आल्सो. तो आप अपना टारगेट बनाइए कि अगर आपने टॉपिक के दौरान, क्लासेस के दौरान रिवाइज किया है तो आप टारगेट बनाइए कि इन दिस 47 days, 45 days I will revise every subject like 2-3 times. ठीक है ना? अच्छा, और ये वाली स्लाइड, हाय दीपांकर, हाउ आर यू? इंडस्ट्रियल रिवाइज चल रहा है. अच्छा पहले तेरे को ये बता, मेरे को तेरा मैन्युफैक्चरिंग का क्या बना? हाउ इज योर मैन्युफैक्चरिंग गोइंग ऑन? आई हैव टोल्ड यू, देख तेरे को बहुत इंपॉर्टेंट है, मैन्युफैक्चरिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है. और ये सुंदर लड़की, ये कोई तेलुगु चैनल है, उसकी मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट की लड़की है, न्यूज फॉर वेदर फोरकास्ट वाली लड़की है. अच्छा फिनिश हो गया, चलो बढ़िया, गुड, वेरी गुड. नाउ गाइज वन स्मॉल इंफॉर्मेशन इज देयर. सो ऑल ऑफ यू नो कि a lot of people have lost their jobs, and in my friend circle also a lot of people who were there in mechanical industries related to automobiles, automation or manufacturing of plastic products. So a lot of people had to come back, like the people who were working in Thailand, Australia and all those countries. So they had to come back because of COVID-19. And right now they are not getting jobs back in those countries because the borders are closed. So even if they are getting offers, they are, as soon as they tell that we are in India, so उनको जॉब रिजेक्ट हो जाता है, समझ रहे हैं ना? बट इंडिया इज अ वेरी गुड प्लेस टू वर्क एंड MSc tool room, so it's a part of Indian government, right? MSc tool room. So MSc tool room is releasing some vacancies for experienced people as engineers, as managers. So you can check some websites and definitely let your friends know. अगर आपके जानकारी में कोई भी known person है जिसको वर्क एक्सपीरियंस है, अच्छा खासा वर्क एक्सपीरियंस है, 4-5 years, and he or she has lost the job because of COVID-19, then you can inform them कि भैया for mechanical people MSc tool rooms are declaring jobs for experienced people. experienced लोगों के लिए बहुत सारा jobs निकल रहा है, हालांकि वैकेंसीज कम है, मगर किसी को भी फायदा हो तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए. चलो ठीक है गाइस, टुडे वी हैव लॉट ऑफ वर्क, सो आई थिंक विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वी शुड फोकस ओनली ऑन द रिवीजन ऑफ द सब्जेक्ट. सो लेट अस स्टार्ट. लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल सी व्हाट इज द एजेंडा फॉर टुडे. सो the very first agenda is to do the revision of the subject, and based on my experience from the class that I had on 22nd, so on 22nd I had a revision session of heat transfer. So based on that class I observed that it would require, if we are writing the short notes also and if we are revising the chapters thoroughly, then it will take around 1.5 hour to 2 hour for every chapter. ठीक है ना? So I will not push things, because if we will try to push things then definitely 1 or 2 points will get missed. So what we will do, we will divide this session into some parts, and that will be based on
the chapters which we have already done over here, like the chapters for which we have done previous year questions, chapters for which we have not done previous year questions, or those chapters which we have not revised at all. So dimensional analysis, I have not done it. Compressible flow, I want to revise it again. Though we have done it, but I want to revise it again. Pumps, we have not done it. So we need to have a session for it. Turbines, we should revise again. क्योंकि काफी सारे students हैं जो थोड़ा सा revision चाहते हैं उसमें, थोड़ा सा more revision चाहते हैं. So what we will do, first of all, let us go through the chapters and accordingly I will tell you what work we are going to do and in what manner we are going to do. So check for yourself. So when we talk of fluid mechanics has a weightage of 8 to 9 marks in mechanical paper, definitely 35 marks in XC paper, and comparatively less weightage if you talk of civil paper, है ना? But it is a very lengthy subject. मतलब इसका जो वेटेज है गेट एग्जाम में उसके मुकाबले ये बहुत लेंदी सब्जेक्ट है. सो इफ यू गो इन एसएससी जेई और आईएएस द वेटेज इज लाइक 15%. सो एसएससी जेई में 15 to 18%, आईएएस पेपर में 15 to 18%. इट हैज अ लॉट ऑफ थिंग्स इन इट, क्योंकि ये इतना बड़ा सब्जेक्ट है कि इस सब्जेक्ट में हर ब्रांच को एक्सप्लेन किया जा सकता है. दिस सब्जेक्ट हैज एप्लीकेशन इन ईच एंड एवरी ब्रांच, वेदर यू टॉक ऑफ बायोलॉजी एंड मेडिसिन, वेदर यू टॉक ऑफ लाइफस्टाइल, वेदर यू टॉक ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, एस्ट्रोफिजिक्स. अब कोई भी बात कर लीजिए, फ्लूइड मैकेनिक्स वहां पे इन्वॉल्व होगा. So we will divide this revision session into parts, and the first major part we will have today. So what is the first chapter of fluid mechanics? Obviously introduction. So in introduction we learn what is the definition of fluid mechanics, what are the important properties that will help us in calculation of problems, है ना? So all those properties we will learn in this chapter. Then in the second chapter, we talk of those problems where the fluid is at rest. So you talk about how to measure pressure. You talk about how to calculate the pressure force on a dam. You talk about how to make a ship float. And then how to make it stable, what should be the layout of a ship or a submarine. So all these discussions you do in this chapter, fluid statics. Hi Bhavin, क्या हाल है बेटा तेरे? So ठीक है. तो भविन अभी मैं आज का एजेंडा बता रहा हूं कि आज हम क्या क्या काम करने वाले हैं, किस तरह से रिवाइज करने वाले हैं और कितना पार्ट करेंगे. सो फ्लूइड स्टैटिक्स, then we talk of fluid kinematics. So in fluid kinematics we know, once you know the velocity vector, a lot of important information can be found out from the velocity vector, like how the fluid is behaving, what is the acceleration in the flow, what is the mean flow velocity, what is the discharge, what is the deformation rate, what is the vorticity, whether the flow is steady, unsteady, what is the density. So all this information comes from velocity vector. So that discussion we will have over here. Acha guys, please do let me know, are you facing a problem of internet? Because my second connection is showing some issues. Please do let me know if there is any buffering issue. एक बार मुझे चेक करके बताइए, कोई buffering issue तो नहीं आ रहा है. So मैं second connection का चेंज कर देता हूं. हाँ, so I hope it's going fine, है ना? It's going fine. ठीक है, चलो ठीक है. Then once you know the velocity vector and from the velocity vector you find out acceleration, you talk about fluid dynamics. So in fluid dynamics we will use the Euler's equation to derive the pressure field. We will use Euler's equation, then integrate it to get the Bernoulli's equation. We will talk about vortex flow, free vortex, forced vortex. We will talk about how to derive Bernoulli's equation from different approaches. One is from integration of Euler's equation and other is for a control volume. फिर वेंचुरी मीटर, ओरिफाइस मीटर, पीटर ट्यूब, इस तरह का जो डिस्कशन होता है वो फ्लूइड डायनेमिक्स में होता है. But in fluid dynamics we take an assumption that the fluid is non-viscous in nature. In this chapter we will assume that fluid is non-viscous in nature. So what if the fluid is viscous in nature? Then you will have to study some extra effects. You will have to study the effects of viscosity. तो आपको boundary layer आ जाएगा, और boundary layer का major discussion जो है I do it in properties of fluid, that is during the viscosity.
Now, once we are through boundary layer, we talk about laminar viscous flow and pipe networks. So in our case, laminar viscous flow and pipe networks is quite easy. और आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जो भी लोग, अगर कोई सिविल वाला स्टूडेंट इस वीडियो को देखता है, yes, this video is useful for civil people also. So in case of civil, this chapter is very important, and in fact the syllabus of this chapter is extra when you talk of civil people. तो civil के बच्चे जो हैं उनको पाइप नेटवर्क्स में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आ सकते हैं, 3 रिजर्वायर सिस्टम तक भी आ सकता है. वो जो टॉपिक्स हैं वो मैकेनिकल के सेमेस्टर सिलेबस में भी होता है, मगर गेट एग्जाम में आज तक कभी क्वेश्चन नहीं आया तो उसको हम स्किप कर देते होते हैं. सो मैं क्या करूंगा, मैं एक मिसलेनियस सेशन रखूंगा, जैसा हीट ट्रांसफर का मैं रखने वाला हूं इस बारी. मैं एक मिसलेनियस सेशन रखूंगा, उसमें पाइप नेटवर्क के जो एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट्स हैं वो बताऊंगा, जिसमें 3 रिजर्वायर सिस्टम भी बताऊंगा. सो वो मैकेनिकल वालों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है वो वीडियो, मगर सिविल वालों के लिए यूजफुल रहेगा. नाउ वंस यू आर डन थ्रू दिस 6th chapter, you should talk about turbulent flow. You must talk about turbulent flow. So आजकल क्या हो रहा है, आजकल गेट एग्जाम में भी धीरे धीरे कहीं ना कहीं द क्वेश्चंस आर लाइक क्वेश्चंस का क्वालिटी डाउन हो गया था पीछे, है ना, क्योंकि क्वेश्चंस रिपीट भी होने लग गए थे सेम कॉन्सेप्ट पे. सो डेफिनेटली गेट पीपल आर आल्सो वर्किंग ऑन इंप्रूविंग द लेवल ऑफ द पेपर. तो कभी कभी वो ट्रिकी क्वेश्चन भी लेके आते हैं, और कभी कभी उन टॉपिक से भी क्वेश्चन पूछते हैं जो टॉपिक ज्यादा पूछे नहीं जाते हैं. सो फॉर मैकेनिकल टर्बुलेंट फ्लो इट विल हार्डली टेक 1 or 2 hours टू डू टर्बुलेंट फ्लो. अगर आप बुक से पढ़ते हैं, खुद से पढ़ते हैं, तो 3-4 घंटे, और टीचर से पढ़ लेते हैं तो 2 घंटे. मतलब in any scenario it is not a very big topic. सिंपल टॉपिक है, फटाफट हो जाएगा, चाहे खुद से पढ़ो चाहे किसी टीचर के साथ पढ़ लो, ठीक है, मगर एक बार देख जरूर लो. मैं आजकल जरूर कहता हूं कि एक बार देख जरूर लो टर्बुलेंट फ्लो को. एंड दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशली फॉर सिविल पीपल, डायमेंशनल एनालिसिस. तो यहां से ना आज हम इतना ही रिवाइज कर पाएंगे, क्योंकि मुझे पता है कि टाइम लग जाएगा, बहुत सारा टाइम लग जाएगा. एक्चुअली येस्टरडे आई वाज प्लानिंग योर क्लास, तो मैंने कहा मैं खुद एक बार सॉल्व करके देखता हूं, मैं खुद एक बार रिटर्न नोट्स बना के देखता हूं, तो मुझे आइडिया लगेगा कि कितना टाइम लग रहा है. तो मेरी स्पीड पे भी काफी टाइम लग रहा था, फ्लूइड स्टैटिक्स में काफी टाइम लगा. सो आई नो कि वी विल बी एबल टू कवर हियर ओनली, एंड फॉर दीज 2 टॉपिक्स I will have a class on 29th of December. तो अगर आपको जरूरत है आप जरूर इस वीडियो को देख लीजिए. मतलब जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, जो मेरे क्रैश कोर्स के स्टूडेंट्स हैं, उनको तो देखना ही है, तभी उनका रिवीजन होगा. मगर अगर बाकी स्टूडेंट्स हैं, उनको यूजफुल लग रहा है, सेशन यूजफुल लग रहा है, और तो वो देख सकते हैं. सो ऑन 29 दिसंबर फ्रॉम 11 o'clock टू लाइक 2:30, ठीक है, और फिर 3 to 5. तो मैं ये सेशन रखूंगा थ्योरी का. सो देयर विल बी अ थ्योरी सेशन ऑफ दीज 2 chapters, and in the night from 9 to 11:30 I will do previous year questions of the same chapters. ठीक है. सो जब हम क्लास कर रहे होंगे तो क्लास के दौरान मैं कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टच नहीं करूंगा, मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन टच करूंगा, विच आर फ्रॉम अदर एग्जाम्स और फ्रॉम बुक्स. मगर रात को हम सेम टॉपिक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखेंगे. सो ऑन 29 दिसंबर वी विल हैव अ सेशन ऑफ टर्बुलेंट फ्लो एंड ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस बिकॉज इट इज अ बिगर चैप्टर. एंड ऑन 30th दिसंबर वी विल हैव अ शॉर्ट सेशन ऑफ टर्बुलेंट फ्लो, एंड इन द नाइट इसमें तो एक शॉर्ट सेशन ही करेंगे, इसके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं वो साथ में ही कंप्लीट कर लेंगे. तो 11 बजे एक सेशन रखेंगे, चैप्टर डिस्कस कर लेंगे और साथ के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे. ठीक है, तो ये मेरा ऑब्जेक्टिव है. अपार्ट फ्रॉम दैट, सो पाइप नेटवर्क्स इज एन एप्लीकेशन ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स, है ना, मगर पाइप नेटवर्क्स के अलावा भी एक एप्लीकेशन है, दैट इज योर टर्बाइंस. नाउ प्लीज नोट, सिविल पीपल इफ दे विल वॉच द वीडियो, इन देयर सिलेबस टर्बाइंस एंड पंप्स दे आर ऑफिशियल पार्ट ऑफ गेट सिलेबस. But in mechanical, only turbine is written in official syllabus, pump is not written in official syllabus.
पंप का कभी कभी क्वेश्चन आता है, मैंने कई बार टीचर से डिस्कस किया है, कोशिश पूछा है कि पंप कराना चाहिए नहीं कराना चाहिए, कोई भी मतलब समझ नहीं आती है कि क्या करें, मगर 2019 में पंप का क्वेश्चन आ गया है ना। सो हम क्या करेंगे, हम टरबाइंस का भी और पंप्स का भी रिवीजन सेशन भी रखेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी रखेंगे। सो 30th को कर रहे हैं ना दिसंबर, 30th दिसंबर, 31st फर्स्ट, सो वी विल हैव a session on 2nd December. So what we will do, 11 to 2:30 and 3 to 5, ठीक है। तो इस टाइम पर हम सारे कॉन्सेप्ट्स गो थ्रू करेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वी विल डू इन द नाइट, ठीक है, 2nd December। एंड सिमिलरली आई विल हैव वन सेशन ऑफ दिस 5th December। तो हम लोग क्या करेंगे, सेशन रख लेंगे और रात को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। बहुत इलैबोरेट नहीं जाऊंगा क्योंकि अगर बहुत इलैबोरेट जाऊंगा तो टाइम ज्यादा चाहिए। सो हम कोशिश करेंगे कि क्विक सेशंस रखें, सारे टॉपिक्स हो जाएं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो जाएं। और उसके बाद द लास्ट चैप्टर दैट इज कंप्रेसिबल फ्लो। आई थिंक कंप्रेसिबल फ्लो का मैंने बहुत अच्छे से वीडियो बनाया है, मुझे मतलब काफी टीचर्स का भी रिस्पॉन्स मिला उन वीडियोस पे। तो कंप्रेसिबल फ्लो अगर आपको इलैबोरेट मैनर में करना है, जिसके लिए अभी आपके पास टाइम नहीं है, वो आप बाद में देखना। तो आप जो कंप्रेसिबल फ्लो की वीडियोस बनाई हैं 16 घंटे की, वो आप देख सकते हो। अदरवाइज वी विल हैव अ सेशन ऑन 7th December, अगेन सेम मैनर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस, we will revise the chapter, we will do practice question and then previous year question, not from GATE but from ISRO and IES, क्योंकि ISRO और IES में पूछा जाता है, पहले GATE में नहीं पूछा जाता था। GATE के स्टार्टिंग ईयर्स में पूछा भी गया है तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत कम रहेगा। सो हम ये डिस्कशन करेंगे, ठीक है। सो दिस इज द शेड्यूल फॉर फ्लूइड मैकेनिक्स रिवीजन सेशन। तो अगर आपको सही लगे आप जरूर फॉलो कर सकते हैं और कोई भी डाउट हो तो मेरे को पूछ सकते हो। तो आपको पता ही है मेरा कॉन्टैक्ट नंबर रहता ही है सभी के पास, और यहां भी कमेंट करके भी पूछ सकते हो। यहां फिर अगर आपने वीडियो देखा, आपको कोई डाउट हुआ तो आप अपने टीचर से भी पूछ सकते हो, ठीक है ना। चलो फिर गाइस स्टार्ट करते हैं। सो लेट मी चेक कौन कौन आ गया है। हाय अनीश, हाउ आर यू, नाइस टू सी यू एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। डेट रिटन बाय यू, अच्छा सॉरी, अब मैं दिसंबर में चल रहा हूँ, मेरे साथ यही प्रॉब्लम है, पता है मेरे को डेट्स वेट्स कुछ भी याद नहीं रहती। सो मेरे को जो घर पे जैसे आंटी आते हैं खाना बनाने तो वो पूछते कि नहीं, पता नहीं कोई पूछ रहा था कि कल क्या खाना खाया, तो मुझे याद नहीं था कि कल क्या खाना खाया, मुझे नहीं ध्यान रहता डेट्स वेट्स, ठीक है। सो हाय अजय, अ वेरी गुड मॉर्निंग। भविन गुड मॉर्निंग। दीपांकर, अनीश, चलो ठीक है गाइस, अब टाइम वेस्ट नहीं करते, अब स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस स्टार्ट। सो एजेंडा क्या है, एजेंडा है बहुत फेयर शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। वी हैव टू मेक वेरी फेयर शॉर्ट नोट्स ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स, राइट। नाउ दीज शॉर्ट नोट्स, so this will be your written practice, है ना। But I will recommend that once this written practice is over, no need to write again. Now revise orally. So like maybe around 14th or 15th January, you can revise. You can spend 6-7 hours and you can revise the entire subject. Believe me, if you have short notes, then the first revision will take like 7 to 8 hours max. उससे ज्यादा आपका टाइम नहीं लगेगा। And one revision you have in like 31st of January. तो आप देखना आपका बहुत बढ़िया काम हो जाएगा। So we will start with the very first subject. Hello Shubham, how are you? A very good morning. Shubham, I hope ब्रेकफास्ट वगैरह किया है, ठीक है। जो लोग भी वीडियो अटेंड कर रहे हैं, आई होप ब्रेकफास्ट किया है और साथ में एक बिस्किट का पैकेट रख लो। ऐसा ना हो कि बिस्किट ही खाते रहो, पढ़ाई पे ध्यान देना, ठीक है। So guys, introduction. So very first part is introduction. So who is going to tell us what do you study in fluid mechanics? Who is going to tell us what do you study in fluid mechanics? Please be quick. जल्दी से बताइए fluid mechanics में क्या study करते हैं? Please be quick. Please be fast. What do you study in fluid mechanics? What do you study in fluid mechanics? फ्लूइड मैकेनिक्स में क्या स्टडी करते हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स में क्या स्टडी करते हैं। और ऐसे ही लिखते जाना है, मेरे साथ इसी फॉर्म में लिखते जाना है। तो जब भी यहाँ पे 3 एरोज होंगे, तो आपको ध्यान रखना है 3 एरोज मीन्स चैप्टर नेम, 2 एरो मीन्स टॉपिक एंड 1 एरो मीन्स पॉइंट इनसाइड द टॉपिक। सो वी विल गो इन दिस मैनर।
Definition of subject, study of behavior of fluid. Very good. So we should remember. So in short form, you can write like this. When we talk of mechanics means when you apply force on a substance, how the substance will move or deform. So we talk of forces, motion and deformation, right? And since we will apply the force on fluid, therefore we will study the motion and deformation of fluid. So in simple terms, Bhavin, bilkul correct. Shubham, bilkul correct. So behavior of fluid when force is applied on it. And there are two behaviors. One is motion and other one is deformation. In fact, we can talk in other terms also. If I deform this body, internal forces will be induced. If I move this body, friction forces will be produced. So you can also say when a body moves or deforms, what are the forces induced? है ना? Then whenever we study this, so I always say definitely from mechanics you know all these things, but it would be good to have a revision of it. So I always say there are so many forces, and forces can be called as gravitational force, electric force and so on. But what we will do, friction, normal reaction. But what we will do, we will classify the forces in two types. So what are those types? हम फ्लूइड मैकेनिक्स में दो तरह से फोर्सेस को क्लासिफाई करते हैं. जल्दी से, क्विकली से कौन बताएगा कौन कौन सी वो दो फोर्सेस हैं? वी क्लासिफाई द फोर्सेस इनटू टू टाइप्स. So what are those forces? What are those types? जल्दी से बताइए, प्लीज बी फास्ट. What are those types? Please be fast. देखिए आज बहुत सारा काम है, मैं आपको बता रहा हूं, अगर ढंग से चलेंगे तो इंट्रोडक्शन चैप्टर में ही 2 घंटे लग जाएंगे रिवाइज करते करते. 2-2.5 घंटे से ज्यादा ही लगेगा इनफैक्ट, क्योंकि आई विल ऑल्सो इनकॉर्पोरेट बाउंड्री लेयर इन द विस्कोसिटी, और फ्लूइड स्टैटिक्स में भी 2-2.5 घंटे लगेगा, तो टाइम लगेगा आज. ओके, सो आई थिंक बॉडी फोर्स एंड सरफेस फोर्स कैसे क्लासिफाई करते हैं? यू क्लासिफाई इट एज बॉडी फोर्सेस एंड सरफेस फोर्सेस. सो द क्लासिक एग्जांपल, वेरी क्लासिक एग्जांपल. सो व्हाट we have a ground, and on the ground there is a block which is moving over it, which is sliding over it. So आप लोग क्या बोलेंगे? आप लोग बोलेंगे कि there will be a weight of the block and the ground will apply normal reaction on the bottom surface of the block, and there will be a friction force on the bottom of the block. When we talk of weight, जब हम weight की बात करते हैं, so जब आप weight की बात करते हैं, so we know because of gravitational field, what will happen that every particle of the block will have some weight, है ना? हर particle का एक weight होगा, small w1, small w2, small w3 and so on. So when you add all these weight, when you add all these gravitational forces acting on the particles of the body, you get the total weight. So हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं the weight is distributed among the particles of the body. जो weight है वो सभी पार्टिकल्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूटेड है. सो दिस वेट विल बी कॉल्ड एज बॉडी फोर्स. इस वेट को क्या बोलोगे? बॉडी फोर्स बोलोगे. सो बेसिकली यही होता है कि अगर आप एक ऑब्जेक्ट को ग्रेविटेशनल फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसके हर पार्टिकल पे एक फोर्स लगती है. तो जब सारे पार्टिकल्स की फोर्सेस को ऐड कर देते हैं तो टोटल फोर्स मिल जाता है. सो फोर्स विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड among the entire particles of the body, that will become the body force. And when we talk of friction, who is applying friction? So ground is applying friction at the bottom surface of the block. So ground is applying friction at the bottom surface. तो ये देखो, friction and normal reaction at the bottom surface. So we also know if there is no contact, there will be no normal reaction, there will be no friction force. So first of all, the surface force comes into picture when there is a medium in contact with the body. When two substances are in contact, then they will apply surface forces on one another. So there must be a contact. And obviously, when I talk of normal reaction, it is distributed on this entire surface, है ना? तो normal reaction जो है वो पूरे surface पे distributed है.
So when you talk of body forces, it is distributed in the entire volume. When you talk of surface forces, it is distributed among the surface only. ठीक है ना? Now particularly for surface forces, when you talk of surface forces, so surface forces are distributed over an area. So normal reaction per unit area, that will be called as normal stress, and friction force per unit area, that will be called as frictional stress. तो ये आपके पास बन गया सिग्मा और ये आपके पास बन गया टाउ. So tau is friction force per unit area, that is the distribution of friction force on area, and sigma is the distribution of normal reaction on the area. Now it is very important that force per unit area is the stress. So if it is external force per unit area which we are applying by contact, then external stress, and if it is internal stress, internal force per unit area because of viscosity, because of elasticity, then it will be called as internal stress. तो I hope ये तो सभी को clear ही होगा, है ना? इसमें तो मेरे ख्याल से किसी को doubt नहीं होगा, I hope. Now the next point we know, so when we talk of motion, हम सभी को पता है कि motion is of two types. Motion is of two types. So one motion is translational motion and other motion is rotational motion. Translational motion and rotational motion. So suppose there is an object and this is the coordinate system. So the object is moving on this path, and once the object reaches here, the object looks like this. So what you will say, the initial position of the object is r1 vector, final position of the object is r2 vector. So displacement of the object, that is r2 minus r1 vector. So displacement per unit time, that becomes the velocity vector. I think it's very easy, right? So this is called as translational velocity. What it is called? Translational velocity. So when the center of mass of the object moves from one position to the other. But if you do not consider the motion of the object and you only observe the orientation, initial orientation of the object was this. After some time, the orientation is this. So there is a change in orientation. So there is some angular motion. So angular motion will be described by omega vector, है ना? So there are two velocities. One is translational velocity and the other one is angular velocity. तो किसी भी object के दो velocity होते हैं, एक translational velocity और एक angular velocity. ये हमें सभी को पता ही है ना? So no need to keep this fair. Now when we talk of deformation, now deformation is very important. Deformation is actually very important, बहुत ज़्यादा important है, क्योंकि deformation यानी कि volumetric strain, you use this term in bulk modulus. Deformation यानी कि shear strain, you use this term in Newton's law of viscosity. And deformation like linear strain, shear strain, we will find out the formulas of deformation of fluid in fluid kinematics. तो फ्लूइड की वेलोसिटी से ना आपको फ्लूइड के डिफॉर्मेशन रेट्स भी पता लग जाते हैं, डेल यू बाय डेल एक्स, डेल वी बाय डेल वाई, अगर आप लोगों को याद हो, है ना? सो आप क्या कहते हैं, आप मुझे हमेशा सिखाते हैं, यू गाइज ऑलवेज टेल मी कि सर लेट अस सपोज देयर इज अ सिलेंडर and the cylinder will have a radius, the cylinder will have a diameter. So when I will apply a tensile load, there will be an increase in length of the cylinder, there will be an increase in length of the cylinder. So what will happen? So let me do one thing, let me explain the cylinder by a Cartesian coordinate system. So there will be an x direction and there will be a y direction, there will be a z direction. So you guys always tell me, you say, sir, because of deformation, because of external load, there is a change in length. So we will define a linear strain along x direction. Now what is the length of the body? What is the dimension of the body along x? It is L. So you will say linear strain along x is equal to change in L divided by initial value of L. Similarly you will say linear strain in y direction. So what is the dimension of body along y direction? So diameter, that is the diameter. So you guys always tell me, sir, this becomes the change in diameter upon initial diameter, and similarly epsilon z is equal to change in diameter upon initial diameter. Now guys, who will tell us what is the volumetric strain of the body? Who will tell us what is the volumetric strain of the body? जल्दी से बताइए, शुभम, भविन, अजय, दीपांकर, जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं, please be quick.
प्लीज बी क्विक. वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कैसे लिखते हो? सॉलिड मैकेनिक्स में, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स में भी पढ़ा है. वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कैसे लिखते हैं किसी भी बॉडी का? जल्दी से बताइएगा. वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कैसे लिखते हैं बॉडी का? जल्दी से बताइएगा. सो मेरा मेजर एम यही है कि जैसे हम क्लास में पढ़ते हैं, तो क्लास में तो हम जब प्रॉपर कोर्स करते हैं तो वीडियोस भी होती हैं, इमेजेस भी होती हैं. सो मगर क्या कहते हैं, अभी चाहे आज एक रिवीजन सेशन है, मगर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, उन्हें हम मिस आउट नहीं करेंगे. हाँ शुभम, दैट इज ऑल्सो फाइन बेटा. बट शुभम चेक बेटा. सो व्हेन वी से वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज द सम ऑफ ऑल द लीनियर स्ट्रेन्स. वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज द सम ऑफ ऑल लीनियर स्ट्रेन्स. एप्सिलम एक्स प्लस एप्सिलम वाई प्लस एप्सिलम जेड. यही इक्वेशन आपको कंटिन्यूटी इक्वेशन भी देती है इन फ्लूइड मैकेनिक्स. This will also give you continuity equation in fluid mechanics. So we will see how. ठीक है? Now, so these are the important terms. So force, motion and deformation. So these are three important terms in the definition of fluid mechanics. But in the definition of fluid mechanics, there is one more important term, that is fluid. There is one more important term, that is fluid. है ना? Now the question is, how do you differentiate a solid from fluid? आप solid और fluid के बीच में कैसे differentiation करते हैं? How to differentiate between solid and fluid? कैसे करते हैं? कौन बताएगा आंसर? Definitely आप लोग बोल सकते हैं molecular packing. So solids के केस में molecules बहुत close होते हैं, forces बहुत strong होती हैं. Fluids के केस में molecules का distance comparatively large होता है, तो forces weak होती हैं. Shape fix है, शेप फ्लेक्सिबल है, वॉल्यूम फिक्स है ना, नॉन या फिर चेंजेबल है. वो सब डिफरेंसेस तो हैं ही, मगर उसके अलावा हम इंजीनियर्स हैं, इंजीनियर्स फोर्सेस में डील करते हैं. तो फोर्स के अकॉर्डिंगली कैसे डिफाइन करते हो? हाउ टू डिफरेंशिएट सॉलिड वर्सेस फ्लूइड? हाउ टू डिफरेंशिएट सॉलिड एंड फ्लूइड? प्लीज बी क्विक. पहले भी बताया है, क्लासेस में भी बताया है. अब हम इंजीनियर्स हो गए हैं, हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? आई थिंक वी विल डिफरेंशिएट अकॉर्डिंग टू. हाँ, वेरी गुड भाविन, बहुत बढ़िया. सो शुभम, हाँ, कंप्रेसिबिलिटी के बेसिस पे भी डिफाइन कर सकते हैं. वेरी गुड, कंप्रेसिबिलिटी के बेसिस पे भी डिफाइन कर सकते हैं, मगर फिर सॉलिड और लिक्विड दोनों ही इनकम्प्रेसिबल होते हैं, है ना, तो ये प्रॉब्लम आता है. सो गाइस प्लीज नोट, व्हेन वी से फ्लूइड्स, so fluid means liquids and gases. Fluids means liquids and gases. So there are like 23 states of matter now, है ना, but we are majorly focused in solid, liquid and gas because we are basic BTech engineers. Now in here, in our level, if we want to understand the difference, we will apply shear force on the substance. So solid body will show a different deformation and fluid will show a different deformation. How do you differentiate solid and fluid? According to deformation, when shear stress is applied on the substance. According to deformation, when shear stress is applied on the substance. तो इन दो substances का deformation क्या होगा, वही आपको बता देगा कि ये solid substance है या fluid substance है. According to deformation under shear stress. ठीक है ना? Now check guys, please check. So I think we remember from strength of materials that suppose there is a solid body. Let us suppose there is a solid body, and on the solid body will apply a shear load. So shear force means a force which is parallel to the surface. Normal force means a force which is perpendicular to the surface. So friction force is a shear force. So when we apply shear load on the body, I think what will happen, first of all, A, B, C, D. Then according to the value of shear force, or you can say shear stress, according to the value of this force or stress, what will happen? There will be a change in shape of the body. So D point will move to D dash and C point will move to C dash. So A, B, C dash, D dash, this is the new shape of the body.
Now what you will say? You will say AB and AD, they are initially perpendicular. Now the angle between them is 60 degree. This means the perpendicularity reduces by 30 degree. So this reduction in perpendicularity, ये जो perpendicularity में change आया है, इसको आप बोलते हैं shear strain बोलते हैं. क्या बोलते हैं? Shear strain बोलते हैं. And I think this shear strain value depends upon the force. More is the force, more will be the shear strain. Less will be the force, less will be the shear strain. Now what do you say? You say, sir, let us apply a constant force of 100 Newton. We will neither remove this force nor we will increase the force. हम force को हटाएंगे भी नहीं और force को increase भी नहीं करेंगे. So see what will happen. So when I am applying a 100 Newton force, the body will deform a little, but because of deformation, internal stress will come into picture. When internal stress will balance the external stress, equilibrium condition will be achieved and the final shape will become constant. This will be the final shape of the body. So if we are not changing the force value, the final shape of the body is constant. What is the final shape? A, B, C dash, D dash. Yes or no? Am I correct? Am I correct? If the force is constant, the final shape is constant. And if the final shape is constant, final shear strain is also constant. Please जल्दी से बता दीजिए, क्या मैं सही कह रहा हूं? मैं इलास्टिक लिमिट की बात कर रहा हूं, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन की बात नहीं कर रहा. I am only talking about elastic limit. Thank you, Shubham. Thank you. So Shubham is saying yes. So such kind of deformation is called as static deformation. What it is called as? Static deformation. If for a constant value of external force, the final shape of the body after deformation is constant. So basically shear strain value is constant. So that is called as static deformation. ये एक important point है क्योंकि fluid में continuous deformation होता है. So fluids के अंदर क्या होता है? Solids के अंदर क्या होता है? The final shear strain is constant. Final shear strain is not a function of time. Final shear strain is not a function of time. Now we also know that because of deformation, there will be internal stresses in the solid body. But these internal stresses, they are a result of elasticity. They are a result of elasticity. So पहले जब मैं सॉम पढ़ाता होता था तो एक एग्जांपल लेता था कि कैसे मतलब मॉलिक्यूलर फोर्सेस में कैसे चेंजेस आते हैं जिसके कारण ये इलास्टिसिटी, जिसको आप इलास्टिसिटी टर्म लेते हो, मगर आजकल बताता नहीं हूं क्योंकि फ्लूइड मैकेनिक्स बहुत लेंथी सब्जेक्ट है तो वो कॉन्सेप्ट बताने में फिर और टाइम वेस्ट हो जाता है. बट यस, देयर विल बी इंटरनल स्ट्रेसेस एंड दैट इज अ रिजल्ट ऑफ इलास्टिसिटी. एंड ऑल्सो द internal stress which is right now balancing the external stress, this internal stress is always proportional to shear strain. So what you will do, you will remove the proportionality sign and you will put a constant over here. So I generally denote it by G. I have seen many good teachers and books also, sometimes they write it as S also. ठीक है, पर मेरी हैबिट में G चढ़ गया है क्योंकि मैंने जब सबसे पहले सोम पढ़ा था तो आर के राजपूत किताब से पढ़ा था, उसमें G लिखा हुआ था, तो तब से मैं G ही यूज करता हूं. So what is the name of this term? What is the name of this term? Please be fast. Shear stress is equal to dash elastic property into shear strain. Please do let me know. Please do let me know. And this is an important question of SOM also. So there are 4 elastic properties when you talk of strength of materials. Very good. So this will be called as shear modulus. Very good, Rishabh. बहुत बढ़िया. Hi Rishabh, क्या हाल है? बड़े दिनों बाद तेरे से बात हो रही है. So I think this is Rishabh from Jayanagar, Bangalore. So shear modulus, yes, modulus of rigidity or shear modulus, है ना? So please note, there are 4 important elastic properties in strength of materials, not in fluid mechanics. Fluid mechanics में elasticity नाम की कोई चीज नहीं होती है.
at least at our level. So Young's modulus, shear modulus, bulk modulus, this is important for us, and Poisson's ratio. तो ये चार properties होती हैं. If you have any two properties, you can find out remaining two properties, and there are formulas for that. ठीक है? So this is the behavior of solid body when we talk of shear force. But when you talk of fluid, when you apply shear force on a fluid, so I think what we did, we always go to Newton Baba. तो न्यूटन बाबा जो थे वो जादूगर थे. न्यूटन बाबा क्या करते थे, गंगा की किनारे जाते थे, क्या कहते हैं, अलकनंदा और गंगोत्री वगैरह, और वहां से जड़ी बूटियां लेके आते थे और फिर तरह तरह के जादू परफॉर्म करते थे. So what he did, he said, let me do an experiment in the swimming pool. So उन्होंने क्या किया, स्विमिंग पूल में एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया. So there was some height of water in the swimming pool. So let us say the height of water is capital H, and this is a plate. This is a plate which is floating outside water. This is a plate which is floating outside water. So initially the plate is at rest. So what you will observe, you will say, ki sir, initially the plate is at rest. So if I draw the free body diagram, there will be a weight of the body. But this body is in contact with water. So water will apply a surface force. Now for surface force, there are two parts. One is the normal reaction and the other one is the friction force. One is the normal reaction and other one is the friction force. Definitely the body is at rest. So net force along Y must be 0. So what you will say? You will say normal reaction will balance the weight and net force along horizontal must be 0. So you will say friction force is equal to 0. So right now there is no friction force. Right now there is no shear stress. For every action there is equal and opposite reaction. So the same forces will act on surface of water also, because water is applying this force. तो पानी ने जितना force plate पे लगाया उतना force पानी पे भी लगेगा. So water is applying only normal reaction because friction is 0. So on the surface of water there is only normal stress, and definitely this is a compressive stress. Yes, you guys are correct, this is a compressive stress. Now what Newton did? So Newton started moving the plate with a constant force. So initially the plate was at rest, and between the solid and the fluid there was no shear stress. This we have predicted from free body diagram of the body. This we have predicted from free body diagram of the body. Now what Newton did, so this was purely an experiment. This was not mathematics, this was experiment. Now what Newton did, he started pushing the plate with a constant force. He started pushing the plate with a constant force and he made a lot of observations from there. बहुत सारा observations देखा उन्होंने इससे, ठीक है ना. So उन्होंने पहला observation क्या किया, उन्होंने देखा, if I move the plate with a constant force, initially there will be some acceleration in the plate, but after some time the velocity of the plate will become constant. कुछ समय बाद plate की velocity constant हो जाती है. Guys, so if the velocity of the plate is constant, what is the acceleration of the plate? अगर plate का velocity constant है, तो acceleration of the plate कितना होगा? Please be fast. Please do let me know. Please be fast. Please do let me know. न्यूटन ने बोला, initially the plate is at rest. So net force on the plate is 0. So right now the net force on the plate is 0. So let me add one more force. So when I will add one more force, the plate will start accelerating. But he observed that after some acceleration, the velocity became constant, and Bhavin, Rishabh and Shubham, all of them are correct. So they are saying once the velocity is constant, acceleration of the plate is 0. Now right now, let us draw the free body diagram again. So let me draw the free body diagram of the plate again. So again what you will say? You will say the plate will have some weight. You will say on the plate there will be some normal reaction. Who will apply this normal reaction? Water will apply this normal reaction. On the plate there will be a friction force. Who will apply the friction force? Water will apply the friction force. And on the plate we are also applying a force, capital F.
So based on free body diagram, the net force is equal to 0 because velocity of the plate is constant. So we will have a condition weight is equal to normal reaction and force applied by us is equal to friction force. But for every action there is equal and opposite reaction. So who is applying the normal reaction? Water is applying the normal reaction. So the same forces will act on water surface also. So on the water surface there will be a normal reaction as well as there will be a friction force. So there will be a normal stress as well as there will be a shear stress. So from this we have an observation. What is the observation? Observation ये है कि जब भी एक solid body and adjacent fluid in contact, when a solid body, solid surface and adjacent fluid in contact, they have a relative motion between them, there will be a shear force. So when water moves in the irrigation channel or in a pipe, so on the surface of the pipe, on the surface of irrigation channel, there is a shear stress. When a ship moves in water, submarine moves in water, or a jet or fighter jet or car moves in air, so solid surface of the body and the fluid have relative motion. So there will be a friction force will be there between them. There will be a shear stress between them. So ये हमारा पहला observation था कि अगर आपको fluid में shear force लगाना है तो बहुत आसान है. Let a solid surface and surrounding fluid have a relative motion. There will be a friction force. ठीक है ना? So आप सीधा बोलेंगे, आप सीधा लिखेंगे, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन लिखेंगे, when a fluid mass and adjacent solid surface in contact, adjacent solid surface in contact, they have relative motion, comma, friction force, that is shear force develops between them. Friction force, that is shear force develops between them. अच्छा गाइस, एक चीज और है. मैंने वो जो किया था ना, हीट ट्रांसफर का सेशन किया था, तो उसमें मेरी एक ऑब्जर्वेशन थी. तो एक ऑब्जर्वेशन ये भी थी मेरी कि ना मैं एक पॉइंट मिस आउट कर दिया. हमने कॉन्सेप्ट तो सारे रिवाइज किए, मगर ना हम ये रिवाइज करना भूल गए कि किस किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं. तो आज का मेरा एजेंडा ये भी है कि जैसे जैसे हम टॉपिक्स करते जाएंगे ना, एक ओरल डिस्कशन हम टाइप्स ऑफ क्वेश्चन भी करेंगे कि किस किस टाइप का क्वेश्चन बनता जाता है. तो हर टॉपिक के साथ किस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है ये हमें जरूर देखना है. सॉल्व करके नहीं देखेंगे, बस एक ओरल डिस्कशन की ऐसा ऐसा क्वेश्चन होता है. ठीक है. और डेफिनेटली आप लोग पुराना वीडियोस देख सकते हैं या बुक से रेफर कर सकते हैं. तो मैं आपको बुक्स वगैरह भी बता दूंगा किस टाइप का क्वेश्चन कहां मिलेगा और कहां पे इसका सॉल्व्ड एग्जांपल है. और वीडियोस भी देख सकते हैं, अपने टीचर्स के वीडियोस देख सकते हैं, मेरे वीडियोस देख सकते हैं. ठीक है ना, कवर अप कर सकते हैं उन क्वेश्चंस को. सो relative motion, friction force, that is shear force develops between them. Shear force or stress develops between them. अब हमें ये तो पता लग गया कि फ्लूइड पे शेयर फोर्स कैसे लगाना है. वी गॉट अ पॉइंट दैट हाउ शेयर फोर्स एक्ट्स ऑन अ फ्लूइड, हाउ एक्सटर्नल शेयर स्ट्रेस एक्ट्स ऑन अ फ्लूइड. बट द क्वेश्चन इज व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ दिस शेयर स्ट्रेस. क्वेश्चन क्या है कि इस शेयर स्ट्रेस का इफेक्ट क्या है. नाउ इन ऑर्डर टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ शेयर स्ट्रेस, एंड प्लीज नोट दिस विल गिव यू सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. In order to study the effect of shear stress, so what Newton took colored dye particles, like aniline is there. So aniline is a dye, it is colored in nature. So what he did, he took some particles of colored dye. Now these dye particles, they are like होता ना hydrophobic and hydrophilic. So these particles are hydrophilic. So they stick with the particles of water. So when the particle of water will move, the particle of
the particle of dye will also move. ठीक है ना? So motion of dye particle will actually tell you the motion of water particle. So यहाँ पे उन्होंने क्या किया, यहाँ पे उन्होंने हाइड्रोफिलिक डाई ली, तो उन डाई के पार्टिकल्स जो है पानी के पार्टिकल्स के साथ चिपक जाते हैं, तो वो डाई के पार्टिकल्स की मोशन को ऑब्जर्व कर रहे थे. तो जैसे डाई का पार्टिकल मूव करेगा वैसे ही पानी का पार्टिकल भी मूव करेगा. Now what he did, what he said, he found out that bhaiya, I also know that if I am applying a force of capital F, say for example 100 Newton, and the area of the plate is capital A, so between the plate and the water surface there will be a shear stress. How will I find out the shear stress? Capital F upon A. So I know the value of shear stress. And I can also see what is the value of velocity of the plate. This I can measure because I was moving along the plate. So हमें ये values पता है, हमें shear stress पता है, हमें velocity पता है. Now what he observed that these particles which are in direct contact with the plate. तो क्या observation था? जल्दी से कौन बताएगा क्या observation था? Please be fast. क्या observation था? Please be fast. हाँ भविन बेटा बिल्कुल सही है. जो ये देखो बेटा, ये देख बेटा, कौन आगे मूव कर रहा है? प्लेट आगे मूव कर रही है, तो प्लेट की वेलोसिटी फॉरवर्ड है, तो प्लेट की वेलोसिटी फॉरवर्ड है तो प्लेट पे शेयर स्ट्रेस लगेगा पीछे की तरफ. कौन लगा रहा है ये शेयर स्ट्रेस? पानी लगा रहा है. फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, तो पानी पे शेयर स्ट्रेस लगेगा आगे की तरफ. भविन बेटा प्लीज चेक द एक्सप्लेनेशन. Bhavin, please check the explanation, and who will tell me that there was some observation in this layer of fluid. There was some observation in the bottom layer of the fluid. What is this observation called as? Please be fast. What is this observation called as? जल्दी से बताइए. Please be fast. इस observation को क्या कहते हैं और observation होती क्या है? क्या कहते हैं इस observation को और observation होती क्या है? जल्दी से बताइए. नो स्लिप कंडीशन कहते हैं. अरे आबरा, हाय, वेरी गुड मॉर्निंग. कैसी चल रही है तेरी तैयारी? काफी दिन हो गए तेरे से बात हुए और तूने फोन भी नहीं किया, तो आज देखते हैं. आज तो लेट हो जाएगा शायद, या तो रात को बात करेंगे या कल डिस्कशन करेंगे कि कहां तक पहुंच गए हो. ठीक है, नो स्लिप कंडीशन कहते हैं. वी कॉल इट एज नो स्लिप कंडीशन. वेरी गुड, वेरी नाइस. सो व्हाट ही ऑब्जर्व, ही परफॉर्म द सेम एक्सपेरिमेंट विद वाटर, एयर, kerosene, diesel. He performed the experiment with lot of fluids and with different values of forces. But what he observed, if the upper plate is moving with the speed of 5 meter per second, then this immediate layer of water is also moving with the same speed. So immediate layer of water भी same speed के साथ move कर रही थी. And similarly he observed that the lowermost layer which is in direct contact with the ground, so this lowermost layer is also at rest. So he made an observation that different particles are moving with different velocities, and the particles which are in direct contact with the surface, these particles stick with the surface and achieve a no slip condition. So if the surface is at rest, particle is at rest. If the surface is moving, particle is also moving. So this is called as no slip condition. Now what he said, let me do one thing. Let me show a coordinate system. So उन्होंने एक coordinate system लगाया. So there was a coordinate system in his figure. X, Y. ठीक है, in his experiment. And what he said, any point it can be defined by Y distance. What is Y distance? Y is the distance from the bottom. And at this point there will be some particle. The particle will have some velocity. So he said, I will show the velocity of particle with an arrow. So length of the arrow will tell me the value of the velocity, and direction of the arrow will orientation of the arrow will tell me the direction of motion. So like this, when he was talking of the topmost particle was moving with the speed capital VV, or you can say capital U. Let me call it as U. So this particle was moving with the speed of capital U. This particle was moving with the speed of small u, and this particle was at rest.
So like this, at every point, he drew the arrow and he got a figure like this. So this figure is called as velocity profile. इस figure को आप क्या कहते हैं? इस figure को आप velocity profile कहते हैं. क्या बोलते हैं? Velocity profile figure कहते हैं. So velocity profile tells you the velocity at a point, particle velocity at a point. Now obviously this particle which is in direct contact with the bottom surface. So what will be the value of y? I think the value of y is going to be 0. And this particle which is farthest from the surface, so value of y will be capital H. That is the value of height of water. सही है ना? I hope I am writing it correctly. I hope मैं correctly लिख रहा हूँ. So चीजें थोड़ा ज्यादा गड़बड़ ना हो जाए. So I will draw a new figure. थोड़ा सा ज्यादा गड़बड़ ना हो जाए, I will draw a new figure. So let me draw the figure on the right hand side so that till then you guys can also copy. ठीक है? चेक करो, जल्दी से बनाओ और फिर आगे बढ़ते हैं. चेक करो, जल्दी से बनाओ और फिर आगे बढ़ेंगे. So we will draw a velocity profile. We will draw a velocity profile like this. And you will say at a distance y, the value of velocity is small u. You will say at y equal to small 0, velocity is 0, which is nothing but no slip condition, and at y equal to capital H, the velocity is again same as that of surface. This is also no slip condition. तो ये इनकी observation थी. So he found out different particles are moving with different speeds. So velocity of the particle depends upon its distance from the bottom surface. Velocity of the particle depends upon its distance from the bottom surface. So velocity is a function of y. So x component of velocity is a distance of is a function of perpendicular distance from the solid surface. इसी फंक्शन को आप बाउंड्री लेयर कहते हैं. इसी फंक्शन को आप क्या कहते हैं? बाउंड्री लेयर कहते हैं. Yes or no? Please be fast. Please do let me know. Am I correct or not? I think this function is called as boundary layer. This function is called as boundary layer. I hope this is correct. And what are the boundary conditions of this boundary layer? What are the boundary conditions of this function? The boundary conditions are at y equal to 0, velocity equal to 0. At y equal to capital H, velocity is equal to capital U. So these are no slip conditions. ये कौन सी conditions है? No slip conditions है. ठीक है ना? Now this means if the plate will keep on moving, the fluid particles will also keep on moving. जब तक प्लेट मूव करता रहेगा तब तक फ्लूइड पार्टिकल्स भी मूव करते रहेंगे. ठीक है? So if the fluid particles will keep on moving, first of all there will be a continuous deformation in the fluid mass. फ्लूइड मास में क्या आएगा? कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन आएगा. सॉलिड में कैसा डिफॉर्मेशन था? स्टैटिक डिफॉर्मेशन था. मगर यहां पे कैसा डिफॉर्मेशन आएगा? यहां पे कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन आएगा. यू विल आस्क मी, सर व्हाट डू यू मीन बाय कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन? सो आई विल से, आई होप यू कैन ऑब्जर्व, इनिशियली द पार्टिकल्स आर मेकिंग अ परपेंडिकुलर लाइन. पहले जो पार्टिकल्स है वो परपेंडिकुलर लाइन बना रहे हैं. But we also know that the particles are moving with some speed. And this was observed experimentally. So what will happen? Initial angle between them was 90 degree. Initial angle between the two lines was 90 degree. After 1 second maybe the particles will reach here. So 90 degree will decrease. After another 1 second particles will reach here. So 90 degree will decrease further and so on. So when the particles will keep on moving, the shear strain will keep on increasing and shear strain will not be constant, final shape will not be constant. So what you will say? You will say in this particular case, the shear strain is an increasing function of time.
शेयर स्ट्रेन जो है इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ टाइम है। आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे कि सॉलिड सरफेस और फ्लूइड के बीच में जो शेयर स्ट्रेस है वो किसके कारण आता है? वो रिलेटिव मोशन के कारण आता है। तो जब तक सॉलिड सरफेस और फ्लूइड के बीच में रिलेटिव मोशन होगी तब तक शेयर स्ट्रेस दिखाई देगा। इसका मतलब अगर प्लेट मूव करती रहेगी तो शेयर स्ट्रेस होगा और प्लेट स्टॉप कर जाएगी तो शेयर स्ट्रेस नहीं होगा। सो इफ यू वांट टू कीप द शेयर स्ट्रेस कांस्टेंट, योर प्लेट मस्ट कीप ऑन मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। So our plate is keeping on moving with constant velocity, but along the plate the layer will also move. That layer will drag the second layer will drag the third layer. तो जब तक प्लेट मूव करता रहेगा तब तक पार्टिकल्स मूव करते रहेंगे, पार्टिकल्स मूव करते रहेंगे तो शेयर स्ट्रेन की वैल्यू जो है बढ़ती चली जाएगी, तो फाइनल शेप कभी भी कांस्टेंट नहीं होगी। So please do let me know if this is clear or not, if this is correct or not. जल्दी से बताइए। आई थिंक दिस इज फाइन, आई होप दिस इज फाइन। सो वैसा अभी शॉर्ट उस टाइप का तो एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहे हैं जहां पे हम सेम टॉपिक को 1-1.5 घंटा 2 घंटा लगा के पढ़ते हैं, बट आई होप यू रिमेंबर दिस थिंग। नाउ प्लीज चेक, इफ phi is a function of time, then I think we can define a term d phi by dt. I think we can define a term d phi by dt. This term is called as phi dot. This term is called as phi dot. This is called as a rate of shear strain. And this is very important. Rate of shear strain. Rate of shear strain. This is very important. So definitely phi is increasing with time. So phi is not constant. So phi dot will be a non-zero टर्म। phi dot जो है वो नॉन जीरो टर्म आएगा। मगर जब आप स्टैटिक डिफॉर्मेशन की बात करते हैं, व्हेन यू टॉक ऑफ स्टैटिक डिफॉर्मेशन, phi dot इज अ जीरो टर्म। स्टैटिक डिफॉर्मेशन में phi dot जो है जीरो टर्म होता है, ठीक है ना। सो यहां 2 टर्म्स आ रही हैं आपके पास। So the very first term is phi. So phi means shear strain. Phi means shear strain which represents total deformation, that is the final shape. Total deformation that represents total deformation or the final shape or final shape, ठीक है। But when you talk of phi dot, which is a rate of shear strain, it does not mean total deformation. ये total deformation नहीं बताता है, ये बताता है how fast the shape of fluid is changing, how fast the fluid is getting deformed, how fast the fluid is getting deformed, how fast the fluid is getting deformed, ठीक है। Say for example, you apply a shear load. So in the fluid there will be in the solid there will be a deformation. After some deformation, the final shape of the body is constant. Now it is not deforming further. So even though there is a total deformation, but rate of shear strain is 0. चाहे टोटल डिफॉर्मेशन है मगर रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन 0 है। एंड टू एक्सप्लेन दिस मेनी टाइम्स आई टेक एन एग्जांपल। मैं बहुत बार एक एग्जांपल लेता हूं कि मान लीजिए आपके पास एक रेस ट्रैक है। मैं बहुत बार ये एग्जांपल लेता हूं कि मान लीजिए आपके पास एक रेस ट्रैक है एंड यू आर फोकसिंग ऑन दिस मास ऑफ एयर। आप इस मास ऑफ एयर पे फोकस कर रहे हैं। सो व्हाट वी विल डू, वी विल कंसिडर अ फेरारी टू बी अ बॉक्स. So when the Ferrari moves from here to here, what is the initial shape of air mass? This is the initial shape of air mass. This is the final shape of air mass. Okay. Now let us suppose there are 2 cases. In one case, Ferrari takes 5 seconds to cover the distance. But in other case, Mahindra Thar, it takes 20 seconds to cover the distance. So what you will say, in both the cases, this is the initial shape, this is the final shape. So in both the cases, total deformation is same. But first case, the total deformation happened in 5 seconds. So rate of deformation was fast. Deformation was happening fast. So rate of shear strain will be high.
but in the other case, the same deformation took a time period of 20 seconds. So rate of deformation was less. Total deformation was same, but rate of deformation was less. ठीक है ना? So deformation और rate of deformation में अंतर है, ये चीज हमें ध्यान रखनी है. ऐसा हो सकता है कि deformation कम हो, but rate of shear strain high हो, और the deformation is large, but rate of shear strain is less. So we get two things here: rate of shear strain. Now, particularly in our syllabus, we will find out that phi dot is equal to du by dy. Phi dot is equal to du by dy, particularly in our syllabus. So one point we have got, that is fluid deforms continuously, but a solid deforms statically. Second point, in the solid substance there were elastic stresses, but I think I have proved it many times. So in the fluid mass also there will be internal stress, but that internal stress will not be a result of elasticity, but that internal stress will be a result of viscosity, that is a result of friction. So we call them as viscous stresses also. Thirdly, in solid substances tau is proportional to phi, but here it is proportional to phi dot. यहाँ पे किसके proportional है? Phi dot के proportional है. So this will become tau is equal to mu phi dot, or you can say tau is equal to mu du by dy. Tau is equal to mu du by dy. तो बिल्कुल वैसा ही है, बिल्कुल वैसा ही है. So what do you say? Tau is equal to g phi. So what do you say? You say, if you can also write like this, you say, if we deform a body, then because of elasticity, shear stress comes into picture. If there is a rate of deformation in the body, then because of dynamic viscosity, internal stress is developed in the fluid. तो आप इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं. सही बात है? All of you please do let me know. All of you please do let me know. क्या मैं सही कह रहा हूँ? क्या मैं सही कह रहा हूँ? अब ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ये वाला क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि इन फ्लूइड मासेस, मतलब अलग अलग एग्जाम्स में, आईएएस में भी पूछा गया और गेट में भी स्टार्टिंग में पूछा गया है. इन केस ऑफ फ्लूइड मास द shear stress is proportional to shear strain, square of shear strain, rate of shear strain, अंडर रूट ऑफ शेयर स्ट्रेन. तो आप क्या बोलेंगे? रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन बोलेंगे. क्या बोलेंगे? रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन बोलेंगे. ठीक है ना? अच्छा, तो और एक चीज और ध्यान रखनी है गाइस, चेक. So we can write this statement in two forms. One is this and one is this. This term represents internal stress, but this formula now represents external stress. So what will you say? You will say, when we apply external stress, there will be a shear strain in the body. There will be a deformation in the body. But more is the value of shear modulus, less will be the deformation. So this is resistance to deformation. ये क्या है? ये resistance to deformation है. Or you can use the other statement. When the body gets deformed, then because of elasticity, shear stress comes into picture. Internal shear stress comes into picture. Similarly, I will say, when I apply a shear stress, then there is a rate of shear strain in the fluid. More is the value of dynamic viscosity, less is the value of rate of shear strain. So dynamic viscosity is the resistance to rate of shear strain, resistance to how fast the fluid is deforming. ठीक है? Or you can say that when a fluid gets deformed, when there is a rate of shear strain in the fluid, then dynamic viscosity results in internal stresses. तो किसी तरह से भी स्टेटमेंट को इस्तेमाल कर सकते हैं. ठीक है ना? इस चीज को आप रफ में यूज कर लिख लीजिए ताकि आपको याद रहे. प्लीज राइट डाउन दिस इन रफ so that you know when to use the term internal stress, when to use the term external stress. तो मैं इस तरीके से कंफ्यूज नहीं होता हूं. अगर क्वेश्चन में इंटरनल, कहीं पे इंटरनल स्ट्रेस आ रहा है, कहीं पे एक्सटर्नल स्ट्रेस आ रहा है, तो मैं कंफ्यूज नहीं होता हूं. हालांकि अभी तक गेट एग्जाम में या इसरो आईएएस में भी कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं आया जहां पे आपको कंफ्यूजन हो जाए.
मगर कभी एमटेक लेवल में जाएंगे तो वहां पे थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंस हो जाता है इंटरनल टर्म का, एक्सटर्नल टर्म का, खासकर फाइनाइट एलिमेंट मेथड एफईएम जब आप एनालिसिस कर रहे होते हैं तब. ओके, नाउ दिस इज कॉल्ड एज न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी. इसको आप क्या कहते हैं? न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी कहते हैं. ठीक है. सो दीज थ्री आर द मेजर डिफरेंसेस बिटवीन अ सॉलिड एंड अ फ्लूइड. बट देयर इज वन मोर इंपॉर्टेंट डिफरेंस, that is in terms of more stress circle for the substance at rest. तो हम एक डिफरेंस और लिखेंगे, that is in terms of substance at more stress circle for substance at rest. ठीक है ना? तो कौन बताएगा? What is the more stress circle for a solid body at rest? What is the more stress circle for a fluid at rest? कौन बताएगा? Please be fast, please be quick. जल्दी से बताइए, कौन बताएगा? More stress circle for solid at rest, more stress circle for solid at rest, more stress circle for fluid at rest. इसमें एक अच्छा सा क्वेश्चन भी बन सकता है, न्यूमेरिकल भी बन सकता है. फ्लूइड एट रेस्ट, फ्लूइड का पॉइंट होता है. वेरी गुड शुभम, वेरी गुड, वेरी नाइस. सो गाइस चेक व्हाट हैपेंस इज, बाकी लोगों का आंसर. सो शुभम, on which axis? Negative normal axis, positive normal axis, negative shear axis, positive shear axis. Guys, ये जो पॉइंट्स है ना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है. अब इनमें एमएसक्यू क्वेश्चन आ सकता है. एमएसक्यू क्वेश्चन में क्या कर सकते थे? वो एक पॉइंट डाल देते, इन फ्लूइड्स द रेट ऑफ द शेयर स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन, तो वो ऑप्शन करेक्ट है. और दूसरा पॉइंट डाल देते, फॉर फ्लूइड एट रेस्ट द मोर स्ट्रेस सर्कल इज दिस, तो वो ऑप्शन भी करेक्ट हो जाता. तो ये आपके अगर बेसिक्स क्लियर है ना, आपको एमएसक्यू क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं आने वाला. So check, guys, check. It's very easy. So when we talk of solid body, if I take a point over here, let me say the point is capital P. And through the point, I will draw horizontal, vertical, and inclined plane. So I'm not solving this because I have solved it many times and I think you have done it in strength of materials also. Now once you will do the analysis of the stress, you will find out that on the horizontal plane in the solid body, there is a compressive stress, and the shear stress is 0. So normal stress is negative, but the shear stress is 0. This is the condition of horizontal plane. When I talk of vertical plane, you will find out on the vertical plane, normal stress is also 0, shear stress is also 0. But when you will compare inclined plane, you will observe that there is some value of normal stress which is sigma theta, and there is some value of shear stress which is tau theta. So tau theta is not 0. So the stresses are sigma theta and tau theta. Now what is the option from here? What is the conclusion from here? So when you do the analysis, you will say, bhaiya, on one plane normal stress is sigma, on the other plane normal stress is 0, and on the third plane normal stress is sigma theta. So different planes have different values of normal stresses, different planes have different values of shear stresses. So when we talk of a point, at a point, the stress is different at different planes, and at every plane there are two stresses. तो आई होप आपको याद होगा, मैंने इस पे डिस्कशन करता हूं, और अगर किसी को नहीं भी पता है तो वो मुझसे जरूर पूछ ले, मैं उसको ब्रेक में अलग से बता दूंगा. सो दिस टेल्स अस दैट स्ट्रेस इज अ स्केलर, वेक्टर और टेंसर. कौन बताएगा फटाफट? यहां से हमें पता लगता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल एट एवरी प्लेन देयर आर टू स्ट्रेसेस, वन इज नॉर्मल स्ट्रेस एंड द अदर वन इज shear stress, and different planes will have different values of stresses. So this will give us an answer whether the stress is a scalar, vector or tensor.
स्केलर, वेक्टर और टेंसर। इससे एक रीजनिंग और असर्शन का क्वेश्चन बन जाता है। तो कौन बताएगा स्ट्रेस जो है वो स्केलर है, टेंसर वेक्टर है या टेंसर है? सेकंड ऑर्डर टेंसर है। कौन बताएगा? प्लीज बी क्विक, प्लीज बी क्विक। अगर नहीं भी पता है तो घबराना नहीं है, मैं ब्रेक में प्रूव करके बता दूंगा, ठीक है, अलग से प्रूव करके बता दूंगा। बट अभी मैं डिस्कस इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैंने कई बार ये डिस्कशन किया हुआ है। वेरी गुड शुभम, बहुत बढ़िया। सो बेटा इट इज अ टेंसर। ये क्या है? टेंसर है। बिकॉज इफ यू वांट टू राइट डाउन द वैल्यू ऑफ स्ट्रेस you will need two directions, sigma I j. First direction will tell you which plane you are talking about, and second direction will tell you whether you are talking of normal stress or shear stress. So this is a tensor. तो घबराना नहीं है, जिनको नहीं पता है वो नोट कर लें, मगर मैं उनको बाद में एक्सप्लेन जरूर कर दूंगा। सो स्ट्रेस एक टेंसर होता है। सो हम क्या करते हैं, हमें पता है कि फॉर द सॉलिड बॉडी इफ वी टेक अ पॉइंट कैपिटल P, डिफरेंट वैल्यूज ऑफ डिफरेंट प्लेन्स विल हैव डिफरेंट स्ट्रेसेस. So we draw a figure called as Morse stress circle. Now this Morse stress circle, actually this is a single figure which gives us the value of shear stress at any plane. So I will draw a Morse stress circle for a particular point capital P in the solid body. And the Morse stress circle will look like this. ठीक है? सो ये हमने एनालिसिस किया हुआ है। जिनको नहीं पता है वो प्लीज डू कंफर्म करें। अपने टीचर से भी पूछ सकते हैं, मुझसे भी पूछ सकते हैं, फ्रेंड से भी पूछ सकते हैं। जरूर देखें कि ये कैसे आएगा, बिकॉज दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स में भी और फ्लूइड मैकेनिक्स में भी एक क्वेश्चन बनता है। सो दिस इज द मोस्ट स्ट्रेस सर्कल फॉर सॉलिड बॉडी एट रेस्ट. Now you also know, if you want to find out the stresses at plane theta, what you will do, you will draw this angle to theta. Now this will become normal stress and this will become shear stress. ऐसा कुछ करते हैं ना, but अभी हम more stress circle पे छोड़ देते हैं. Now when you talk of fluid at rest, so first of all, to have a fluid at rest, you first of all need to have a container. जब तक आपके पास एक कंटेनर नहीं होगा, आप एक fluid mass को होल्ड करके नहीं रख सकते, because liquid has a tendency to spread in the gravitational field and gases have a tendency to expand. अगर लिक्विड हो तो ग्रेविटेशनल फील्ड में एक्सपैंड वो स्प्रेड करेगा, और अगर गैसेस हो तो गैसेस तो एक्सपैंड करने की कोशिश करती हैं, चाहे ग्रेविटेशनल फील्ड हो या ना हो, है ना. Now what we have a container, and in the container we have a liquid mass maybe. Now what you will say, sir, let us take a point P again, and through the point let us draw horizontal plane also, vertical plane also, and inclined plane also. Okay. Now who will tell us what is the rate of shear strain of this body? Who will tell us what is the rate of shear strain of this body? कौन बताएगा इस फ्लूइड मास का रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन क्या है? इस फ्लूइड मास का रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन क्या है? Who will tell us? जल्दी से बताइए, प्लीज बी क्विक. जल्दी से बताइए, what is the rate of shear strain of this fluid mass? I think the final shape of this body is constant. So rate of shear strain will be 0. Rate of shear strain will be 0. Guys, here because of the weight of the body, there were some stresses, and because of the stresses there were some deformation. So after some deformation, final shape is constant. So deformation is there, deformation is definitely there, but final shape is constant. So phi dot value is equal to 0. Similarly here also deformation is definitely there, but final shape is constant, so phi dot value is equal to 0. तो phi dot value कितना आ गया? 0 आ गया. But according to Newton's law of viscosity, according to the experiments, observations of Newton, tau is directly proportional to phi dot. So tau will be 0. This means on any plane in a fluid mass at rest, the viscous stress is 0, the shear stress is 0. So you will write an important statement. You will write an important statement for fluids. This is one of the difference between fluid and solid. So you will say on any plane in fluid mass at rest, on any plane in fluid mass at rest,
tau is equal to 0. Why? Because phi dot is equal to 0. मगर सॉलिड बॉडी के केस में ऐसा नहीं होता. सॉलिड बॉडी में मे बी हॉरिजॉन्टल में 0 हो जाए, मे बी वर्टिकल में 0 हो जाए, मगर इंक्लाइंड में नॉन 0 होगा. केस टू केस वेरी करता है. मगर फ्लूइड में वो हमेशा 0 होगा अगर phi dot की वैल्यू 0 होगी तो. ठीक है. Now check what will happen. So there is a law, further there is a law which is called as Pascal's law. Now Pascal's law says if on the planes passing through a point shear stress value is 0, then on all the planes normal stress will be equal. On all the planes normal stress will be equal. Pascal law क्या कहता है कि भैया अगर एक पॉइंट से पास करने वाले सभी प्लेन्स का shear stress 0 हो जाए, then in that guys just 1 second, okay, just 1 second, let me have some water. Just a second guys, let me have some water. Not second, 1 minute please. ओके सो पास्कल्स लॉ ये कहता है, एक्चुअली पास्कल्स लॉ को प्रूव भी कर सकते हैं मगर अब आपके पास टाइम नहीं है. सो दोज पीपल हु हैव नॉट डन द डेरिवेशन दे कैन डेफिनेटली स्किप इट. इट्स नॉट रिक्वायर्ड. सो पास्कल्स लॉ सेज if the tau value on all the planes is 0, then the normal stress on all the planes will be same. So in fluids the normal stress is always compressive in nature and we call that normal stress as pressure. So on all the planes the normal stress will be same, whether horizontal, vertical or inclined. तो वो normal stress को हम pressure बोलेंगे because in fluids it is always compressive in nature. हाँ शुभम. Sir, once please confirm that Mohr's circle represents absolute shear stress. Yes, Mohr's circle जो है वो absolute shear stress और absolute pressure ही बताता है. ये बात बिल्कुल सही है. ये बात बिल्कुल सही है. In fact शेयर स्ट्रेस के लिए तो हम कुछ रेफरेंस टर्म यूज करते ही नहीं है शुभम. शेयर स्ट्रेस के लिए तो हम कभी भी कोई रेफरेंस टर्म नहीं यूज करते. सही कह रहा हूं ना, है ना. प्रेशर के लिए तो आप रेफरेंस टर्म यूज भी करते हो. जैसे कई बार हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक रेफरेंस टर्म है, मगर शेयर स्ट्रेस के लिए तो आप कभी रेफरेंस टर्म यूज भी नहीं करते. और दूसरी बात, जब हम मोर स्ट्रेस सर्कल बनाते हैं ना फॉर अ फ्लूइड एट रेस्ट ऑल्सो फॉर अ फ्लूइड, तो वहां पे जो हम नॉर्मल स्ट्रेस लेते हैं वो एब्सोल्यूट प्रेशर ही लेते हैं. ठीक है. ओके नाउ गाइस प्लीज चेक. सो व्हाट विल हैपन? Ultimately what will happen when you will draw the more stress circle of this case? जब आप इस केस का more stress circle बनाएंगे तो आपके पास ये पॉइंट आ जाएगा, because this point will represent the stresses of all the planes. And what are the coordinates of the point? The coordinates of the point are p, 0, जिसमें p is this distance. ये वाला minus p, 0, जिसमें p is this distance. So P represents the pressure at the point. So ये चीज हमें ध्यान रखनी है. This is the most stress circle of fluid at rest. So आज तो मैंने बना के नहीं दिखाया है, मगर मेरे ख्याल से मैंने इस पे डिस्कशन किया हुआ है. What is fluid on YouTube also, so you can definitely check what is fluid. So I have drawn the more stress circle over there. पर इसको याद रखना है, for fluid at rest this is the more stress circle. और इससे रिलेटेड मैं कई बार एक क्वेश्चन पूछता होता हूँ. So I always ask a question that let us suppose there is a cylinder. This was asked in GATE exam also before 2005. I think 2000 or 2004 ऐसा ही कोई एक पेपर था. So there is a cylinder and the cylinder is closed and completely filled with water. Cylinder is rotating about its axis with an RPM of 10. Okay, and there is a point which is at a distance 5 centimeter from the bottom and 10 centimeter from the central axis. At this point the value of pressure is 1 bar maybe, कुछ भी है. ठीक है, प्रेशर की वैल्यू कितनी है? 1 बार दे रखी है. And the container is rotating and the water inside the container is also rotating as a rigid body.
ठीक है, समझ रहे हैं आप? जब कंटेनर अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, देन वाटर इनसाइड द कंटेनर इज ऑल्सो रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस एज अ रिजिड बॉडी. So they will ask you what will be the possible most stress circle. Possible most stress circle क्या बनेगा? Out of these options, which one is the correct most stress circle? Which one is the correct most stress circle? कौन सा most stress circle correct है? जल्दी से बताइए. कौन सा most stress circle correct है? And dynamic viscosity of the fluid is also given. The dynamic viscosity of the fluid is also given 1 centipoise because it is water. Density of water is also given 1000 kg per meter cube. तो कौन बताएगा क्या आंसर आएगा? क्या आंसर आएगा? डायनेमिक विस्कोसिटी इज 1 centipoise, that is 0.001 kg per meter second, and density of water is 1000 kg per meter second. So what will be the answer? What will be the answer? Option C. Very good, Anish. Totally correct, beta. Totally correct. So all of you are saying, sir, water is rotating as a rigid body. If water is rotating as a rigid body, its shape is constant. If the shape is constant, phi dot value will be 0. Once phi dot value will be 0, all the planes will have same normal stress. Then what will happen? Most stress circle will become a point. Most stress circle जो है वो point बन जाएगा. So हमेशा याद रखना है, जब भी phi dot value 0 हो, अगर phi dot value 0 हो तो most stress circle will be option C. Most stress circle will be option C. ठीक है ना? So please do let me know guys, अगर आपको ये concept नहीं पता हो. अभी तो मैंने फटाफट से overview लिया है क्योंकि हमने ये क्लास में किया हुआ है. तो अगर किसी को भी डाउट हो तो आप लोग अपने पॉइंट्स नोट करते जाइए, वो पॉइंट्स नोट करते जाइए जो आपने नहीं पढ़े हुए हैं, तो हम उनको सेपरेटली करके देखेंगे, एक्सप्लेन करके देखेंगे, और अगर टाइम मिला तो बीच बीच में भी करते जाएंगे. ठीक है. नाउ अब इसमें क्वेश्चन कैसे कैसे आ सकते हैं, तो वही कि फ्लूइड में शेयर स्ट्रेस किसके प्रोपोर्शनल होता है, फ्लूइड एट रेस्ट का मोस्ट स्ट्रेस सर्कल क्या बनता है. तो ये दो पॉसिबल अच्छे क्वेश्चन बनते हैं. अच्छे तो नहीं, पहला क्वेश्चन तो बिल्कुल सिंपल है, मगर ये सेकंड क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है. ठीक है. नाउ वंस यू नो द डेफिनेशन ऑफ फ्लूइड, सो वी ऑलवेज डिस्कस व्हाट इज द मेथडोलॉजी ऑफ सॉल्विंग अ प्रॉब्लम. एक बार हमें यह पता लग जाता है कि फ्लूइड मैकेनिक्स है क्या, तो फ्लूइड मैकेनिक्स में हम लोग फ्लूइड्स का मोशन डिफॉर्मेशन स्टडी करेंगे. जब हम उस पर फोर्स लगाएंगे, वी विल स्टडी द मोशन एंड डिफॉर्मेशन ऑफ फ्लूइड व्हेन वी विल अप्लाई द फोर्स, है ना. But in fluid mechanics, there are so many applications. You can design the piping network of a building. So what should be the power of the pump so that I can supply 1 liter per second in the bathroom and 2 liter per second in the kitchen at the 3rd floor. We also want to design a Ferrari car so that the car can move at a speed of 400 km per hour. I also want to design an artificial heart. So what should be the frequency of this क्या कहते हैं, what should be the RPM of the crankshaft, और जो भी है artificial heart जैसा भी बनेगा, so that we can supply proper amount of blood, है ना. तो किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो सकता है, तरह तरह के प्रॉब्लम हो सकते हैं. You can solve a storm, you can understand some natural phenomena like कि if there is a comet, so आपने देखा होगा कि a comet has a tail and there is a particular direction of the comet because of the solar flares which are coming from the sun, so that are treated as fluid only. तो बहुत सारी applications हैं. But whatever problem you want to solve, there is a particular methodology of solving it. There is a methodology of solving it, and we are going to have a look at the methodology which we as a BTech student use. हम वो methodology देखेंगे जो हम as BTech students for GATE exam use करते हैं. ठीक है ना. हाँ, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं शुभम. सो शुभम, भविन, है ना, बहुत तरह तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं. पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप होता है, वो जल्दी जल्दी में मैंने क्रैक बोल दिया, बट क्रैक पिस्टन अरेंजमेंट भी पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप होता है. हालांकि हमारा अरेंजमेंट वैसा नहीं होता. ठीक है. तो अब एक डायफ्राम होता है जो अलग तरीके से एक्सपैंड करता है. अच्छा, इधर वापस आता है. सो क्वेश्चन इज व्हाट इज द मेथडोलॉजी ऑफ सॉल्विंग एनी प्रॉब्लम. सो आई ऑलवेज टेक दिस एग्जांपल दैट लेट अस सपोज देयर इज अ
fighter jet. So why I take this example? Because right now fighter jets are a lot in news in India. So Rafale fighter jet, HAL Tejas, है ना? So like this there is a fighter jet. So we already have a design of this fighter jet. So I want to understand when the fighter jet will move ahead with a speed of 2.2 Mach. Maybe it will move ahead with a speed of 2000 km per hour. So with respect to fighter jet, the air is moving in the backward direction. So how much drag will act on the fighter jet? How much lift will act on the fighter jet? So आप क्या बोलेंगे? आप methodology देखेंगे. What will be the methodology? So guys, you will say कि first of all, let me draw a coordinate system, because we are talking of forces, we are talking of motion, forces, velocity, acceleration. These are vector terms. So we should define a coordinate system. Now the question is to find out lift and drag, which are forces exerted by air on the fighter jet. So forces exerted by surrounding medium on the fighter jet. So definitely surface forces. So if I take any point on the fighter jet, there will be a pressure force, there will be a viscous stress. So because of pressure, there will be a pressure force. Because of viscous stress, there will be a viscous force. So when I add the pressure forces for all the points, in sabhi points pe pressure forces aayega na. So when we add the pressure forces of all the points, we will get the total pressure force. When we add the viscous force for all the points, we will get the total viscous force on the fighter jet. Now the pressure force plus viscous force, that will be the resultant force by air on fighter jet. So let us say this resultant force is this. This is the direction of resultant force. तो अब इस resultant force के दो components आएंगे. One will be the upward force, which will be called as lift, and the second component will be the backward force, which we will call as drag. ठीक है ना? सो मैंने क्या किया, मैंने हर पॉइंट पे प्रेशर फोर्स लिखा, सारे पॉइंट्स की प्रेशर फोर्सेस को ऐड किया, तो टोटल प्रेशर फोर्स ऑन द फाइटर जेट आ गया. हर पॉइंट का विस्कस फोर्स लिखा, सारे पॉइंट्स के विस्कस फोर्स को ऐड किया, तो टोटल विस्कस फोर्स आ गया. नाउ प्रेशर फोर्स वेक्टर प्लस विस्कस फोर्स वेक्टर, दैट विल बी द रिजल्टेंट फोर्स वेक्टर. रिजल्टेंट फोर्स अप्लाइड बाय एयर ऑन फाइटर जेट. इफ आई टेक द कंपोनेंट्स, अपवर्ड कंपोनेंट विल बिकम लिफ्ट एंड वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट विल बिकम ड्रैग. सही बात है ना? ऑल ऑफ यू प्लीज बी फास्ट, जल्दी से बताइए. और भविन का आंसर बिल्कुल सही है. भविन कह रहे हैं कि हार्ट जो होता है वो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप होता है. बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है. हार्ट हो गया, लंग्स हो गया, है ना? हमारी बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं, सो दे ऑलवेज ऑपरेट इन एन अनस्टेडी मैनर. तभी तो हम ब्लड की पल्स को फील कर पाते हैं, है ना? सो गाइस प्लीज डू लेट मी नो, जल्दी से बताइए. इज दैट करेक्ट अप टू हियर? इज दैट करेक्ट अप टू हियर? नाउ आई थिंक so to do this calculation, first of all you must understand what is the value of pressure at a point. You must understand what is the value of shear stress at a point. जब तक आपको प्रेशर की वैल्यू नहीं पता होगी, जब तक shear stress की वैल्यू नहीं पता होगी, तब तक ये इंटीग्रेशन नहीं कर सकते. इंटीग्रेशन नहीं करोगे तो रिजल्टेंट फोर्स नहीं आएगा, रिजल्टेंट फोर्स नहीं आएगा तो कंपोनेंट्स नहीं आएंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ प्रेशर एट अ पॉइंट, देन ओनली यू कैन इंटीग्रेट, देन ओनली यू कैन रिजॉल्व इनटू कंपोनेंट्स. So question is, always the question is, what is the pressure at a point? हमेशा यही क्वेश्चन होता है कि what is the value of pressure at a point? Now check. So how we will do it? So let us suppose that there is a particular point x, y, z in the space. And definitely if the fluid is moving, so what will happen? A particle will come at the point and cross the point. Particle will come at the point, move ahead. Next particle will come to the point and move ahead, है ना? So particles are continuously passing through the point. इस point से जो particles हैं वो continuously pass कर रहे हैं. So at time instant t, there will be some particle which will cross this point. So what we will do, for this particle which is crossing the point,
we will write down the Newton's second law of motion. क्या लिखेंगे इसका? Newton's second law of motion लिखेंगे. So when you will write Newton's second law of motion, when you will write Newton's second law of motion, I think what you will say कि भैया on the particle there will be a resultant pressure force, on the particle there will be a resultant viscous force, the particle will have some weight also, and there will be mass into acceleration also. Yes or no? Am I correct? Yes or no? Am I correct? Please do let me know if I am correct or not. Please do let me know if I am correct or not. Now check. What happens is when you write this equation, actually this equation will be a differential equation. ये equation कैसा आएगा? Differential equation आएगा. So in actual we write the equation like this: pressure force per unit mass plus viscous force per unit mass plus weight per unit mass is equal to acceleration. We'll write the equation in this manner. So when you write this equation for any problem, whether hydrostatic law, whether Pascal's law, whether formula for flow between parallel plates, formula for flow through pipes, अब कैसे भी इस इक्वेशन को लिखिए, दिस इक्वेशन विल हैव सम डेरिवेटिव्स इन देम. यहां पे डेरिवेटिव्स आएंगे, सॉरी थर्ड टर्म में कोई डेरिवेटिव नहीं है, बट ऑल दीज टर्म्स विल हैव लॉट ऑफ डेरिवेटिव्स. Now you will ask me, sir, what are the derivatives? So this term will have del p by del x. This term will have del p by del y. This term will have del p by del z. So three derivatives of pressure. And here you will have del u by del y, del u by del z, del v by del x, del v by del z, del w by del x, del w by del y. So what do you mean by P? P is the pressure at the point. And what do you mean by UVW? So U is the x component of velocity of particle, y component of velocity of particle, z component of velocity of particle. Which particle? Particle which is crossing the point. ठीक है ना? Particle which is crossing the point. And when you talk of acceleration, so after some time you will see that in acceleration there are multiple derivatives. There are 12 derivatives. So del u by del x, del u by del y, del u by del z, del u by del time, del v by del x, del v by del y, del v by del z, del v by del time. So like this, so many derivatives are there. So ये जो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है, जब आप इसको रिजॉल्व कर दोगे इन x डायरेक्शन, y डायरेक्शन एंड z डायरेक्शन, it will not look simple. It will be extremely complicated pair of differential equations, partial differential equations. और अभी तक कोई भी माइकल लाल ऐसा नहीं हुआ है जो उन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस को एनालिटिकली सॉल्व कर दे. सो थिंग्स बिकम वेरी कॉम्प्लिकेटेड. So in our syllabus we are going to talk about simple terms. I mean, in this differential equation, if you are able to solve it, so once you solve this, what you will get? You will get pressure as a function of x. Once you solve this, you will get pressure as a function of y. Once you solve this, you will get pressure as a function of z. तो अगर आप इन differential equations को solve कर देते हैं, तो आपको सारे unknowns पता लग जाते हैं. Once you solve these differential equations, you will get all the unknowns. But the things are not so simple because solving the differential equation is extremely complicated. So in our syllabus, we are going to talk about certain simple cases. Let us observe what are those simple cases. So first of all, we will talk about ideal fluids. कैसे fluid की बात करोगे? Ideal fluid की बात करोगे. So मान लीजिए अगर आप ideal fluid की बात करते हैं. So when you are talking of ideal fluid, viscous force will become zero. If the viscous force will become zero, then in the differential equation you will only have pressure force per unit mass plus weight per unit mass is equal to acceleration term. ठीक है? Now what will happen? So जब इस इक्वेशन को लिखते हैं, अब मैं इस रिवीजन सेशन में तो मैं इसको डिराइव नहीं करके दिखाऊंगा, but when you derive this equation, you will have minus 1 by rho gradient of pressure minus gj cap is equal to acceleration vector. ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन आती है. दिस इज द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन फॉर फ्लूइड एट
for ideal fluids. Newton's second law of motion for ideal fluids, and you call this as Euler's equation. इसको क्या बोलते हैं? Euler's equation बोलते हैं. Guys, please do let me know if I am correct or not. Please do let me know if I am correct or not. और इसमें एक्सेलरेशन भी ऐसे लिखी जाएगी, डेल वी बाय डेल टाइम. एक्सेलरेशन भी ऐसे लिखी जाएगी, डेल वी बाय डेल टाइम वी डॉट ग्रेड ऑफ वी, ऐसे लिखी जाती है. अगर याद हो थोड़ा सा तो ये लोकल एक्सेलरेशन होती है और ये कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन होती है, अगर किसी को याद हो तो. All of you please do let me know. शुभम मेरे ख्याल से कह रहा है यस कह रहा है ना. सो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है. इसको आप बोलते हैं यूलर्स इक्वेशन बोलते हो. क्या बोलते हो? यूलर्स इक्वेशन. कैसे आया? वी हैव रिटन द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन ऑफ अ पार्टिकल, but we have taken as an assumption that the fluid is ideal. So when the fluid is ideal, viscous forces will be zero and this differential equation will get simplified. Now what will happen? This is the vector. So when vector is resolved in components, it will become minus 1 by rho del p by del x. So weight has no component in x direction, horizontal direction. So weight will be 0. So ax. Then minus 1 by rho del p by del y. So y is vertically upwards and weight is vertically downwards. So minus g, weight, equal to ay, and minus 1 by rho del p by del z. So this will be equal to az. So what is this? The x component of resultant pressure force, y component of resultant pressure force, z component of resultant pressure force, obviously per unit mass of the particle. और ये क्या है? weight per unit mass. और ये क्या है? acceleration components हैं. So this is Euler equation only but resolved in components. Euler equation only but resolved in components. Yes or no? Guys, I hope ये याद है. अगर याद नहीं है तो do let me know. वैसे मैंने फ्लूइड डायनेमिक्स में काफी सारा डिस्कशन किया है. मेरे ख्याल से मैंने 8-9 घंटे की क्लासेस ली हैं, शायद उससे भी ज्यादा ऑन यूट्यूब, जिसमें मैंने यूलर्स इक्वेशन डिराइव करके दिखाई है. कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में, स्ट्रीमलाइन कोऑर्डिनेट्स में बर्नौलीज इक्वेशन भी डिराइव किया और इनसे रिलेटेड अलग अलग क्वेश्चंस भी किए हैं. तो अगर नहीं पता होगा ना, घबराना नहीं है, मैं बैठा हूं, मुझसे पूछ सकते हो. ठीक है? ओके. सो दिस इज द मेथोडोलॉजी. ये मेथोडोलॉजी है. अब एक बार आपके पास ये इक्वेशन आ गया एंड वंस यू नो द एक्सेलरेशन, you will say, sir, how acceleration will come into picture? Acceleration will come from here, du by dt. Acceleration will come from here, dv by dt. Acceleration will come from here, dw by dt. So actually, once you know the acceleration, you can put the acceleration in the equation, you will get the pressure value. तो ऐसे हम solve करते हैं. ये हमारी methodology रहती है. And further, if the fluid is at rest, so one simplification is that the fluid is ideal. Further, if the fluid is at rest, अगर fluid rest पर हो, तो fluid अगर rest पर है, तो भैया उस केस में acceleration vector 0 हो जाएगा, viscous force 0 हो जाएगी. Then you will have very simplified equations because you will only have pressure force per unit mass equal to 0, that is minus 1 by rho del p by del x equal to 0, minus 1 by rho del p by del y, minus g equal to 0, and minus 1 by rho del p by del z is equal to 0. ऐसे आपकी इक्वेशन बन जाएगी. एंड आई थिंक दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज हाइड्रोस्टैटिक लॉ. शायद इसी को आप हाइड्रोस्टैटिक लॉ भी कहते हैं. इसको आप क्या कहते हैं? हाइड्रोस्टैटिक लॉ भी कहते हैं. ऑल ऑफ यू प्लीज बताइए, इज दैट करेक्ट और नॉट? प्लीज बताइएगा, is this correct or not, or there is a mistake over here? Please do let me know if this is correct or not, or is there a mistake over here? Check, kindly check. यही आपका हाइड्रोस्टैटिक लॉ है. अच्छा, अब एक चीज और. So guys, even if you are talking of moving fluids, you should know the acceleration. So in real life, what happens is, whenever we create a design. जब भी आप एक डिजाइन बनाते हैं, so for that design we try to understand, we try to observe that how the fluid will move around the object, what will be the velocity of that object, and that experiment is done in wind tunnel.
ठीक है. So in wind tunnel we find out the velocity when a fluid moves around the object. When a fluid moves through the pipe, we found out the velocity by experiments. Now once you know the velocity, dv by dt is acceleration, so you will get the acceleration also. So velocity is observed from experiments. We put the velocity over here, and once we know the velocity we will find out the acceleration, and once you know the acceleration you will find out the pressure also. तो real life में ऐसे किया जाता है. real life में पहले velocity predict की जाती है, velocity से बाकी terms पता लग जाती हैं और pressure भी find out हो जाता है. So ये हमारी एक methodology रहेगी. Whether you are deriving Pascal's law, you are deriving hydrostatic law, you are talking of formula through pipes, you are talking of flow between parallel plates, all the formulas are derived in this manner. ठीक है ना? ओके. अब क्या है कि हम लोग क्या करते हैं, इन मैकेनिक्स देयर आर टू अप्रोचेस टू सॉल्व अ प्रॉब्लम. वन अप्रोच इज Lagrangian approach, one approach is Lagrangian approach, and the other approach is Eulerian approach. Lagrangian versus Eulerian approach. Lagrangian versus Eulerian approach. These are two approaches which are used in any kind of mechanics. Whether you are studying the mechanics of rigid balls, so there is a billiards table and you are playing billiards. So when you will play the striker ball will hit other balls and other balls will also start moving. So the ball will go into the pocket or not, है ना? So this is the analysis of billiards game. So this analysis of a dynamic system means where the objects are moving and forces are acting on them. So analysis of a dynamic system can be done by two methods. One is Lagrangian approach and other one is Eulerian approach. So हम क्या करते होते हैं, हम इसका एनालिसिस करने के लिए एक एग्जांपल लेते होते थे ट्रैफिक फ्लो का. So traffic analysis in a city. So whenever we want to understand this approach, I always tell an example, the analysis of traffic in a city. How will you categorize, how will you classify whether this traffic crossing is a low traffic, medium traffic or heavy traffic or not? So from that example we make out. So when we talk of Lagrangian approach, जब भी हम Lagrangian approach की बात करते हैं, so who will tell me what is Lagrangian approach? Particle study, particle based study और location based study? कौन बताएगा particle based study और location based study? Who will tell me what is Lagrangian approach? Particle study और location based study? कौन बताएगा? शुभम, भविन, जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं, अनीश, please do let me know guys. पार्टिकल स्टडी और लोकेशन बेस्ड स्टडी. पार्टिकल स्टडी, वेरी गुड भविन, बहुत बढ़िया बेटा. सो भविन मेरे ख्याल से हम लोग क्या करते हैं, पार्टिकल बेस्ड स्टडी. वेरी गुड ऋषभ. सो व्हाट वी डू, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आइडेंटिफाई ऑल द पार्टिकल्स. नाउ लेट अस से one of the particles is A. So for the particle what I will do, I will write down the position of particle as a function of time. So basically I will study the path of the particle and I will see how the position of particle is changing with time. So this activity you have to do for all the particles. So obviously if the number of particles is very large, the activity is not possible. But this is the crux of Lagrangian approach. You study the position of particle as it changes with time. Now once you have this, I think the rate of change of position of particle is equal to the velocity of particle. So we will get the velocity of particle, and the rate of change of velocity of particle, that is d square ra by dt, that will become acceleration of the particle. Am I correct? है ना? I think this is what will happen. Now, once you know this, you can find out the velocity of particle, you can find out the acceleration of particle. Now, what I want to observe that there is a turbine. Okay, and there will be an inlet to the turbine. तो turbine का एक inlet भी है, ठीक है? अब मैं ये चेक करना चाहता हूं
कि what is the pressure at inlet of turbine, what is the pressure at outlet of turbine, because this pressure difference will tell me how much will be the power output. Now you know how to do it. First of all, you will say कि भैया at 3 o'clock what is the particle at inlet. Now for this particle you will find out the velocity vector from here. Similarly, you will say what is the particle at outlet. For that particle also you will find out the velocity vector from here. Based on velocity you can find out the pressure at these points, and based on the pressure difference you will find out the work done, power produced. But what will happen? After some time, this particle will move ahead, this particle will move ahead, and a new particle will come at inlet and outlet. अब जो पावर प्रोडक्शन होगी वो C और D पे डिपेंडेंट होगी. आई होप आप लोगों को मेरा एग्जाम्पल समझ आ रहा है. मैं इसको थोड़ा सा इलैबोरेट करता हूं, इसको नोट करने की जरूरत नहीं है. देयर इज नो नीड टू नोट इट डाउन. आई एम जस्ट टेलिंग यू फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग. इसका मतलब क्या है? देखो क्या होता है कि टरबाइन का जो पावर आउटपुट है वो डिपेंड करता है टरबाइन के इनलेट और आउटलेट के प्रेशर डिफरेंस पे. सो मान लेते हैं एग्जैक्टली एट 3 o'clock the particle at inlet point is A, particle at outlet point is B. So first of all you will identify the particle, then you will check the position time function of the particle. From the position time function of particle you will get the acceleration and velocity of particle. From these two terms you will predict the pressure of particle. So you will say the pressure is this, you will say pressure is this, and based on pressure difference you will get power. Now this is the power corresponding to 3 p.m. At 4 p.m. there will be a new set of particles. So particle here will be C, particle here will be D. So you have to do the analysis again. समझ रहे हैं आप? तो हर सेकंड पर जो यहाँ पे पार्टिकल्स है वो चेंज हो जाएंगे. तो हर सेकंड के लिए आपको फ्रेश एनालिसिस करना पड़ेगा. तो ये चीजें जो है बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं, क्योंकि पहले तो आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि 3 बजे यहाँ पे कौन सा पार्टिकल था, फिर उस पार्टिकल का पोजीशन वर्सेस फंक्शन टाइम ग्राफ भी चाहिए, और फिर उससे बाकी इंफॉर्मेशन आएगी, और फिर टाइम के साथ ये पार्टिकल्स अपनी पोजीशन भी चेंज कर देंगे, इन पोजीशंस पे नए पार्टिकल्स आ जाएंगे. तो ये अप्रोच बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है. सो सिंस वी वांट the pressure at inlet of turbine, we directly want pressure at inlet of turbine, we directly want pressure at outlet of turbine. So what we will do, instead of studying the particles we will study our location only. हम particles को study करने की बजाय हम location को ही study करेंगे, क्योंकि हमें pressure at location चाहिए, pressure at inlet of turbine, pressure at outlet of turbine. So Eulerian approach is a location based study. It is a location based study. Lagrangian approach is a particle based study. Guys, I hope confused नहीं हुए, क्योंकि मुझे पता है कि ये चीज जो है बिना एग्जाम्पल के नहीं आ सकती. जब तक हम एक एग्जाम्पल, प्रॉपर एग्जाम्पल डिस्कस ना करें, ये चीज बिना एग्जाम्पल के नहीं आ सकती. मगर क्योंकि अभी हम रिवाइज कर रहे हैं और गेट में उस एग्जाम्पल की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, तो मैं उस पर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता. All of you, please be quick. Please do let me know if this is clear or not. जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए if this is clear or not. ध्यान है सभी को. हाय हिमांशु, यस, पार्टिकल बेस्ड स्टडी बेटा बिल्कुल करेक्ट है. पार्टिकल बेस्ड स्टडी बिल्कुल करेक्ट है. आई थिंक आई एम, अच्छा मेरा स्क्रीन हैंग हो गया है, मेरा स्क्रीन पीछे चल रहा है यहाँ पे. ठीक है, ठीक है. तो मैं अभी उसकी एक्सप्लेनेशन में नहीं जा रहा हूं. अभी आई एम अवॉइडिंग द एक्सप्लेनेशन, अभी आई एम अवॉइडिंग द डीप एक्सप्लेनेशन. बट यू शुड रिमेंबर वन थिंग, Lagrangian approach means particle based study. We find out the position versus time data of every particle and study the data together. Since there will be huge number of particles, there will be huge amount of data to be studied and things will become cumbersome. But we are interested in pressure at inlet of turbine, pressure at outlet of turbine. We are not interested in particles, we are interested in locations.
So we will do a location based study. अब इस location based study को क्या कहते हैं? Eulerian approach कहते हैं. And in this approach, every term is defined in this manner. हर term को इस तरीके से define किया जाता है. Property as a function of position and time. So if you are talking of density, density as a function of position and time. If you are talking of pressure, pressure as a function of position and time. And similarly is the case for velocity components as well. हर चीज को इस तरीके से define किया जाता है. अब इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है, let us suppose this is the space where fluid is moving, and in the space if I will take a point, the point will have some coordinates x, y, z. Now particles are continuously passing through the point. So at time instant t, there will be some particle over here. So we will say density of particle, pressure of particle, velocity of particle. So we will always write like this. We will always write like this. Density at point x, y, z when time is t. Velocity at point x, y, z when time is t. But आपको याद रखना है, velocity कभी point की नहीं होती. Velocity हमेशा उस point पे जो particle है उसके लिए होती है. Even though velocity is defined for a point, but velocity is of the particle at the point. Density is defined at the point, but it is of the particle at the point. Pressure is defined for a point, but it is of the particle at the point. ठीक है, ये चीज हमें ध्यान रखनी है. So ये आपका यूलेरियन अप्रोच रहता है. यूलेरियन अप्रोच में आप हर चीज जो है वो पॉइंट के लिए डिफाइन करते हैं. प्रॉपर्टी वैल्यू एट अ पॉइंट व्हेन टाइम इज टी. मगर क्वेश्चन आता है कि सर, इफ वी आर टॉकिंग ऑफ पॉइंट्स, देन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉइंट, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पॉइंट. सो दैट डेफिनेशन ऑफ पॉइंट कम्स फ्रॉम कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिन्यूम. इट कम्स फ्रॉम कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिन्यूम. सो मैंने कई बार कुछ स्टूडेंट्स को तो मैंने एक वीडियो भी दिखाया है. सो दैट वीडियो इज अवेलेबल ऑन यूट्यूब ऑल्सो, कॉल्ड एज पावर ऑफ 10. और कई बार मैं एक छोटा सा मैथमेटिकल एनालिसिस भी करता हूं in form of an example. So what do you guys tell me? You guys tell me that, sir, let us suppose we are looking at a solid body and our order of view is 10 raised to power minus 10 meters. So we can see objects which are of the size of 1 Armstrong. So if you can see this much size, this means you can see the atoms also. So these are the atoms. These are the atoms. Now let us suppose our point is of the same order. So this will be our first point, this will be our second point, this will be our third point. So when I will draw a graph of density versus x, I will observe that at first point there is an atom, but at the second point there is no atom. At the third point there is an atom, but at the fourth point there is no atom. So density will be a discontinuous function of position. But in our approach, we want to write down density as a continuous function of position and time, pressure as a continuous function of position and time. क्योंकि अगर आपके functions continuous नहीं है तो आप उन functions को solve ही नहीं कर सकते, आप उन functions से कोई information निकाल ही नहीं सकते हैं. So we want functions to be continuous for position and time. So अगर if every point has this much order, the properties will become discontinuous. So what we will do? We will increase the order of the point. So a point will be a block of 1 micrometer cube. So a point will have huge amount of atoms in it. Second point will have huge amount of atoms in it. So what will happen? Density will become continuous function of position. शायद आपको ये एग्जाम्पल याद हो. आई होप आपको ये एग्जाम्पल याद हो. कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिन्यूम में हमने इसको बहुत अच्छे से इलैबोरेट किया था. हमने बोला था कि ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे एटम है तो एटम की डेंसिटी आएगी. वॉइड स्पेस है, कोई डेंसिटी नहीं होगी. नेक्स्ट पॉइंट पे एटम है, डेंसिटी आएगी. वॉइड स्पेस है, कोई डेंसिटी नहीं होगी, है ना. मगर अल्टीमेटली एजेंडा क्या है कि प्रॉपर्टीज मस्ट बी कंटिन्यूअस फंक्शन ऑफ पोजिशन. और उसके लिए पॉइंट का ऑर्डर क्या होता है? पॉइंट का ऑर्डर होता है 1 माइक्रोमीटर का.
So when you define a point on a surface, so it is an area of 1 micrometer square, this much order. And when you define a point inside a room, so point inside a room is a volume of order 1 micrometer cube. So this is the size of point. So जब भी आप यूलेरियन अप्रोच यूज कर रहे हैं, यूलेरियन अप्रोच यू आर डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज एट अ पॉइंट मींस समथिंग ऑफ दिस मच ऑर्डर, इतने ऑर्डर का. अब इससे एक एडवांटेज और होता है, इससे एडवांटेज ये भी होता है दैट यू डू नॉट नीड टू कंसिडर द रैंडम मॉलिक्यूलर मोशन. सो वी आर गोइंग थ्रू मैक्रो लेवल स्टडी एंड नॉट माइक्रो लेवल स्टडी. सो फॉर दैट आई ऑलवेज टेक एन एग्जांपल. मैं हमेशा एक एग्जांपल लेता हूं. मैं कहता हूं अगर पॉइंट का साइज बहुत छोटा है, इट इज लाइक 10 Armstrong, so in 10 Armstrong there will be 10 atoms. 2 atoms will come out, 3 atoms will go outside because of random motion. So density will fluctuate by plus minus 10%. Huge amount of fluctuation because of random motion. But if the size of point is large, it is like 1 micrometer cube. So already there are 10 raised to power 7 molecules, 1 crore molecules. Now 1 lakh molecules come inside, 90,000 molecules go outside. So density is fluctuating by 0.1%, which is negligible. So you can ignore the effects of random thermal motion if the point size is large. So this is concept of continuum. Concept of continuum का मतलब सिर्फ इतना ही है, what should be the size of a point so that we can ignore the molecular effects, that is random thermal motion, and we can consider the properties to be continuous function of positions. Yes or no? Please be fast. ये चीज याद है क्या आप लोगों को? I hope आप लोगों को ये चीज याद हो. इस पे मैं एक वीडियो दिखाता हूं कई बार. सो मैंने अभी लेटेस्ट जो बैच हुआ था उसमें तो नहीं दिखाई थी क्योंकि वो क्रैश कोर्स था, मगर आपको मैं एक वीडियो भी दिखाता होता हूं, पावर ऑफ 10. तो आप ध्यान कर सकते हो, वो पावर ऑफ 10 याद करने की कोशिश करो कि वो वीडियो कहां दिखाया था. कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिन्यूम. सो कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिन्यूम predicts the order of point, predicts the order of size of point, so that molecular effects like random thermal motion can be ignored in the analysis. Random thermal motion can be ignored in the analysis. ठीक है? And properties become so properties means density, pressure, velocity components, temperature, acceleration components, जो भी है, viscosity. Properties become continuous functions of position, continuous function of space and time. Properties become continuous function of space and time. Continuous function of space and time. वैसे तो अगर इसको पॉइंट्स में लिख लेते तो बेटर रहता, ठीक है ना? तो मेरे ख्याल से बेटर होता. अब क्या होता है, यहां पे एक टर्म डिफाइन करते हैं, dimensionless term define करते हैं, that is nuts and number. So in this you define a dimensionless term, that is nuts and number. So every system has a characteristic length, and if the characteristic length, every system has a characteristic length which defines the size of the system, and there is a term called as mean free path. Okay, so what is mean free path? Distance traveled by a molecule to collide with other molecule.
सो रेशियो ऑफ मीन फ्री पाथ टू द कैरेक्टरिस्टिक लेंथ ऑफ द सिस्टम। तो जैसे फ्लो थ्रू पाइप्स की बात करते हैं तो कैरेक्टरिस्टिक लेंथ क्या होती है, डायमीटर ऑफ द पाइप होती है। फ्लो ओवर फ्लैट प्लेट की बात करते हैं तो लेंथ ऑफ द प्लेट इज कैरेक्टरिस्टिक लेंथ। So there is a characteristic length of the system. So अगर mean free path and characteristic length, this ratio that is called as Knudsen number, if this ratio is less than 0.01, then concept of continuum is applicable and your point will be of the order of 1 micrometer cube. अगर आपका नट्सन नंबर 0.01 से कम है तो आप क्या कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिन्यूम एप्लीकेबल हो जाएगा। आप पॉइंट को 1 माइक्रोमीटर क्यूब के ऑर्डर का डिफाइन कर सकते हैं। आप रैंडम थर्मल मोशन को इग्नोर कर पाएंगे और प्रॉपर्टीज जो है वो कंटिन्यूअस फंक्शन ऑफ स्पेस एंड टाइम बन जाएंगी। ठीक है, ये इसका माड़ा मोटा क्रक्स था। तो वैसे तो मैं 1.5 घंटा लगाता होता हूँ इस टॉपिक पे, ऑलमोस्ट 1.5 आवर। सो वी डू सम मैथमेटिकल एग्जांपल्स और उसके बाद हम एक वीडियो देखते हैं तो उससे कंक्लूजन आता है। मगर ये इसका फाइनल क्रक्स है। दिस पेज इज द फाइनल क्रक्स ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिन्यूम। तो कभी कभी कुछ एग्जाम्स में नट्सन नंबर की ये क्रिटिकल वैल्यू पूछी जाती है, कई बार मैच द फॉलोइंग में नट्सन नंबर की डेफिनेशन पूछी जाती है, या फिर कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिन्यूम पूछ भी सकते हैं। तो आप बोल सकते हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिन्यूम सेज that random thermal motion can be ignored and properties can be function of space and time, continuous function of space and time if the order of point is correct. बस इतना। So all of you please be quick, जल्दी से बताइए, please be quick, जल्दी से बताइए, क्या ये क्लियर है, क्या ये क्लियर है? अगर इसका एक्सप्लेनेशन करना है तो फिर हम वीडियो अलग ही करेंगे क्योंकि एक्सप्लेनेशन लेंथी है, इतना जल्दी नहीं होगा। तो हम लोगों ने क्या क्या देखा है अभी तक? हम लोगों ने ये देखा कि बेसिक्स देखे, सब्जेक्ट के बेसिक्स देखे। तो सब्जेक्ट के क्या क्या बेसिक्स हैं? सब्जेक्ट के पहले तो बेसिक्स हैं कि आपको ध्यान रखना है कि हम किसकी बात करने वाले हैं, फोर्स की बात करने वाले हैं, मोशन की बात करने वाले हैं, डिफॉर्मेशन की बात करने वाले हैं। अब जब आप फोर्स, मोशन, डिफॉर्मेशन कर रहे हैं तो हम फ्लूइड मास को स्टडी कर रहे हैं। तो जब एक फ्लूइड मास पे शेयर स्ट्रेस लगाया जाता है तो सॉलिड बॉडी तो स्टैटिक डिफॉर्मेशन शो करती है, मगर फ्लूइड बॉडी जो है वो कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन शो करती है। किसने बताया था? न्यूटन का एक्सपेरिमेंट था। तो न्यूटन को यह भी पता लगा कि जब हम फ्लूइड पे शेयर स्ट्रेस लगाते हैं तो डिफरेंट पार्टिकल्स डिफरेंट वेलोसिटी पे मूव करते हैं और ये बाउंड्री लेयर फॉर्मेशन होता है। न्यूटन को यह भी पता लगा कि जो इंटरनल शेयर स्ट्रेस होते हैं वो नॉन इलास्टिक यानी कि फ्रिक्शनल होते हैं और वो रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन पे डिपेंड करते हैं। और फिर हमने मोर स्ट्रेस सर्कल बनाया फॉर सॉलिड एट रेस्ट एंड फ्लूइड एट रेस्ट। फिर हमने देखा मेथोडोलॉजी क्या है, किसी भी चीज को डिराइव करने की मेथोडोलॉजी क्या है। तो आप एक पार्टिकल लेते हैं, उस पार्टिकल पे आप न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन लगाते हैं, आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन आती है। आप उस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए जैसे वेलोसिटी, जैसे प्रेशर, सारी इंफॉर्मेशन निकल जाएगी। मगर ये डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना इतना आसान खेल नहीं है, ये कंचे खेलने जैसा नहीं है, ये थोड़ा सा टफ है। तो हम क्या करते हैं, हम विंड टनल में एक्सपेरिमेंट्स करते हैं और वहां पे वेलोसिटी वेक्टर निकाल लेते हैं। एक बार वेलोसिटी वेक्टर आ गया तो आपके पास एक्सेलरेशन आ जाएगी, आपके पास विस्कस फोर्स आ जाएगी, तो आप बाकी टर्म्स भी सॉल्व कर पाएंगे। मगर बीटेक लेवल पे चीजें आसान है, बीटेक लेवल पे एक्सपेरिमेंट नहीं परफॉर्म किया जाता, बीटेक लेवल पे मैथमेटिक्स सॉल्व की जाती है। तो हम क्या करते हैं, हम कुछ सिंपल केसेस ले लेते हैं। जैसे हम आइडियल फ्लूइड मान लेते हैं, तो आइडियल फ्लूइड में आपकी इक्वेशन ऐसे आ जाएगी, और अगर फ्लूइड एट रेस्ट हो तो और भी बल्ले बल्ले फ्लूइड एट रेस्ट ऐसे बन जाएगा। ठीक है ना। फिर हमने बोला कि अब हम जो देख रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं, प्रॉपर्टी एट अ पॉइंट। हमें क्या चाहिए, हमें प्रेशर एट अ पॉइंट चाहिए। अगर हमें प्रेशर एट ऑल द पॉइंट्स पता लग गया तो हमें टोटल प्रेशर फोर्स आ जाएगी। अब इसको स्टडी करने के दो अप्रोच होते हैं, एक होता है लैग्रेंजियन अप्रोच, एक होता है यूलेरियन अप्रोच। तो लैग्रेंजियन अप्रोच में क्या होता है, सुबह इस पॉइंट पे कौन सा पार्टिकल था, पहले उसका प्रेशर कैलकुलेट करेंगे, फिर शाम को इस पॉइंट पे कौन सा पार्टिकल था, फिर उसका प्रेशर कैलकुलेट करेंगे। तो आपको इससे पता लगेगा कि एक पॉइंट पे प्रेशर टाइम के साथ कैसे चेंज कर रहा है। मगर इसमें आपको हर पार्टिकल को इंडिविजुअली स्टडी करना पड़ेगा, तो ये लेंथी अप्रोच है। तो हम पार्टिकल्स को स्टडी नहीं करते, हम सीधा यूलेरियन अप्रोच की बात करते हैं। यूलेरियन अप्रोच में हम एक हॉट वायर एनेमोमीटर लगा देते हैं, एक पॉइंट पे कोई भी पार्टिकल यहां से पास करे वो भाड़ में जाए, हमें पार्टिकल की वेलोसिटी पता करनी है बस।
What is the velocity of particle when particle is passing through the point? बस. So हम लोकेशन बेस्ड स्टडी करते हैं और प्रॉपर्टीज को कंटिन्यूअस फंक्शन ऑफ पोजीशन एंड टाइम लिखते हैं. सो कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूम से पता लगता है कि अगर कंटिन्यूअस फंक्शन चाहिए तो पॉइंट का साइज कितना होना चाहिए. ठीक है ना. सो ये इसका कुछ बेसिक्स है और ये थोड़ा सा बोरिंग बेसिक्स है क्योंकि हमारे लेवल पे ये बेसिक्स इतना अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया गया है. एक्चुअली इस बेसिक्स में थोड़ा और डीप जाया जा सकता है. और अगर आप कुछ बुक्स चेक करोगे ना, जैसे मनसून एंड यंग का चौथा चैप्टर देखोगे तो आपको उसमें काफी अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशन मिलेगी. हालांकि लैग्रेंजियन अप्रोच, यूलेरियन अप्रोच वहां भी इतना बढ़िया तरीके से डिफाइन नहीं है, पर ये काफी डीप जाया जा सकता है. अब मेरे ख्याल से 5 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं, 2-3 मिनट का, ज्यादा नहीं. अभी 1:09 हुआ है. सो 2-3 मिनट्स का ब्रेक ले लो और वापिस आ जाओ. हम प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे. सो लंच ब्रेक से पहले हम प्रॉपर्टीज कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं. डेंसिटी, बल्क मॉडुलस, विस्कोसिटी, based on viscosity, boundary layer formation and important terms of boundary layer, and then based on viscosity what are the types of fluid and surface tension. तो ये हम प्रॉपर्टीज इनको कवर अप करने की कोशिश करते हैं. ठीक है ना. सो 2 मिनट का ब्रेक ले लो और कंटिन्यू करेंगे. तब तक ऋषभ, हिमांशु, शुभम, भवेन, जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं प्लीज डू टेल मी अगर कोई डाउट है. वो टॉपिक्स जो आपने नहीं कर रखे उनको नोट डाउन करते जाओ क्योंकि अभी तो मैं रिवीजन क्लास कर रहा हूं तो फास्ट फास्ट चलूंगा, मगर उनको अलग से एक्सप्लेन भी कर सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो 3 बजे तक है. भविन पहला सेशन 3 o'clock तक है, तो 3 o'clock पे लंच लेंगे और फिर 4 बजे दोबारा कंटिन्यू करेंगे. सो मैं आज 4 से 9 बजे तक खींचूंगा क्योंकि मुझे मैं चाहता हूं कि मतलब थोड़ा सा हम बाउंड्री लेयर, लेमिनार, विस्कस फ्लो तक पहुंच जाएं, इसलिए. और पहुंच जाएंगे आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा. बाउंड्री लेयर तक तो पहुंच ही जाएंगे आज. बाउंड्री लेयर और लेमिनार, क्योंकि बाउंड्री लेयर तो अभी डिस्कस हो जाएगी, बहुत सारा बाउंड्री लेयर अभी डिस्कस हो जाएगा. ओके, सो गाइज लेट्स टेक अ ब्रेक ऑफ 1 or 2 minutes. आई विल ऑल्सो हैव सम वाटर और फिर चालू करते हैं, आगे रिवाइज करते हैं. सो गाइज प्लीज ध्यान रखो, अभी ना एक रिवीजन सेशन है तो मैं इसीलिए बहुत इलेबोरेटरी नहीं समझा रहा हूं. मैं सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर अप करता जा रहा हूं ताकि हमारे जो फॉर्मूलाज हैं वो हमारी कॉपीज में नोट हो जाएं और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारी कॉपीज में नोट हो जाएं. हमें याद आ जाए कि कौन कौन सा टाइप ऑफ क्वेश्चन है और उन क्वेश्चंस के सॉल्व करने की आइडिया क्या रहती है. ये मेरा अभी ऑब्जेक्टिव है. ठीक है. आज मेरा ऑब्जेक्टिव समझाना नहीं है, आज मेरा ऑब्जेक्टिव रिवाइज कराना है और एक वो माइंड में एक सेटअप होता है ना जो मिस आउट हो जाता है, धीरे धीरे कम हो जाता है वो सेटअप. आपकी जो कैपेसिटर्स हैं उनकी चार्ज कम हो जाती है, तो उन चार्ज को स्ट्रॉन्ग करना है. चलो फिर मिलते हैं, अभी 2 मिनट में मिलते हैं.
सो गाइस कंटिन्यू करते हैं। जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं, भविन, हिमांशु, जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं, शुभम, एक बार बता दो कि आप लोग वापस आ गए हो। अगर आप लोग वापस आ गए हो तो कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि बोरिंग पार्ट ओवर हो गया। बोरिंग पार्ट ओवर हो गया, अब मजेदार और ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट चलने वाला है। मतलब अब वो पार्ट है जिसमें से हमें क्वेश्चंस आने वाले हैं। अच्छा, गए नहीं, ठीक है, तो भविन तो यहीं पर है। बाकी लोग ऋषभ तो मेरे साथ था, फोन पे था, व्हाट्सएप पे। बाकी लोग वापस आ गए हैं कि नहीं, प्लीज डू लेट मी नो। शुभम, भविन, ऋषभ, अनीश, जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं, प्लीज डू लेट मी नो, क्योंकि अभी का जो पार्ट है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली कुछ बच्चे ऑनलाइन है ना, 5-6 बच्चे ऑनलाइन है, तो ये लोग भी रिप्लाई कर दें तो बढ़िया रहेगा। तो हम लोग कंटिन्यू करेंगे। अब हम थोड़ा सा चलेंगे फास्ट। अब हम थोड़ा सा चलेंगे फास्ट इन द सेंस, क्योंकि ये सारी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज आएंगी और ये आपने पढ़ भी रखी हैं। हमारा मेजर एम रहेगा कि सारे जो पॉइंट्स हैं वो शॉर्ट फॉर्म में लिखते चले जाएं। तो गाइस जल्दी से बताइए कि आप लोग वापस आए हैं या नहीं, क्योंकि फिर मैं स्टार्ट करूंगा, एक एक करके सारी प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। चलो ठीक है भविन, फिर एक काम करते हैं, चालू करते हैं, और जैसे जैसे बच्चे कनेक्ट करेंगे वो देखते जाएंगे। तो वैसे डेंसिटी तो चलो सिंपल ही है, तो डेंसिटी में कोई इतना प्रॉब्लम आएगा भी नहीं। हम सभी को पता है, चालू करते हैं भविन। हम सभी को पता है कि जब हम डेंसिटी की बात करते हैं, डेंसिटी का मतलब है कि अगर आपने एक सब्सटेंस ले लिया जो कि V मीटर क्यूब स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, तो सब्सटेंस का वॉल्यूम कितना है, V मीटर क्यूब, और इस सब्सटेंस का कुछ मास भी होगा। तो आप बोलोगे V मीटर क्यूब का जो मास है वो mkg है। आप क्या बोलोगे, V मीटर क्यूब का जो मास है वो mkg है, तो 1 मीटर क्यूब का जो मास होगा वो m/v होगा। मास पर यूनिट वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब का। अब 1 मीटर क्यूब होता है 1 मीटर बाय 1 मीटर बाय 1 मीटर, ठीक है ना। ये 1 मीटर क्यूब का जो बक्सा है, इसका मास होगा, कहलाएगा डेंसिटी, मास पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज मास ऑफ 1 मीटर क्यूब इज डेंसिटी, है ना। मास ऑफ 1 मीटर क्यूब, मास ऑफ यूनिट वॉल्यूम। आप सभी को पता है कि इसकी जो वैल्यू आती है वो केजी पर मीटर क्यूब में आएगी। किस में आएगी, केजी पर मीटर क्यूब में। तो अगर मैं इसको सीजीएस यूनिट में कन्वर्ट करूंगा तो एक बार चेक कर लेना कहीं मैं गड़बड़ ना कर दूं। तो मेरे ख्याल से केजी को लिखेंगे 1000 ग्राम और मीटर को लिखेंगे 100 सेंटीमीटर, मगर मीटर का क्यूब है तो ये 100 सेंटीमीटर क्यूब बन जाएगा। आई थिंक 1000 by 10⁶, दैट इज 1/1000 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये आपके पास बन जाएगी, सीजीएस यूनिट बन जाएगी। अच्छा, अभी मेरी ऋषभ से बात हो रही थी, तो मैं पहले ही बता दूं कि अगर सिविल का कोई भी स्टूडेंट ये वीडियो देखेगा, सिविल और एक्सी, गाइस ध्यान रखना है कि आज जो भी काम होने वाला है वो सारा कॉमन सिलेबस है। आज तो हमने वैसे 5-6 चैप्टर्स का टारगेट रखा है ना, मगर ये सारा जो सिलेबस है ये कॉमन सिलेबस है, ये आप सबके लिए सेम है। पर जैसे ही हम फ्लो थ्रू पाइप्स में अगर पहुंच जाते हैं, अगर हम पाइप नेटवर्क्स में पहुंच जाते हैं, तो आपका सिलेबस थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। फिर सिविल का सिलेबस ज्यादा है, एक्सी का सिलेबस ज्यादा है, ठीक है ना। आज तो हम वो सिलेबस डिस्कस करेंगे जो कॉमन है, पर नेक्स्ट टाइम जब मैं डायमेंशनल एनालिसिस की क्लास रखूंगा वो भी कॉमन रहेगी, टरबाइन की जो क्लास है वो भी कॉमन, पंप की जो क्लास है वो भी कॉमन। जो बताया ना स्टार्टिंग में कि 29th और 30th को, सेकंड को, और फिर एक डेट और बताई थी, वो कॉमन रहेगा। और लास्ट में एक मिसलेनियस क्लास रखूंगा सिविल के लिए स्पेशली, क्योंकि उसमें मैं कुछ पॉइंट्स एक्स्ट्रा बताने वाला हूं फ्लो थ्रू पाइप से रिलेटेड, ठीक है। पर अगर कोई भी दिक्कत आए तो डू लेट मी नो। अब हमें पता है कि 1/1000, तो आप सीधा क्या बोलेंगे, 1 SI यूनिट इज इक्वल टू 1/1000 CGS यूनिट। तो ये कन्वर्जन फैक्टर एक्चुअली इंपॉर्टेंट है, डेंसिटी में नहीं मगर विस्कोसिटी में इंपॉर्टेंट है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी में इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अच्छा, 27th को कौन सी क्लास है भविन, मैं ना चेक करके बताता हूं, मैं भूल गया हूं। एक्चुअली मेरे पास शेड्यूल है, ये वाला शेड्यूल है, मैं अभी चेक करके बताता हूं। एक बार ये कवर अप कर लेते हैं और चेक कर लेते हैं।
सो ये आपके पास बन गया कन्वर्जन फैक्टर। सो ये क्यों बताया? क्योंकि ये विस्कोसिटी में इंपॉर्टेंट है। अब मास की टर्म क्या है? केजी, जिसकी पावर है 1। डिनोमिनेटर में क्या है? मीटर क्यूब, जिसकी पावर बन जाएगी -3। तो ml -3 T⁻⁴ ये डायमेंशन बन जाती है। गाइस प्लीज ध्यान रखो, डायमेंशन इंपॉर्टेंट है फॉर बकिंघम पाई थ्योरम इन डायमेंशनल एनालिसिस। अगर आपको डायमेंशन लिखना नहीं आता तो आप बकिंघम पाई थ्योरम नहीं लगा पाएंगे, ठीक है ना? ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनकी डेंसिटी हमें याद रखनी चाहिए। सबसे पहला तो हम एयर की डेंसिटी याद रखेंगे एट एसटीपी कंडीशंस। एसटीपी आपको पता होना चाहिए, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। सो रूम टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर। तो ये जो वैल्यू आती है मैं कैसे निकाल सकता हूं? मैं ये वैल्यू निकाल सकता हूं आइडियल गैस इक्वेशन से। कैसे? PV इज इक्वल टू MRT लेके। सो मास बाय वॉल्यूम डेंसिटी होता है, तो P बाय RT इज इक्वल टू डेंसिटी। तो अगर आप यहां पे 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर डालेंगे, टेम्परेचर को 15 डिग्री सेल्सियस यानी 288 केल्विन रखेंगे, और कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट ऑफ एयर वो होता है 287 जूल पर केजी केल्विन। सिविल वालों, आई नो दिस इज एन इक्वेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, मैकेनिकल, मगर ये वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी क्योंकि आप लोग ही प्रेशर वेरिएशन इन एटमॉस्फेयर पढ़ते हो। मैकेनिकल वाले तो फिर भी कम पढ़ते हैं बीटेक में, ठीक है ना? सो 1.225 kg पर मीटर क्यूब, ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। पानी की हम डेंसिटी लेते हैं, 1000 kg पर मीटर क्यूब, और ये जो वैल्यू होती है दैट इज फॉर 1 एटमॉस्फेयर एट 4.4 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन में, फ्लूइड मैकेनिक्स के क्वेश्चन में टेम्परेचर वगैरह मेंशन नहीं होगा, आप पानी की डेंसिटी 1000 kg पर मीटर क्यूब ही लेंगे। उसके अलावा आपको एक डेंसिटी और याद करनी है, क्योंकि ये डेंसिटी भी आपके क्वेश्चंस में मिसिंग हो सकती है, दैट इज मरकरी। मरकरी की डेंसिटी वैसे 3560 के करीब होती है, मगर हम 13600 kg पर मीटर क्यूब ले लेते हैं। एंड ऑब्वियसली मरकरी इज द लिक्विड विद मैक्सिमम डेंसिटी। मरकरी इज द लिक्विड विद मैक्सिमम डेंसिटी। कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जिसकी मैक्सिमम डेंसिटी है? कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जिसकी मैक्सिमम डेंसिटी है? प्लीज बी क्विक, प्लीज बी क्विक। मैक्सिमम डेंसिटी किस सब्सटेंस की है? मैक्सिमम डेंसिटी किस सब्सटेंस की है? प्लीज बी क्विक, प्लीज बी फास्ट, प्लीज बी क्विक, प्लीज बी फास्ट। कौन से सब्सटेंस की मैक्सिमम डेंसिटी है? क्या वो मरकरी है? क्या वो मरकरी है? ऑल ऑफ यू, क्या वो मरकरी है या कोई और सब्सटेंस है? या कोई और सब्सटेंस है? इट इज ऑस्मियम। ऑस्मियम जो है वो एक नॉन मेटल है, इसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है, 22,300 kg पर मीटर क्यूब के करीब होती है। मगर जब हम बोलते हैं मरकरी, तो लिक्विड्स में मरकरी की डेंसिटी सबसे ज्यादा है। सो मरकरी की जो डेंसिटी है वो स्टोन्स और स्टील से भी ज्यादा है, स्टोन्स और स्टील से भी ज्यादा है। फिर डेंसिटी में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमें भी पता है जब किसी भी सब्सटेंस का प्रेशर बढ़ेगा तो उसके मॉलिक्यूल्स पास पास आएंगे, तो सब्सटेंस की वॉल्यूम कम होगी। सब्सटेंस की वॉल्यूम कम होगी तो उसकी डेंसिटी जो है बढ़ जाएगी। तो प्रेशर बढ़ेगा तो डेंसिटी बढ़ेगी, प्रेशर घटेगा तो डेंसिटी घटेगी। और ये रिलेशनशिप हम कैसे बताएंगे? ये रिलेशनशिप हम बताएंगे बल्क मॉडुलस से। किससे बताएंगे? बल्क मॉडुलस से। तो बल्क मॉडुलस क्या कहता है? बल्क मॉडुलस कहता है K इज इक्वल टू रो dp बाय डी रो, या फिर बल्क मॉडुलस कहता है डी रो इज इक्वल टू रो dp बाय K। तो अगर सब्सटेंस की इनिशियल डेंसिटी इतनी है, सब्सटेंस का प्रेशर इंक्रीज कर जाए तो सब्सटेंस की डेंसिटी में क्या चेंज आएगा? इस तरीके से ये आपको बल्क मॉडुलस देता है इंफॉर्मेशन। भविन बेटा वैसे लिखने की जरूरत नहीं है, पर अगर चाहते हो तो 22,300 के करीब होती है। अगर लिखना चाहते हो तो कोई भी नहीं पूछने वाला, ये क्वेश्चन एफकेट में ही आ सकता है या एसएससी जेई में आ सकता है, वैसे नहीं आएगा ये क्वेश्चन। एफकेट में, एसएससी जेई में, आरआरबी जेई में, वहां पे इस तरह का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। पर आपको ये मतलब एफएम के लिए नहीं चाहिए था, बस इंफॉर्मेशन के लिए बता दिया। पर ये चीज आपको याद रखनी है, ये वैल्यूज आप याद नहीं रखोगे तो न्यूमेरिकल में मार्क्स खो दोगे, ठीक है? नाउ गाइस, नेक्स्ट पॉइंट। सो वी ऑल्सो नो दैट व्हेन यू हीट अ सब्सटेंस,
द डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस विल चेंज। तो जब आप किसी चीज को हीट करते हैं उसका वॉल्यूम बढ़ता है, द वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस विल इंक्रीज। इफ द वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस विल इंक्रीज, हाउ डू यू राइट डेंसिटी? डेंसिटी इज रिटन एज मास बाय वॉल्यूम। सो व्हेन यू हीट अ सब्सटेंस, द वॉल्यूम विल इंक्रीज, डेंसिटी विल डिक्रीज। Now, civil people no need to write what I am telling now. So, mechanical वाले ये लिख सकते हैं because वो heat convection पढ़ते हैं. So, there is a term coefficient of thermal expansion. क्या term होता है? Coefficient of thermal expansion. So, coefficient of thermal expansion tells you how the density will change when the temperature will change. So, coefficient of thermal expansion बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने यहाँ पे लिखा ना, यहाँ पे लिखा था, हमने लिखा था bulk modulus लिखा था, है ना? वैसे ही कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन भी होता है। सो एक्चुअल में ये कैसे लिखा जाता है? दरअसल बल्क मॉडुलस के लिए एक टर्म होती है कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी, विच इज द इनवर्स ऑफ बल्क मॉडुलस। सो दिस विल बिकम, I think this will become K is equal to rho dP by d rho. So this will become d rho by rho dP. So this will become beta C will become d rho by rho dP. Similarly, coefficient of thermal expansion becomes d rho by rho dt. तो ये आपको बताता है कि जब टेम्परेचर में चेंज आएगा तो डेंसिटी में क्या चेंज आएगा। ये आप हीट कन्वेक्शन में ये टर्म यूज करते हैं। फॉर सिविल पीपल नो नीड टू राइट दिस बॉक्स, इस बॉक्स को लिखने की जरूरत नहीं है। अच्छा, सो फॉर एनी सब्सटेंस व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस डेंसिटी डिक्रीजेस, बट देयर इज एन एक्सेप्शन। एक्सेप्शन कौन सा है भाई? कौन सा एक्सेप्शन है? कौन सा सब्सटेंस है जो एक्सेप्शन है? कौन सा सब्सटेंस है जो एक्सेप्शन है? प्लीज बी फास्ट। कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जो एक्सेप्शन है? प्लीज बी फास्ट, प्लीज बी क्विक, जल्दी से बताइए। कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जो एक्सेप्शन है? जल्दी से बताइए। भैया पानी इज दी एक्सेप्शन। कौन है एक्सेप्शन? वाटर है। इस बिहेवियर को जो एक्सेप्शन आएगा that will be water, and water behaves differently in a temperature range of 0 degrees Celsius to 4.4 degrees Celsius. So for any substance, if the temperature will increase, the density will decrease, but water it is inverse in this temperature range only. So in this temperature range, if the temperature increases, the density increases. So at 4.4 degrees Celsius, the density will be maximum, and that density is 1000 kg per meter cube. But beyond this point, if the temperature increases, the density also decreases. So this happens because of oxygen-hydrogen bonding. Next, I think for any substance, say for example, कोई भी substance ले लो, जैसे iron ले लो. So iron के केस में क्या होगा? Solid will have maximum density, liquid will have maximum density, and gas form will have minimum density. First solid, then liquid, and then gas form. In fact, these two forms, they have a density difference of like 1000 times. Now what you will say? You will say that there is again an exception, and what is the exception? Our beloved water. So again water is an exception because of oxygen hydrogen bonding. So what you will say? You will say in case of H2O, the liquid form, that is water, has more density than solid form, that is ice, and then come the vapor. तो यहाँ पे भी exception है जो कि water है, and again the chemistry behind this is oxygen hydrogen bonding. Yes or no? Please do let me know if I am correct or not. Please do let me know if I am correct or not. Please do let me know if I am correct or not. All of you. Now in density only there can be further terms also. Thank you Anish, thank you. In density only there can be further terms also. I know आप लोग साथ साथ लिख भी रहे हैं, इसलिए भी रिप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं. बट जहां भी लगे ना कि सर कुछ गड़बड़ हो गया, सर समझ नहीं आ रहा है, सर ये कॉपी में नहीं किया था, घबराना नहीं है. एक तो हमें ये भी आइडेंटिफाई करना है कि आपको कौन कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जो पता नहीं है, तो फिर हम उन टॉपिक्स की स्पेशल क्लासेस रखेंगे, उन टॉपिक्स पे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और जहां भी
आप लोगों को डाउट होगा उन डाउट की भी फिर स्पेशल क्लासेस रखेंगे, ठीक है। बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की वीडियोस तो चलती रहेंगी हमारी एज यूजुअल। अब डेंसिटी में ही देयर इज अ स्पेशल टर्म व्हिच इज कॉल्ड एज स्पेसिफिक वेट। नाउ यहाँ पे कई बार स्टूडेंट्स जल्दी में न्यूमेरिकल मिस्टेक कर देते हैं। क्या न्यूमेरिकल मिस्टेक करते हैं? लेट अस चेक। So we chose a volume of V meter cube and the volume had a mass m kg. So volume will have some weight also. How much will be the weight? The weight will be equal to mass into acceleration due to gravity. So weight per unit volume, that is the weight of 1 meter cube. इतने 1 meter cube का जो weight है, that is called as specific weight. Obviously the units of specific weight will be Newton per meter cube, and if you simplify, so Newton means mg, that is kg meter per second square, kg meter per second square upon meter cube. So this will become kg per meter square second square. So this will be the unit of specific weight. And when you talk of the dimensions, m l minus 2 t minus 2, देखो मैं डायमेंशंस क्यों लिखवाता हूं हर यूनिट की, हर टर्म की? बिकॉज वी यूज दीज डायमेंशंस इन बकिंगम पाई थ्योरम, दैट्स व्हाई वी राइट ऑल द डायमेंशंस, ठीक है ना। And very few times, not multiple times, but very few times questions come where you are asked dimensions of terms. Now the problem that we make, say for example specific weight of water. Let us check the specific weight of water. I think this also becomes mg by v, but mass by volume is density, so rho g. So specific weight is equal to density of substance into acceleration due to gravity. So what is the specific weight of water? It will be density of water into acceleration due to gravity, that is 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, है ना। वेरी गुड भाविन, बिल्कुल सही है। अब भाविन मिस्टेक पता क्या होता है, कई बार क्वेश्चन में दिया रहता है स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर इज 10 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, ठीक है। अब बच्चे को बर्नौलीज इक्वेशन में डेंसिटी चाहिए होता है, तो बच्चा क्या करता है, बच्चा सीधा बोलता है पानी की डेंसिटी 1000 केजी पर मीटर क्यूब आएगी, मगर यही मिस्टेक हो गया। क्यों? क्योंकि पानी की जो स्पेसिफिक वेट है 4.4 डिग्री सेल्सियस पे वो 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब है, 9.81 नॉट 10. So water has a maximum density and maximum specific weight at 4.4 degrees Celsius, which is 9.81. So how come it can be 10 kilonewton per meter cube? Because this is not distilled water, this is sea water, this is salty water. So for salty water, if you will find out the density, you will write specific weight upon G value 9.81, that is 1019 kg per meter cube. So question में जो specific weight दिया हुआ था वो इतनी density के लिए दिया हुआ था, वो salt water के लिए दिया हुआ था, मगर जैसे ही आपने 1000 लिख दिया आपका आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि आप distilled water की बात कर रहे हो। समझ रहे हैं? क्वेश्चन बात कर रहा है सॉल्ट वाटर की और आप सॉल्व कर रहे हो डिस्टिल्ड वाटर के लिए, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। सो प्लीज while solving question you have to check whether the density of substance is given or the specific weight of substance is given. So if specific weight of substance is given, do not write the value of density which you know. डेंसिटी कैसे आएगा? स्पेसिफिक वेट बाय जी से आएगा, ठीक है ना। सो आई होप दिस यू विल रिमेंबर, आई होप दिस यू विल रिमेंबर। नाउ व्हेन वी टॉक ऑफ डेंसिटी देयर इज वन मोर टर्म, सो दैट टर्म इज स्पेसिफिक ग्रेविटी, दैट टर्म इज स्पेसिफिक ग्रेविटी, दैट टर्म इज स्पेसिफिक ग्रेविटी, एंड समटाइम्स इन क्वेश्चंस ऑफ प्रेशर मेजरमेंट इट कैन बी यूजफुल. So what is specific gravity? We will denote specific gravity by small s. तो आप बोलेंगे the density of a substance, specific gravity of a substance, say for example aluminum. Specific gravity of substance, say for example aluminum, is equal to density of aluminum by density of reference fluid. Now please note, if you are finding out specific gravity of a solid or liquid, then the reference fluid will be water at 4.4 degrees Celsius.
अगर आप सॉलिड और लिक्विड की स्पेसिफिक ग्रेविटी फाइंड आउट कर रहे हैं, जैसे एल्यूमिनियम एक सॉलिड है, तो आपका रेफरेंस फ्लूइड क्या होगा, वाटर एट 4.4 डिग्री सेल्सियस। मगर इसका रेफरेंस डेंसिटी क्या बन जाएगा, द रेफरेंस डेंसिटी विल बी 1000 kg per meter cube. So you will simply say specific gravity of aluminum is equal to density of aluminum by 1000. So you divide the density of substance by 1000, you will get the specific gravity of substance. But if you are talking of specific gravity of gas, तो हमारा जो रेफरेंस फ्लूइड बनता है, रेफरेंस फ्लूइड इज एयर हाइड्रोजन एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर. हाइड्रोजन एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर. नो नीड टू राइट दिस. सिविल वाले तो इसको बिल्कुल ही भूल जाएं. मैकेनिकल वालों को अगर नॉलेज के लिए लिखना है तो लिख लें, गेट एग्जाम में यूजफुल नहीं है. ठीक है, इसको आप लोग इग्नोर कर सकते हैं, इस चीज को आप इग्नोर कर सकते हैं. सिविल वाले तो बिल्कुल ही भूल सकते हैं और मैकेनिकल वाले चाहें तो लिख सकते हैं. नाउ 2 important points which might be useful in numericals. Say for example, I hope you remember, sometimes we write pressure as rho gh. Density of oil into G into height of oil is equal to pressure because of oil. But this answer will be in pascals. Now many times, in fact most of the times, we want to write the answer in kilopascal. So if you divide Pascal by 1000, you will get answer in kilopascal, है ना? So what will be the answer now? Kilopascal. But density of substance by 1000, what is that? That is the specific gravity of substance. So rho gh gives you answer in Pascal and SGH gives you answer in kilopascal. तो आप अपना टाइम सेव कर सकते हैं, छोटी छोटी कैलकुलेशन से भी अपना टाइम सेव कर सकते हैं. वैसे 1000 से मल्टीप्लाई करना तो थोड़े से 1 सेकंड का ही खेल है, मगर मान लो ऐसी 50 कैलकुलेशन हो पूरे पेपर में तो 50 सेकंड बच जाते हैं. समझ रहे हैं ना, थोड़ा थोड़ा टाइम भी इंपॉर्टेंट होता है. सो ध्यान रखना है, SGH इज किलो पास्कल एंड रो GH इज पास्कल. Then next point, let us find out the density of mercury in CGS units. So what is the density of mercury in SI units? 13,600 kg per meter cube. But we know 1 kg per meter cube is equal to 1 by 1000 gram per centimeter cube. Mercury की जो density है उसको मैं ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में लिख रहा हूं. सो आई थिंक दिस विल बी 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. सो दिस इज द डेंसिटी ऑफ मर्करी इन CGS units. Now let me find out the specific gravity of mercury. So specific gravity of mercury, that will be 13,600 divided by 1000, which is 13.6. अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है the specific gravity of mercury is the density of mercury in CGS units. किसी भी सब्सटेंस का जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है, दैट इज द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इन CGS यूनिट्स. तो ये 2 पॉइंट्स हैं, इनको आप रफ में नोट कर लीजिए. 2 पॉइंट्स हैं, इनको आप सिंपल से पॉइंट्स हैं, इनको रफ में नोट कर लीजिए. रो GH की बजाय SGH यूज करते हैं तो प्रेशर इज इन किलो पास्कल. और अगर आप स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? स्पेसिफिक ग्रेविटी की. तो आप सीधा लिखेंगे S of a substance is the numerical value of density in CGS units. Numerical value of density in CGS units. ठीक है ना? आई होप सिंपल है, लाउड एंड क्लियर है और किसी चीज की कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है ना? तो ये तो सिंपल ही था, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली. प्लीज बी क्विक, प्लीज डू लेट मी नो, जल्दी से बता दीजिए. प्लीज डू लेट मी नो, किसी तरह का कोई डाउट नहीं है. और अगर डाउट नहीं है तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं, जो कि बल्क मॉडुलस है, क्योंकि बल्क मॉडुलस इज एन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी फॉर सिविल ऑल्सो. सिविल में जो बताने वाला हूं वो तो कॉमन है, मगर मैकेनिकल के लिए ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है, क्योंकि जब मैं कंप्रेसिबल फ्लो का चैप्टर पढ़ाऊंगा तो मैकेनिकल में कंप्रेसिबल फ्लो में बल्क मॉडुलस यूज होता है. ठीक है? सो एज कंपेयर टू सिविल, दिस इज मोर इंपॉर्टेंट इन मैकेनिकल. मगर अभी जो हम डिस्कशन करने वाले हैं वो सिविल और मैकेनिकल दोनों का कॉमन है.
सो चलो गाइस स्टार्ट करते हैं सेकंड प्रॉपर्टी लिखते हैं, दैट इज बल्क मॉडुलस. सो योर सेकंड प्रॉपर्टी इज बल्क मॉडुलस. So this property will be denoted by K. This property will be denoted by K. So how did I explain it earlier? मैंने जैसे पहले एक्सप्लेन किया था वैसे ही फटाफट एक्सप्लेन कर देता हूं, और उस पे एक वीडियो भी है जहां पे स्पीड नॉर्मल है और अच्छे से किया हुआ है काम. So how did I do then? I said let us suppose there is a body and this body is fixed. Now on this body there are multiple forces acting on it. I am talking of solid body, by the way. So this body will have some weight, some external forces will be acting on it. There will be point forces, there will be distributed forces, there will be a joint, so there will be reaction forces. Now what I will do, I will take a point and at this point there will be a particle. So let us zoom out the particle. उस particle को zoom करके देखते हैं. So maybe the particle looks like this. It is a cuboid and the sides of the cuboid are along the x, y and z direction. So what you will say? At every surface of the particle there will be a surface force. And the surface force will be resolved into components. So in Cartesian coordinate system there will be 3 components. So every surface force will have 3 components, and the components surface force per unit area, that becomes the shear stress, normal stress. So what you will do, when you will zoom out the particle, जब आप इस पार्टिकल को जूम आउट करके देखेंगे तो आपको इस पार्टिकल के सरफेसेस पे स्ट्रेसेस नजर आएंगे. क्या नजर आएंगे? स्ट्रेस नजर आएंगे. सो दिस इज योर पार्टिकल, दिस इज एक्स डायरेक्शन, दिस इज वाई डायरेक्शन एंड दिस इज जेड डायरेक्शन. सो यू विल से द नॉर्मल स्ट्रेस ऑन द सरफेस, दैट इज अलोंग वाई. यू विल से द shear stress on the surface, that is along x. The shear stress on the surface, that is along z. Similarly, the normal stress on the surface, which is along z. Shear stress on the surface, which is along x. Shear stress on the surface, which is along y. है ना? And similarly on the other surface also, you will have sigma x. You will have shear stresses. Yes or no, guys? Please be fast. Please do let me know. Am I correct? अच्छा शुभम, कोई बात नहीं बेटा देख मैं दिखा देता हूं एक बार फटाफट. क्या करो, जो वाला पोर्शन है ना, कोई इतना हैवी पोर्शन नहीं है. जो भी करा है वो तो डेंसिटी बताया था, सब कुछ पता ही होगा. अभी इस पे हम ध्यान देते हैं, बट क्योंकि बल्क मॉडुलस थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और मैकेनिकल में ये ज्यादा इंपॉर्टेंट बन गया है कंप्रेसिबल फ्लो चैप्टर आने के कारण. सो मैंने क्या किया, मैंने बस इतना ही बताया था, वो डेंसिटी को डिस्कस कर दिया. तो डेंसिटी की डेफिनेशन क्या है, उसके यूनिट्स क्या है, उसकी डायमेंशन क्या है. आजकल हम डायमेंशंस पे इतना ध्यान क्यों देते हैं? क्योंकि बकिंघम पाई थ्योरम में यूजफुल होता है. फिर आपको 3 डेंसिटी याद रखनी है, हवा की, पानी की, मरकरी की. ठीक है, और ये ऐसी रेफरेंस एक एग्जांपल बता दिया कि ऑस्मियम की डेंसिटी मैक्सिमम होती है, मगर कोई पूछेगा नहीं गेट में. फिर टेम्परेचर बढ़ेगा तो डेंसिटी घटेगा. कौन बताता है? कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन बताता है. एक्सेप्शन है वाटर. प्रेशर बढ़ेगा तो डेंसिटी बढ़ेगा. कौन बताता है? बल्क मॉडुलस या कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी बताता है, जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं. फिर एक्सेप्शन, वाटर की मैक्सिमम डेंसिटी 1000 होती है. ये किसी भी सब्सटेंस की सॉलिड की डेंसिटी मैक्सिमम होती है, मगर H2O में डिफरेंट केस है. यहाँ पानी लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा है. स्पेसिफिक वेट क्या होता है, फिर ये चीज ध्यान रखनी है. राइट हैंड साइड में अगर स्पेसिफिक वेट दिया हो तो डेंसिटी कभी भी डायरेक्टली नहीं लिखते, स्पेसिफिक वेट से कैलकुलेट करते हैं बाय डिवाइडिंग बाय जी. और स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है और कैसे, SGH लिखो तो किलो पास्कल आता है, रो GH लिखो तो पास्कल होता है. और स्पेसिफिक ग्रेविटी की जो वैल्यू होती है दैट इज डेंसिटी इन CGS यूनिट्स. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए थे. अगर नहीं भी पता हो तो टेंशन लेने का, बाद में वीडियो देख लेना, अपने आप क्लियर हो जाएगा. अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल शुभम, भविन, अनीश, महेंद्र. हेलो महेंद्र, हाउ आर यू? सो मैं तेरा आंसर देखा नहीं था उस टाइम. सो जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं प्लीज डू लेट मी नो. आपने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स में भी ये फिगर देखा होगा, देखा हुआ है ना. हर सरफेस पे 2 शेयर स्ट्रेस आएंगे और हर सरफेस पे एक नॉर्मल स्ट्रेस आएगा.
Now guys, let us suppose that there is a particular situation such that we have applied load in such a manner that all these shear stresses are zero. We have applied load in such a manner that all these shear stresses are zero. I think in that case what will happen? In that case, on every surface there will be a normal stress only, and I think when shear stress is zero, you call the normal stress as प्रिंसिपल स्ट्रेस. याद है क्या मैं सही बोल रहा हूं? अगर इन तीन परपेंडिकुलर प्लेन के शेयर स्ट्रेस जीरो हो जाए तो आप इन तीन प्लेन्स को प्रिंसिपल प्लेन्स कहते हैं और कॉरेस्पॉन्डिंग नॉर्मल स्ट्रेसेस को प्रिंसिपल स्ट्रेस कहते हो ना. और फर्दर इफ सिग्मा एक्स, sigma y and sigma z, if all of them are equal, then you call this normal stress as volumetric stress. किस किस को याद है? स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स में पढ़ा हुआ है. ये मैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स की ही डेफिनेशन फॉलो कर रहा हूं. कौन बताएगा? ऑल ऑफ यू प्लीज बी फास्ट, जल्दी से बताइए. ऑल ऑफ यू प्लीज बी फास्ट, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए गाइस. एक्चुअली मेरा वीडियो थोड़ा सा पीछे चल रहा है, यहां पर मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूं. हाँ, दिस इज हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस कंडीशन. इसको हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस कंडीशन ही कहते हैं. मगर अभी हम पता है क्या कर रहे हैं? अभी हम सॉलिड बॉडी के लिए डिफाइन कर रहे हैं. वी आर डिफाइनिंग दिस फॉर अ सॉलिड बॉडी. ओके, वी आर अंडरस्टैंडिंग अ सॉलिड बॉडी. आई हैव टेकन अ रिजिड बॉडी ना, सो आई एम टॉकिंग ऑफ सॉलिड बॉडी. So when we apply external forces on the solid body will deform and there will be certain stresses on the surface of the particle. But we are making an assumption that all the shear stresses are zero and these principal stresses are equal. So these principal stresses will be called as volumetric stress. अब गाइस, अब आप देखो, अब आप क्या बोलोगे? अब आप बोलोगे कि भैया जब ये बॉडी स्ट्रेस फ्री थी तो स्ट्रेस फ्री होने के टाइम पार्टिकल का कुछ वॉल्यूम आएगा, मगर स्ट्रेस के कारण पार्टिकल के वॉल्यूम में चेंज आएगा. सो हाउ विल यू राइट द न्यू वॉल्यूम? यू विल राइट द न्यू वॉल्यूम एज इनिशियल वॉल्यूम प्लस चेंज इन वॉल्यूम. ये आपका नया वॉल्यूम है पार्टिकल का, तो पार्टिकल का वॉल्यूम चेंज कर गया. सो आप क्या बोलेंगे कि इन द पार्टिकल देयर इज अ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन. हाउ डू यू राइट वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन? चेंज इन वॉल्यूम बाय पर यूनिट वॉल्यूम. So because of volumetric stress, there is a volumetric strain. But Hooke's law says that volumetric stress is directly proportional to volumetric strain. So if you remove the proportionality sign, you will have a elasticity constant. That elasticity constant is called as bulk modulus. ये क्या बोलता है? Bulk modulus बोलता है. So D. So Nikita beta, I didn't get you. I think you are giving some answer. You are saying D. So I didn't get you. What is D? D means small change in volume. D का मतलब है छोटा सा change in volume, है ना? So I think this definition you guys already know. This definition you already know. So what you will say? You will say that dV by V, which is the volumetric strain, this can be given as sigma V by bulk modulus. So when we apply external stress on the body, the volume of the body will change. But if the bulk modulus is high, the change in volume will be less. तो बल्क मॉडुलस क्या होता है? बल्क मॉडुलस इज द रेजिस्टेंस टू चेंज इन वॉल्यूम, रेजिस्टेंस टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन. ये हमने सॉम में पढ़ा हुआ है. दिस वी हैव डन इन सॉम. यस और नो गाइस? यस और नो? आई थिंक दिस वी हैव डन इन सॉम, द रेजिस्टेंस टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन. In a similar manner, we define bulk modulus in fluids also. So for fluids, you write like this. For fluids, you write like this. dP is equal to bulk modulus into minus dV by V. Or you can say K is equal to dP upon minus dV by V.
Now, what is the meaning of this equation? The meaning of this equation is initially the pressure on the particle was P and the initial volume of particle was V. Now, there is a change in pressure. So, pressure was P plus dP and there will be a change in volume. So, new volume will be V plus dV. Okay, this is very much similar to initially the solid particle was stress free. Now the solid particle has a volume V. Now the new stress is 0 plus sigma V and the new volume is V plus dV. आप समझ रहे हैं मेरी बात? So ये पता है क्या है? ये देखिए, ये तो मैंने लिक्विड्स की इक्वेशन लिखी है. किसके लिए इक्वेशन लिखी है? लिक्विड्स के लिए इक्वेशन लिखी है. और ये हमारी इक्वेशन आती है सॉलिड्स के लिए, dP अपॉन dV बाय V, सॉरी सिग्मा V अपॉन dV बाय V. Now what is this? This is sigma V minus 0 upon dV by V. That is change in stress upon volumetric strain. Similarly, this is equal to P plus dP minus P upon negative of volumetric strain. So here also the numerator is change in pressure. Here the numerator is change in stress. So similar definition लिखा है. मगर थोड़ा सा डिफरेंस इसलिए आ गया बिकॉज यू कैन नॉट होल्ड अ फ्लूइड इफ इट इज स्ट्रेस फ्री. अगर एक फ्लूइड स्ट्रेस फ्री होगा तो उसके मॉलिक्यूल, वो पूरा सब्सटेंस इवेपोरेट कर जाएगा, उसके मॉलिक्यूल्स पूरे स्पेस में फैल जाएंगे. आप किसी भी फ्लूइड को प्रेशरलेस नहीं रख सकते. सॉलिड को स्ट्रेस फ्री रख सकते हैं मगर फ्लूइड को प्रेशरलेस नहीं रख सकते. तो जब आप फ्लूइड की इनिशियल कंडीशन डिफाइन करते हैं, देयर हैज टू बी अ वैल्यू ऑफ प्रेशर. सॉलिड को स्ट्रेस फ्री रखा जा सकता है मगर फ्लूइड को प्रेशर फ्री नहीं रखा जा सकता. तो फ्लूइड की जब इनिशियल कंडीशन डिफाइन करेंगे तो देयर हैज टू बी अ वैल्यू ऑफ प्रेशर, इसलिए ऐसे लिखा. सो इफ द प्रेशर इंक्रीजेस द वॉल्यूम डिक्रीजेस. अब आप बोलेंगे कि सर चलो वो तो ठीक है, अब यहां पे एक एक्स्ट्रा नेगेटिव साइन भी है. ये नेगेटिव साइन क्यों आया? दिस नेगेटिव साइन हैज कम इनटू पिक्चर बिकॉज इन सॉलिड बॉडीज टेंसाइल स्ट्रेस इज पॉजिटिव एंड कंप्रेसिव स्ट्रेस इज नेगेटिव, बट इन फ्लूइड्स देयर इज नो टेंसाइल स्ट्रेस, देयर इज ओनली कंप्रेसिव स्ट्रेस. तो कंप्रेसिव स्ट्रेस को आप पॉजिटिव लिखते हो और प्रेशर कहते हो, है ना. नाउ इफ द प्रेशर विल इंक्रीज द वॉल्यूम विल डिक्रीज. सो प्रेशर एंड वॉल्यूम आर ऑपोजिट, दैट्स व्हाई देयर इज अ नेगेटिव साइन. यस और नो, प्लीज डू लेट मी नो. अगर ये चीज क्लियर नहीं है तो हम इसको रिपीट कर देते हैं बिकॉज नाउ बल्क मॉडुलस इज एन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी. आईएएस और डीआरडीओ में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है और गेट में भी आने के चांस रहेंगे क्योंकि अब कंप्रेसिबल फ्लो इज अ पार्ट ऑफ सिलेबस ऑफ मैकेनिकल. प्लीज डू लेट मी नो. रिपीट कर दें? ठीक है. अच्छा एक बात बताओ, सॉलिड वाला पार्ट क्लियर है ना? सॉलिड वाला पार्ट क्लियर है या सॉलिड वाले पार्ट में कोई प्रॉब्लम है? सॉलिड वाला पार्ट क्लियर है या सॉलिड वाले पार्ट में कोई प्रॉब्लम है? यहां तक बता दो, मैं वो रिपीट भी कर देता हूं, हार्डली 2 मिनट लगेंगे. सॉलिड वाला पार्ट क्लियर है ऋषभ? प्लीज डू लेट मी नो. प्लीज डू लेट मी नो. सॉलिड वाला पार्ट क्लियर है? ठीक है. तो एक बार फ्लूइड वाला पार्ट देख लेते हैं, ढंग से देख लेते हैं. सो सपोज देयर इज अ कंटेनर, ओके, एंड इन द कंटेनर देयर इज अ लिक्विड और मे बी देयर इज अ गैस इफ द कंटेनर इज क्लोज्ड. अब एक सॉलिड जो होता है, सॉलिड को आप स्ट्रेस फ्री रख सकते हैं. जैसे से फॉर एग्जाम्पल व्हेन अ स्पेस शटल गोज इन स्पेस. So space shuttle is a solid body. So when space shuttle goes in the outer space, it goes in perfect vacuum. It is stress free, pressure free. It remains intact. उसके जो मॉलिक्यूल्स है वो इकट्ठे रहते हैं क्योंकि मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग है. But if you take liquid directly in space, it will instantaneously vaporize. And all the molecules will spread throughout the solar system. समझ रहे हैं ना आप, है ना. तो आप लिक्विड मास को इकट्ठे नहीं रख सकते जब तक लिक्विड मास पे कोई प्रेशर ना हो. गैसियस मास को इकट्ठे नहीं रख सकते जब तक गैस पे प्रेशर ना हो. सो टू होल्ड अ लिक्विड मास, टू होल्ड द लिक्विड मॉलिक्यूल्स और गैस मॉलिक्यूल्स टुगेदर, you need to have some pressure. So a fluid can never be stress free, never be pressure free. तो जब आप एक फ्लूइड की इनिशियल कंडीशन डिफाइन करते हैं तो वहां कुछ ना कुछ प्रेशर होता ही है. So what we have a particle
So at this point there will be some pressure and the particle has some volume. Now what will happen? If you increase the pressure, so what will be the new pressure? P plus dP. So when you change the pressure, there will be a change in volume also, है ना? So what you will say? You will say कि भैया the change in volume or the volumetric strain. So volumetric strain is always equal to change in volume by volume. ठीक है, ये तो आपका बन गया volumetric strain आ गया. अब एक काम करो, जो सॉलिड का फॉर्मूला है, तो सॉलिड का फॉर्मूला क्या कहता है? सॉलिड का फॉर्मूला कहता है बल्क मॉडुलस इज इक्वल टू सिग्मा वी अपॉन डीवी बाय वी. यही कहता है ना सॉलिड का फॉर्मूला. तो सॉलिड के फॉर्मूला में ऐसे लिख दो, सिग्मा वी माइनस 0 अपॉन डीवी बाय वी लिख दो. ठीक है, अब ये देखो ये क्या है? इनिशियल स्ट्रेस, फाइनल स्ट्रेस, चेंज इन स्ट्रेस, राइट? Initial stress, final stress. So final minus initial is change in stress. So on the similar lines, we will write down the formula for fluid also. Final pressure P plus dP. Initial pressure P. So final minus initial, that is change in pressure. Change in pressure upon volumetric strain. तो ये बन जाएगा dP upon dV by V. मगर फ्लूइड के केस में ना एक नेगेटिव साइन ऐड करना पड़ेगा. क्वेश्चन आता है कि फ्लूइड में नेगेटिव साइन क्यों ऐड करेंगे? क्योंकि जब हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स की बात करते हैं तो जो नॉर्मल स्ट्रेस होता है वो टेंसाइल भी होता है और कंप्रेसिव भी होता है, और वहां पे पॉजिटिव स्ट्रेस का मतलब है टेंसाइल स्ट्रेस. अब टेंसाइल स्ट्रेस इंक्रीज करेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, है ना? सो स्ट्रेस और वॉल्यूम का बिहेवियर सेम है. मगर यहां पर टेंसाइल स्ट्रेस तो कुछ होता नहीं है, सिर्फ प्रेशर होता है, और प्रेशर कंप्रेसिव होता है. कंप्रेसिव स्ट्रेस होता है जिसको प्रेशर बोलते हैं. अब प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटेगा, तो यहां प्रेशर और वॉल्यूम का बिहेवियर उल्टा है, तो यहां पे एक नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा. बस इतना. तो ये आपका बल्क मॉडुलस ऑफ फ्लूइड बन गया. ठीक है ना? अब आई होप क्लियर है. ऋषभ जल्दी से बता दो बेटा. आई होप दिस इज क्लियर. प्लीज डू लेट मी नो इफ दिस इज क्लियर और नॉट. Please do let me know if this is clear or not. Please do let me know if this is clear or not. Please do let me know if this is clear or not. ठीक है. Now guys check. Bulk modulus is the difference between a liquid and gas. Check the order. So this is the order of bulk modulus of water. This is the order of bulk modulus of air. So I think there is a difference of 10,000 times, 21,000 times in fact. कितने रेश डिफरेंस है? 21,000 times का डिफरेंस है. Now what does this difference tells us? This difference tells us that when you define bulk modulus, it is dP upon minus dV by V. Or in fact minus dV by V is also equal to d rho by rho. भैया जब पार्टिकल की वॉल्यूम में चेंज आएगा तो पार्टिकल की डेंसिटी में भी चेंज आएगा. सो ये माइनस डीवी बाय वी दरअसल डी रो बाय रो के बराबर होता है. सो यू कैन ऑल्सो राइट इट एज डीपी अपॉन डी रो बाय रो. नाउ व्हाट यू विल से? यू विल से फ्रॉम दिस फॉर्मूला वी हैव चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल टू माइनस वी डीपी बाय के, और चेंज इन डेंसिटी इज इक्वल टू रो डीपी बाय के. तो ये फॉर्मूला आपको क्या बताता है? ये फॉर्मूला आपको बताता है इफ द इनिशियल डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इज दिस, बल्क मॉडुलस ऑफ सब्सटेंस इज दिस, देन बिकॉज ऑफ चेंज इन प्रेशर व्हाट विल बी द चेंज इन डेंसिटी. चेंज इन प्रेशर के कारण चेंज इन डेंसिटी कितना होगा? अब मेरे ख्याल से बल्क मॉडुलस इज इन डिनोमिनेटर, सो मोर इज द बल्क मॉडुलस, लेस विल बी द चेंज इन डेंसिटी. So if the bulk modulus is high, changing the density of fluid is difficult, like liquids, solids. But if the bulk modulus is less, changing the density of substance is easy, like gases. तो ये आपको पता लग जाता है. तो बल्क मॉडुलस आपको बताएगा कि किसी सब्सटेंस का डेंसिटी चेंज कितना करना कितना आसान है या डिफिकल्ट है. सो बल्क मॉडुलस मीन्स हाउ डिफिकल्ट इट इज, how difficult it is to change the density of substance. It is to change the density of substance.
हाँ, of substance. Okay. Now what we do, we define a term coefficient of compressibility. अब हम एक term define करते हैं जो कि आती है coefficient of compressibility. So what is coefficient of compressibility? Beta c, it is 1 by bulk modulus. So it is inverse of bulk modulus. तो bulk modulus कहता है how difficult it is to change the density of substance. But compressibility कहती है how easy it is to change the density of substance. bulk modulus का मतलब difficult और बीटा का मतलब easy. So ये आपका bulk modulus टॉपिक है, बिल्कुल सिंपल टॉपिक है. सो सिविल के केस में तो सिर्फ इतना ही आता है, सिविल के केस में सिर्फ इतना आता है, मगर मैकेनिकल के केस में एक पॉइंट और आता है. दिस इज द केस फॉर मैकेनिकल ओनली. सो इफ यू आर टॉकिंग ऑफ आइडियल गैसेस, इफ यू आर टॉकिंग ऑफ आइडियल गैसेस, तो बहुत आसानी से प्रूव किया जा सकता है, मगर मैं प्रूव नहीं कर रहा हूं. मैंने बल्क मॉडुलस का एक अच्छा खासा इलैबोरेट वीडियो किया हुआ है 2-2.5 घंटे का, आप वहां पे चेक कर सकते हैं. फॉर आइडियल गैसेस बल्क मॉडुलस इज इक्वल टू N into P. अब P क्या है? P का मतलब होता है प्रेशर ऑन द गैस, एब्सोल्यूट प्रेशर ऑफ द गैस. और N का मतलब क्या है? N का मतलब है पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स ऑफ द प्रोसेस. तो अगर आपको याद हो, आइसोथर्मल प्रोसेस में N की वैल्यू 1 होती है. आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है? आइसोथर्मल प्रोसेस में N की वैल्यू 1 होती है. आइसोबारिक प्रोसेस में N की वैल्यू क्या बन जाती है? सो PV रेज़्ड टू पावर कांस्टेंट, तो प्रेशर कांस्टेंट है, N की वैल्यू 0 बन जाती है. आइसोकोरिक में N की वैल्यू इनफाइनाइट बन जाती है, और एडियाबैटिक में N की वैल्यू गामा बन जाती है. N की वैल्यू गामा बन जाती है. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि भैया फर्स्ट ऑफ ऑल द बल्क मॉडुलस डिपेंड्स अपॉन द प्रेशर ऑफ द सब्सटेंस, प्रेशर ऑफ द गैस. So during a process, the pressure of the gas will change. So if the pressure of gas will change, the bulk modulus of the gas will also change. But the bulk modulus is also depending upon what type of process it is. Process कैसा है और गैस की स्टेट क्या है, उस पे आपका बल्क मॉडुलस डिपेंड करेगा. ठीक है ना? अच्छा, अब मेरा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन क्या है मेरा? क्वेश्चन ये है, आइडियल फ्लूइड के केस में बल्क मॉडुलस कितना होता है? आइडियल फ्लूइड के केस में, जिसका मतलब होता है इनकंप्रेसिबल, लिक्विड्स आर इनकंप्रेसिबल, सो दे आर आल्सो कॉल्ड एज आइडियल फ्लूइड. सो आइडियल फ्लूइड के केस में बल्क मॉडुलस कितना होता है? How much is the bulk modulus? Please do let me know. For ideal fluids, how much is the bulk modulus? Please do let me know. Please do let me know how much is the bulk modulus? Infinite. Very good. So what is the meaning of incompressible fluid? Meaning of incompressible fluid is how much is the change in pressure? That doesn't matter. The density is constant. So if the density is constant, the change in density is 0. But what is change in density? Change in density is initial density into change in pressure upon bulk modulus. तो चेंज इन प्रेशर चाहे जितना मर्जी हो, मगर डेंसिटी कांस्टेंट है, ये तभी हो सकता है जब K की वैल्यू इनफाइनाइट हो. वेरी गुड. सो फॉर आइडियल फ्लूइड K वैल्यू इज इनफाइनाइट. आइडियल फ्लूइड के केस में K की वैल्यू इनफाइनाइट होती है. अब क्वेश्चन क्या आ जाता है? कई बार न्यूमेरिकल आ सकता है. तो न्यूमेरिकल आ सकता है कि पता है क्या न्यूमेरिकल दे सकते हैं कि भैया पहले प्रेशर इतना है लिक्विड का और लिक्विड की डेंसिटी इतनी है, प्रेशर चेंज कर जाता है और बल्क मॉडुलस इतना है, फाइंड आउट द न्यू डेंसिटी, ऐसे बोल सकते हैं. और बल्क मॉडुलस की बजाय कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी भी दे सकते हैं. सो आप सीधा क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे कि भैया चेंज इन डेंसिटी इज गिवन एज रो dp बाय k, और डी रो क्या होता है? डी रो होता है रो 2 माइनस रो 1, और dp क्या होगा? p2 माइनस p1, है ना?
सो P2 की वैल्यू आपको पता है, P1 की वैल्यू आपको पता है, ρ1 की वैल्यू आपको पता है, K की वैल्यू आपको पता है, आप ρ2 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये क्वेश्चन आ जाता है, या फिर बोल देते हैं इनिशियल कंडीशन ये है, फाइनल कंडीशन ये है, फाइंड आउट द बल्क मॉडुलस, तब भी आपको सेम फॉर्मूला लगाना है। अच्छा, एक टिपिकल क्वेश्चन ये बन सकता है कि देयर इज अ क्लोज्ड कंटेनर एंड दैट क्लोज्ड कंटेनर इज कंप्लीटली फिल्ड विद वाटर, दैट कंटेनर वाज इनिशियली एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हमारे पास एक कंटेनर है जो इनिशियली एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, अब उसमें पानी भर रहे हैं और पानी भर रहे हैं ताकि उसके अंदर का जो प्रेशर है वो 301 एटमॉस्फेयर हो जाए। तो आपने कितना पानी पंप किया। अब एक चीज ध्यान रखनी है, इसमें एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि जब आप पानी पंप कर रहे हैं, पानी का भी प्रेशर बढ़ रहा है। सो सपोज यू आर पंपिंग द वाटर इनसाइड द कंटेनर टिल द एक्सटर्नल प्रेशर इज 300 एटमॉस्फेयर। तो जब आप पानी कंटेनर में पंप कर रहे हैं तो पानी का प्रेशर भी 1 एटमॉस्फेयर से 300 एटमॉस्फेयर जा रहा है। सो कंटेनर के अंदर जो पानी है वो 300 एटमॉस्फेयर पे है। तो अगर आपको कंटेनर के अंदर पानी की डेंसिटी निकालनी है तो वो 1 एटमॉस्फेयर वाली डेंसिटी नहीं लेंगे, वो 300 वाली डेंसिटी लेंगे, ठीक है ना। सो आपको कंटेनर के अंदर जो पानी है उसकी डेंसिटी पता लग जाएगी। अब कंटेनर के बल्क मॉडुलस के अकॉर्डिंगली आपको कंटेनर की न्यू वॉल्यूम पता लग जाएगी। सो डेंसिटी ऑफ वाटर एट 300 एटमॉस्फेयर, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको मास ऑफ वाटर इनसाइड कंटेनर मिल जाएगा। मैं एक बार क्वेश्चन रिपीट कर देता हूं, ये क्वेश्चन मैंने बल्क मॉडुलस के वीडियो में कराया भी है। मैंने क्या क्वेश्चन दिया था, मैंने क्वेश्चन दिया था कि मान लीजिए आपके पास एक कंटेनर है जो कि इनिशियली 1 एटमॉस्फेयर पे है। इस कंटेनर में हम पानी पंप करेंगे ताकि कंटेनर के अंदर का जो प्रेशर है वो 300 एटमॉस्फेयर हो जाता है। And during this process, the volume of the container increases by 6%. तो इसका मतलब आपको कंटेनर की न्यू वॉल्यूम पता लग जाएगी, है ना। अब वो बोलता है find out the mass of water in the container and density of water at 1 atmosphere is 1000 kg per meter cube. अब बच्चे पता है क्या बोलते हैं, बच्चे बोलते हैं this is the new volume of water, new volume of container, so volume of water, this is the density of water, so density of water into volume is the answer. मगर मिस्टेक ये हो गया कि ये जो आपको पानी का डेंसिटी दिया हुआ है ये 1 एटमॉस्फेयर पे दिया हुआ है। अब पानी का प्रेशर भी चेंज हो गया है तो पानी की आपको नई डेंसिटी निकालनी पड़ेगी। सो वंस यू फाइंड आउट द न्यू डेंसिटी यूजिंग दिस, दैट इज d rho is equal to rho dp by k। तो ये क्या है, ये चेंज इन डेंसिटी है। तो आप क्या बोलेंगे, फाइनल डेंसिटी माइनस इनिशियल डेंसिटी इज इक्वल टू रो dp by k। सो फाइनल डेंसिटी इज इक्वल टू रो प्लस रो dp by k। ये फाइनल डेंसिटी आ गई, दैट इज डेंसिटी एट 300 एटमॉस्फेयर। सो डेंसिटी एट 300 एटमॉस्फेयर इनटू न्यू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, दिस विल बी द मास ऑफ वाटर इनसाइड द कंटेनर। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। और मैंने एक क्वेश्चन और कराया था एस के सोम साहब की किताब का, तो मैं एक बार वो क्वेश्चन आप लोगों को दिखा देता हूं क्योंकि वो क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। वो ऐसा कोई खास लॉजिकल क्वेश्चन नहीं है, वो क्वेश्चन मैथमेटिक्स पे बेस्ड है। तो मैं आपको क्वेश्चन दे देता हूं, आप लोग क्वेश्चन ट्राई करो और अगर क्वेश्चन नहीं होगा तो आप लोग मेरी बल्क मॉडुलस की जो स्पेसिफिक वीडियो है वो देख लेना, उसमें मैंने वो क्वेश्चन कराया हुआ है। सो जस्ट अ सेकेंड, मैं आप लोगों को वो क्वेश्चन दिखा देता हूं। सो बल्क मॉडुलस का एक वीडियो था, उसमें हमने ये सारे क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, उस टाइप के सारे क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। सो दिस इज द क्वेश्चन। ओके, सो ये बस मैथमेटिक्स पे बेस्ड है, इसमें ऐसे कोई खास कंसेप्ट नहीं लग रहा है, थोड़ा सा मैथमेटिक्स लगाना है इसमें बस, और कुछ नहीं है। तो ये क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा और फिर कोई डाउट हो तो मुझे बताना है, ठीक है। अगर कोई भी डाउट लगे तो मुझे बताना है कि क्वेश्चन सॉल्व हुआ या नहीं हुआ है। ओके, तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव अ लिटिल अहेड। वैसे इस लेवल ऐसा क्वेश्चन अभी तक आया नहीं है गेट एग्जाम में, मगर मान लो आ भी जाए तो आप आराम से कर पाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस का मतलब है टेम्परेचर कांस्टेंट है, आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस का मतलब है टेम्परेचर कांस्टेंट है।
हाँ, मतलब अगर प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाए तो लिक्विड भी कंप्रेसिबल बन जाता है, क्योंकि लिक्विड की जो डेंसिटी चेंजेस हैं वो सिग्निफिकेंट हो जाती हैं, फिर उनको इग्नोर नहीं किया जा सकता। है ना। तो एक बार भविन एग्जाम्पल लेके बताया था, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है कि किन को बताया था, मगर एग्जाम्पल लेके बताया था कि ये देखो, अगर प्रेशर 100 एटमॉस्फेयर चेंज कर रहा है तो डेंसिटी ऑफ वाटर सिर्फ इतना चेंज हो रहा है, तो ये तो नेग्लिजिबल है। मगर अगर प्रेशर 500 एटमॉस्फेयर हो गया तो डेंसिटी का वाटर 15 केजी पर मीटर क्यूब चेंज कर गया। सो दिस इज अ सिग्निफिकेंट वैल्यू, तो इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। Now let's move on to the next property. Next property पे चलते हैं। So guys, जब भी हम flow properties की बात करते हैं, so flow properties means all the properties which help us in calculation of forces. So there is density, there is bulk modulus, there is pressure also. Yes, there is pressure also and there is velocity also. तो इस पे हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फटाफट से कर देंगे। So हमें पता है कि जब भी हम सॉलिड बॉडीज की बात करते हैं तो सॉलिड बॉडीज में जो नॉर्मल स्ट्रेस होता है दैट कैन बी टेंसाइल और कंप्रेसिव। इन सॉलिड बॉडीज द नॉर्मल स्ट्रेस कैन बी टेंसाइल और compressive. So I am talking of normal stress only. But in fluid masses, that is liquid and gas, the normal stress is always compressive. The normal stress is always compressive because you can never pull with water. आप पानी से पुल नहीं कर सकते, आप पानी से पुश ही कर सकते हैं। Now in solid mechanics, tensile stress is positive, compressive stress is negative, but in fluid there is only compressive stress. Fluid में सिर्फ compressive stress होता है, तो ये compressive stress को हम positive लिखते हैं और इसको pressure कहते हैं, ठीक है ना। So compressive stress in fluid is nothing but called as pressure. So pressure की simple unit क्या है? Pressure की simple value है, pressure का simple meaning है कंप्रेसिव फोर्स पर यूनिट एरिया। कंप्रेसिव फोर्स पर यूनिट एरिया, तो कंप्रेसिव स्ट्रेस को ही आप प्रेशर कहते हैं, कंप्रेसिव फोर्स पर यूनिट एरिया। नाउ प्लीज नोट, व्हेन वी टॉक ऑफ फोर्स, तो फोर्स इज न्यूटन एंड एरिया इज मीटर स्क्वायर। सो इफ यू टॉक ऑफ यूनिट्स इट विल बी न्यूटन पर meter square. So this is the unit. So if you simplify it, 1 Newton will be written as, so Newton is mass into acceleration. So this will become 1 kg per meter second square upon meter square. So this will become 1 kg per meter cube second square. ये आपका यूनिट बन गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इसी को आप पास्कल कहते हैं। दिस इज कॉल्ड एज पास्कल। दिस इज कॉल्ड एज पास्कल। Now right now the atmospheric air is exerting a pressure of 10 raised to power 5 Pascal on me, but can you feel it? You cannot feel it because this value is very small for you. So Pascal is a very small value. So what we do, instead of Pascal we use other terms to denote higher pressure values. So we use kilopascal. So kilopascal is 10 raised to power 3 Pascal. We use megapascal. So megapascal is 10 raised to power 6 Pascal. We use bar, which is a British term. So 1 bar is 10 raised to power 5 Pascal. And so when researchers were doing a lot of were measuring a lot of important values, they found out that the level of Pacific Ocean, Atlantic Ocean, Indian Ocean is same because they are connected to one another. So for these water bodies, the pressure at their top surface is 1 atmosphere, that is 101.325 kilopascal. This is the pressure of atmospheric air on the surface of our water bodies when the temperature is 15 degrees Celsius and there is no storm. So इस pressure value को एक unit का ही नाम दे दिया, कितना? 1 atmosphere. Then sometimes we use a term PSI. So PSI is 1 by 14.67 atmosphere. ये आपका PSI होता है, pound per square inch. This is PSI, pound per square inch. This is PSI, pound per square inch. PSI. Okay.
ठीक है, सो आपको तो क्वेश्चंस में ये वाला यूनिट यूज नहीं करने को मिलेगा, बट इफ यू गो एंड सी सम बॉर्डन ट्यूब गेज, जनरली दिस यूनिट इज यूज्ड एंड इन योर क्वेश्चंस मोस्टली these values will come into picture. These will be the units of pressure. Now the very next important term is velocity. Yes, velocity is a very important term in fluid mechanics. It is an important flow property because just a few minutes back I told you that when we talk of Euler's equation, when we talk of solving a problem, first of all we write down the Newton's second law of motion of a particle. जब भी आपको कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो आपको न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन लिखना पड़ेगा पार्टिकल का, ठीक है। अब जब आप वो इक्वेशन लिखेंगे दैट विल बी अ डिफरेंशियल इक्वेशन, सो इन दैट डिफरेंशियल इक्वेशन देयर विल बी अ लॉट ऑफ डेरिवेटिव्स, तो आप उस डिफरेंशियल इक्वेशन को डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते। सो हम क्या करते हैं, विद हेल्प ऑफ फ्लूइड काइनेमेटिक्स वी परफॉर्म सम एक्सपेरिमेंट्स and using those experiments we predict the velocity of the fluid. तो वेलोसिटी को हम एक्सपेरिमेंट से मदद से निकालते हैं। तो एक बार वेलोसिटी पता लग गया तो वेलोसिटी से एक्सेलरेशन आ जाएगा, वेलोसिटी से विस्कस स्ट्रेस आ जाएगा। अब उन चीजों को हम हमारी इक्वेशन में डालेंगे। सो हमारी इक्वेशन क्या है, प्रेशर फोर्स प्लस विस्कस फोर्स प्लस वेट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। सो वंस यू नो द वेलोसिटी यू विल गेट द एक्सेलरेशन, वंस यू नो द वेलोसिटी यू विल गेट विस्कस फोर्स। नाउ देयर इज ओनली वन अननोन दैट इज प्रेशर, तो आपका प्रेशर भी निकल जाएगा, ठीक है ना। हाँ भविन, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। सो इफ यू कन्वर्ट बार इनटू पीएसआई देन यू विल गेट योर आंसर। अगर बार को पीएसआई में कन्वर्ट करते हैं तो हमें आपके वाला आंसर मिलेगा, बिल्कुल सही है, ठीक है। चलो फिर वेलोसिटी की बात कर लेते हैं फटाफट, वो तो बहुत सिंपल है। सो हम लोग क्या करेंगे, हमें पता है वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो किसी भी पॉइंट पे जो पार्टिकल होगा उस पार्टिकल के तीन वेलोसिटी कंपोनेंट होंगे, यू आई कैप प्लस वी जे कैप प्लस डब्ल्यू के कैप। पर यूलेरियन अप्रोच में हम इन वेलोसिटी कंपोनेंट्स को इस तरीके से लिखेंगे, x, y, z, टाइम। सिमिलरली v विल बी अ फंक्शन ऑफ x, y, z, टाइम। w विल बी अ फंक्शन ऑफ x, y, z, टाइम। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग बहुत सिंपल है कि भैया मान लेते हैं स्पेस में एक पर्टिकुलर पॉइंट है x, y, z। सो दिस इज अ लोकेशन इन स्पेस लाइक इनलेट ऑफ टरबाइन। सो पार्टिकल्स क्या करेंगे, कंटिन्यूअसली इस पॉइंट से पास करेंगे। तो पहला पार्टिकल आएगा आगे बढ़ जाएगा, सेकंड पार्टिकल आएगा आगे बढ़ जाएगा। सो पार्टिकल्स इस पॉइंट से पास कर रहे हैं। सो एट अ पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट t देयर विल बी सम पार्टिकल ओवर हियर। सो व्हेन यू से वेलोसिटी एट अ पॉइंट, इसका मतलब है कि इस पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पर यहां जो भी पार्टिकल है उसका वेलोसिटी क्या है, उसका वेलोसिटी है uv, ठीक है ना। तो यूलेरियन अप्रोच में ऐसे लिखना है बस। अब हम इसका इंफॉर्मेशन बाद में देखेंगे, तो ये तो बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। अभी आगे बढ़ते हैं, अब हम ध्यान देते हैं इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी पे, और वो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है, विस्कोसिटी है। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है, विस्कोसिटी है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इस पे क्वेश्चन भी आते हैं, न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, और ये प्रॉपर्टी आपके बाउंड्री लेयर फॉर्मेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ये प्रॉपर्टी आपके फ्लो थ्रू पाइप्स के फॉर्मूलाज के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। सो गाइस सिंपल सा आइडिया है। आइडिया क्या कहता है, अगर आपके पास दो सॉलिड बॉडीज हैं, देयर आर टू सॉलिड बॉडीज इन कॉन्टैक्ट, or you can say a solid is lying on the ground. So when the solid moves, there is a friction force between the solid body and the ground. तो ये फ्रिक्शन फोर्स क्यों आता है, सरफेस रफनेस के कारण। सो दिस फ्रिक्शन फोर्स इज अ रिजल्ट ऑफ सरफेस रफनेस। सो दिस इज द लॉ ऑफ नेचर। If two substances in contact, they move with respect to one another, they slide with respect to one another, there will be a friction force. Now here the friction force is a result of roughness. But if a fluid is moving with respect to a surface, so suppose there is a fluid and a fluid is moving with respect to surface, then between the fluid and the surface there will be a friction force. Now this friction force is a result of viscosity of the fluid. ये किसके कारण है, viscosity of fluid के कारण है। So basically viscosity is the property as a result of which
friction forces come into picture when we are talking of fluids. विस्कोसिटी वो प्रॉपर्टी है जिसके कारण फ्रिक्शन फोर्स पिक्चर में आती है जब हम फ्लूइड मोशन की बात करते हैं. सो वेदर द फ्लूइड इज मूविंग विद रिस्पेक्ट टू अ सॉलिड और फ्लूइड इज मूविंग विद रिस्पेक्ट टू अनदर फ्लूइड. तो जैसे वाटर इन द पाइप, सो फ्लूइड एंड सॉलिड, एयर ओवर वाटर, सो फ्लूइड एंड लिक्विड, एक गैस एंड लिक्विड. ठीक है ना. तो जब भी दो फ्लूइड्स के बीच में रिलेटिव मोशन होता है या वन फ्लूइड एंड अ सॉलिड दे हैव अ रिलेटिव मोशन, then friction is produced and it is produced as a result of viscosity of the fluid. Now please note, there are many important factors that decide the viscosity of a liquid or a gas. That is the molecular structure, that is the molecular packing, that is the branches in the molecules. ठीक है, बहुत सारी चीजों पे विस्कोसिटी डिपेंड करती है. टेम्परेचर ऑफ द गैस एंड लिक्विड, प्रेशर ऑफ द गैस एंड लिक्विड. बट वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट द केमिस्ट्री ऑफ विस्कोसिटी. वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट द केमिकल रीजन ऑफ विस्कोसिटी. We are going to talk about the effects of viscosity. हमें क्या समझना है कि विस्कोसिटी का क्या इफेक्ट है. ठीक है. And that effect is called as boundary layer. It is called as what? Boundary layer. So let us understand the physical effect of viscosity. तो हम ना इसका फिजिकल इफेक्ट देखेंगे. सो सबसे पहले आप लिख सकते हैं, सो विस्कोसिटी is the property because of which friction comes into picture. So friction मतलब shear stress. Friction comes into picture when a fluid moves with respect to a solid or another fluid in contact. A solid or another fluid in contact. ठीक है ना. ये तो हो गया सिंपल डेफिनेशन, बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन. मगर अगर न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी के अकॉर्डिंगली लिखना हो तो आप क्या बोलेंगे कि ऐसे बोलेंगे क्या बोलेंगे, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी के अकॉर्डिंगली बोलेंगे du by dy is equal to tau by mu. अब ये टाउ क्या है, एक्सटर्नल शेयर स्ट्रेस, म्यू क्या है, डायनेमिक विस्कोसिटी, और du by dy क्या है, रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन. So what you will say, dynamic viscosity is the resistance of the fluid to continuous deformation when external shear stress is applied on it. So you will say it is the resistance of fluid, to continuous deformation. Phi dot means continuous deformation. Resistance of fluid to continuous deformation when external shear stress is applied on it. It is resistance of fluid to continuous deformation when external stress is applied on it. When external stress is applied on it. External stress, कौन सा external stress? Shear stress. When external shear stress is applied on it. So आप ये भी एक डेफिनेशन लिख सकते हैं इसकी, ठीक है ना. और चाहो तो एक और डेफिनेशन भी लिख सकते हो. फिर आप क्या कहोगे, टाउ इज इक्वल टू म्यू डी यू बाई डी वाई. सो आप कहोगे इट इज द प्रॉपर्टी बिकॉज ऑफ विच इंटरनल स्ट्रेसेस आर इंड्यूस्ड व्हेन अ फ्लूइड इज सब्जेक्टेड टू कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन. जब एक फ्लूइड में कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन होती है तो विस्कोसिटी के कारण इंटरनल स्ट्रेसेस पैदा होते हैं. तो इस तरह से कोई भी डेफिनेशन लिख सकते हो.
पर आप टेंशन ना लो, आपके लिए ये डेफिनेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके लिए विस्कोसिटी का केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट नहीं है, चाहे सिविल हो, मैकेनिकल हो या एक्सी हो। आपके लिए पता है क्या इंपॉर्टेंट है? आपके लिए इंपॉर्टेंट है व्हाट आर द फिजिकल इफेक्ट्स ऑफ विस्कोसिटी, एंड दैट इज बाउंड्री लेयर फॉर्मेशन। सो आप बोलोगे फिजिकल इफेक्ट ऑफ विस्कोसिटी, दैट इज बाउंड्री लेयर फॉर्मेशन। फिजिकल इफेक्ट ऑफ विस्कोसिटी, दैट इज बाउंड्री लेयर फॉर्मेशन। और जरा ध्यान से देखना, क्योंकि मैं डिफाइन करने वाला हूं बाउंड्री लेयर थिकनेस, मैं डिफाइन करूंगा वॉल शियर स्ट्रेस, ड्रैग फोर्स, स्किन फ्रिक्शन कोएफिशिएंट, ड्रैग कोएफिशिएंट, ये सारी टर्म्स डिफाइन करने वाला हूं, तो बिल्कुल ध्यान से रिवाइज करना है। फिजिकल इफेक्ट ऑफ विस्कोसिटी यानी कि बाउंड्री लेयर फॉर्मेशन। बाउंड्री लेयर फॉर्मेशन, आप हमेशा सोचते होंगे कि सर किसी भी किताब में बाउंड्री लेयर जो है विस्कोसिटी में नहीं पढ़ाया जाता, कोई भी टीचर बाउंड्री लेयर विस्कोसिटी में नहीं पढ़ाते, तो आप क्यों करते हो? आप क्या शाणे हो? दरअसल बात पता है क्या है, ऐसा इसलिए करता हूं क्योंकि बाउंड्री लेयर क्या है, वो विस्कोसिटी का ही इफेक्ट है ना। इससे आपके ना कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं थर्ड चैप्टर और फोर्थ चैप्टर में, तो मुझे कुछ कॉन्सेप्ट समझाने में आसानी रहती है, इसलिए यहां पे कराता हूं। नहीं तो आप मेरे को बार बार पूछोगे सर u जो है, u तो x कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी है, तो वो y का फंक्शन कैसे होगा? वो विस्कोसिटी के कारण होगा। तो आपका ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये एलिमिनेट हो जाता है, दैट्स व्हाई बाउंड्री लेयर फॉर्मेशन। Now guys, to understand this, what we have as always, मैं वही वाला फिगर बनाने वाला हूं जो मैं हमेशा बनाता हूं, So we have a horizontal flat plate. हमारे पास क्या है? एक horizontal flat plate है ABCD. Now this horizontal flat plate is defined by Cartesian coordinate system. So X, Y and Z. Okay. And what we have water which is moving over the plate along the X direction. हमारे पास क्या है? हमारे पास पानी है जो इस प्लेट पे मूव कर रहा है along the X direction. Now what we will do, we will look at the figure along the negative z axis. किसके along देखेंगे? Negative z axis के along देखेंगे. So this will become the axis of view. This will become axis of view. So when you will see along the negative z axis for the plate, you will see only the side AB and you will see x and y direction. आपको सिर्फ AB दिखाई देगा और x y direction दिखाई देगी. So what you will do, you will mark your coordinate system in this manner. ये आपका coordinate system बन जाएगा. This is your x direction, this is your y direction and this is the plate. This will be the plate. So you will see A point and B point. C point will hide behind B or D point will hide behind A. Now what we have water which is approaching the plate. हमारे पास क्या है? पानी जो कि प्लेट को अप्रोच कर रहा है. पानी प्लेट को अप्रोच कर रहा है, प्लेट को अप्रोच कर रहा है. सो पानी प्लेट को अप्रोच कर रहा है ऐसे ऐसे, ठीक है ना? राइट? ओके. नाउ what I have done is actually I have shown a cross section. मैंने क्या किया है? मैंने एक क्रॉस सेक्शन दिखाया है. ये वाली जो लाइन है ना, ये वर्टिकल लाइन, this vertical line is nothing but a cross section. So you can ask, sir, how will a cross section look like? So cross section means the section of the flow perpendicular to the flow direction. तो x is the flow direction. So section of the flow field perpendicular to x direction. ये आपका क्रॉस सेक्शन है. तो ये मैंने क्रॉस सेक्शन दिखा दिया. Now, what we are doing is we are assuming that before the fluid reaches over the plate, the flow is uniform. हम क्या assume कर रहे हैं कि before पानी जो है वो सरफेस पे पहुंचेगा, फ्लो यूनिफॉर्म है. अब फ्लो यूनिफॉर्म होने का मतलब क्या है? यूनिफॉर्म होने का मतलब है कि हमारे क्रॉस सेक्शन पे हम कोई भी पॉइंट ले लें, सभी पॉइंट्स पे जो वेलोसिटी है वो सेम है. वेलोसिटी कितना है? 5 मीटर पर सेकेंड. से फॉर एग्जांपल वेलोसिटी कितना है? 5 मीटर पर सेकेंड. तो इन सभी पॉइंट्स पे जो पार्टिकल्स हैं वो 5 मीटर पर सेकेंड के साथ मूव कर रहे हैं. तो जब सभी पार्टिकल्स सेम वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं तो उनके बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं होगा. रिलेटिव मोशन नहीं होगा तो विस्कोसिटी के कारण फ्रिक्शन फोर्स भी नहीं आएगा. दिस इज द इनिशियल assumption. Initial assumption is that the flow is uniform before the fluid reaches the plate. तो ये सभी पार्टिकल सेम वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं, that is 5 मीटर पर सेकेंड.
So when all these particles will reach over here, they will have a speed of 5 meter per second. तो इन सभी particles का speed कितना है? 5 मीटर पर सेकेंड. इसका मतलब क्या है? ये जो फिगर बनाया, ये जो नंबर लिख दिया, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है इस पॉइंट पे जो भी पार्टिकल है उसकी स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड है. पॉइंट पे जो भी पार्टिकल है उसकी स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड है. अब जैसे ये पार्टिकल्स आगे बढ़ेंगे, आई थिंक बॉटम मोस्ट पार्टिकल विल कम इन कॉन्टैक्ट विद द सॉलिड सरफेस. मगर आप सभी को पता है कि एक कंडीशन होती है नो स्लिप कंडीशन. नो स्लिप कंडीशन क्या कहती है? कि जो पार्टिकल सॉलिड सरफेस के साथ कांटेक्ट में है उनकी वेलोसिटी जीरो है. तो ये मैं पार्टिकल नहीं दिखा रहा हूं, ये मैं पार्टिकल की वेलोसिटी यानी कि जीरो वैल्यू दिखा रहा हूं. यहां जो पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी जीरो है, जीरो वेलोसिटी है. ठीक है. अब जरा एक काम करो, ये तो आपकी फर्स्ट लेयर ऑफ पार्टिकल्स थी. जैसे ही फर्स्ट लेयर ऑफ पार्टिकल्स आगे बढ़ेगी ये इमीडिएटली जीरो पे आ जाएगी. मगर जरा नेक्स्ट लेयर ऑफ पार्टिकल्स की बात करो. सो इन लेयर्स को ना नाम दे देते हैं, ए, बी, सी, डी. ऐसे बोलने में आसानी रहेगी. या फिर ए तो यहां यूज कर लिया, पी, क्यू, आर, एस, यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू ऐसे लिख देता हूं. आप मत लिखो, ठीक है? आप ये पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी मत लिखो. अब देखो, पहले P और Q के बीच में कोई रिलेटिव मोशन है क्या? नहीं है. कोई रिलेटिव मोशन नहीं है तो फ्रिक्शन फोर्स भी नहीं होगी, विस्कोसिटी का इफेक्ट भी नहीं होगा. तो Q जो है विदाउट फ्रिक्शन यानी कि सेम स्पीड पे आगे बढ़ जाएगा. उसी तरह Q और R के बीच में कोई फ्रिक्शन फोर्स है? नहीं. R और S के बीच में फ्रिक्शन फोर्स? नो. T और U के बीच में? नो. तो इन पार्टिकल्स के बीच में कोई भी फ्रिक्शन फोर्स नहीं है तो ये सेम स्पीड पे आगे बढ़ जाएंगे. तो जब ये पार्टिकल्स आगे मूव करेंगे इनकी स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड. कितनी स्पीड है? 5 मीटर पर सेकेंड. मगर अब एक चीज नोट करो, P और Q इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन आ गया. जैसे इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन आया, इन दोनों के बीच में एक फ्रिक्शन फोर्स आ जाएगा विस्कोसिटी के कारण. तो जो पार्टिकल फास्ट है उस पे फ्रिक्शन फोर्स लगेगा पीछे और जो पार्टिकल स्लो है उस पे फ्रिक्शन फोर्स लगेगा आगे. अब ये जो बॉटम मोस्ट पार्टिकल है इस पे फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है आगे, मगर ग्राउंड क्या करेगा, प्लेट क्या करेगी, फ्रिक्शन फोर्स लगाएगी पीछे. तो ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस आउट कर देंगे, तो घबराने की जरूरत नहीं है. बट जब प्लेट ने पार्टिकल पे फ्रिक्शन फोर्स लगाई तो पार्टिकल भी प्लेट पे फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा, तो पार्टिकल पे प्लेट पे फ्रिक्शन फोर्स लगेगा आगे. तो ये जो प्लेट पे फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है यही आपका ड्रैग फोर्स होता है, यही आपका वॉल शियर स्ट्रेस होता है. ठीक है, तो अभी भूल जाओ. अच्छा, अब Q पार्टिकल पे फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है पीछे की तरफ. तो जब Q पार्टिकल पे फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है पीछे की तरफ, Q पार्टिकल स्लो डाउन हो जाएगा. तो जब Q पार्टिकल स्लो डाउन हो जाएगा, Q पार्टिकल आगे बढ़ेगा तो उसकी स्पीड घटती जाएगी. जैसे जैसे Q पार्टिकल आगे बढ़ेगा Q पार्टिकल की स्पीड जो है वो कम होती जाएगी. अच्छा, मैं ना आपको एक चीज बताना भूल गया और वो है पार्टिकल की डेफिनेशन. मैं आपको एक चीज बताना भूल गया कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिन्यूम में, और वो है पार्टिकल की डेफिनेशन. दरअसल मैंने आपको पॉइंट बताया ना, तो पॉइंट का मतलब क्या होता है? 1 माइक्रोमीटर क्यूब. पॉइंट का मतलब क्या होता है? 1 माइक्रोमीटर क्यूब. और पार्टिकल का मतलब क्या होता है? पार्टिकल का मतलब होता है द ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स विच ऑक्यूपाई अ पॉइंट. तो ये जो ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स है ये ऑलमोस्ट 3 करोड़ के बराबर होता है, इस ऑर्डर का होता है. समझ रहे हैं आप? फ्लूइड मैकेनिक्स में पार्टिकल का मतलब मॉलिक्यूल नहीं होता है. फ्लूइड मैकेनिक्स में पार्टिकल का मतलब होता है ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट ऑक्यूपाई अ पॉइंट. क्यों? क्योंकि वो ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स हमेशा इकट्ठे ही रहने की कोशिश करते हैं, इसीलिए. ठीक है. अच्छा, अब यहां पे Q और R की बात करो तो अभी तो Q और R के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं है तो कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं आएगा. तो R तो एज इट इज सेम स्पीड के साथ आगे बढ़ जाएगा. उसी तरह TS भी सेम स्पीड के साथ आगे बढ़ जाएगा. T भी, U भी, V भी और W भी. मगर जैसे ही ये पार्टिकल्स आगे आए, R और Q के बीच में रिलेटिव मोशन है तो R और Q के बीच में भी फ्रिक्शन फोर्स आएगा. सो R भी स्लो डाउन होगा. तो जैसे जैसे R आगे बढ़ेगा
आर की स्पीड कम होती जाएगी एंड आई थिंक द सेम थिंग विल हैपन विद अदर पार्टिकल्स ऑल्सो। तो आप क्या कीजिए, आप अपनी कॉपीज में ये फिगर कंप्लीट कर लीजिए, अपनी कॉपीज में ये फिगर कंप्लीट कर लीजिए, सारी नंबर वैल्यूज लिख लीजिए और मैं भी कंप्लीट कर लेता हूं फिगर। सारी नंबर वैल्यूज लिख लीजिए और मैं भी फिगर कंप्लीट कर लेता हूं। तो पहले कंप्लीट कर लो फिर आगे बात करते हैं। कंप्लीट कर लो फिर आगे बात करते हैं। कंप्लीट कर लो फिर आगे बात करते हैं। ओके, सो गाइस कंप्लीट द फिगर एंड डू लेट मी नो अगर फिगर में कोई डाउट है तो। काइंडली कंप्लीट द फिगर एंड डू लेट मी नो अगर फिगर में कोई डाउट है तो। काइंडली कंप्लीट द फिगर एंड डू लेट मी नो अगर फिगर में कोई डाउट हो तो। सो आई होप द फिगर इज कंप्लीट। भवेन, शुभम, ऋषभ, जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं गाइस जल्दी से बताएंगे फिगर कंप्लीट हो गया। अगर फिगर कंप्लीट हो गया तो हम आगे बढ़ते हैं, अगर फिगर कंप्लीट हो गया तो हम आगे बढ़ेंगे। अच्छा, मेरे ख्याल से कर लिया होगा अब तक। सो चेक करो गाइस, चेक करो। नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल टेक टू क्रॉस सेक्शंस। जैसे say for example this cross section x1. Now at this cross section I will draw the velocity profile. So what is velocity profile? Velocity profile is velocity at a point in form of arrow. किसी भी पॉइंट पे जो velocity होती है एरो की फॉर्म में। अब देखो इस पॉइंट पे velocity कितना है, 5 मीटर पर सेकेंड है, तो यहाँ पे 5 मीटर पर सेकेंड का एरो मार्क कर देंगे। यहाँ पे velocity कितना है, 5 मीटर पर सेकेंड। velocity कितना है, 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड। तो ऐसे velocity प्रोफाइल जा रहे हैं। मगर जैसे ही इस पॉइंट पे पहुंचे तो इस पॉइंट को कुछ नाम दे देते हैं। क्या नाम दे देते हैं, एल नाम दे देते हैं। से फॉर एग्जांपल एल नाम दे देते हैं। अब जैसे ही इस पॉइंट पे पहुंचे, इस पॉइंट के जो नीचे पॉइंट्स हैं, तो यहां वेलोसिटी है 4.8, तो एरो की लेंथ छोटी हो जाएगी। यहां वेलोसिटी है 4.6, एरो की लेंथ और छोटी हो जाएगी। और यहां वेलोसिटी है 0, तो आपका वेलोसिटी प्रोफाइल ऐसे जाएगा। सिमिलरली अगर हम एक और क्रॉस सेक्शन लेंगे, जैसे ये वाला x2 वाला, यहां भी हमने एक क्रॉस सेक्शन बनाया, यहां भी वेलोसिटी प्रोफाइल लेंगे, वेलोसिटी प्रोफाइल लेंगे और वेलोसिटी प्रोफाइल ड्रॉ करेंगे, तो अगेन आपको वेलोसिटी प्रोफाइल कुछ ऐसा दिखाई देगा और आपको एक पॉइंट मिलेगा L, आपको एक पॉइंट मिलेगा L। सो दिस इज L1, इसको बोल देता हूं L1 और इसको बोल देता हूं L2। सो मुझे पता है थोड़ा सा दिक्कत आ रहा होगा, मगर अब इस फिगर को साफ सुथरा अलग से बना लेते हैं। इस फिगर को साफ सुथरा अलग से बना लेते हैं, घबराना नहीं है। अब इस फिगर को सेपरेटली ड्रॉ कर लेते हैं। अब आप क्या बोलेंगे, अब आप बोलेंगे कि सर ये देखो सर, एक बहुत मजेदार चीज दिखाई दे रही है। क्या मजेदार चीज दिखाई दे रही है, ये हमारे पास फ्लैट प्लेट है
ये हमारे पास फ्लैट प्लेट है और ये पानी है जो फ्लैट प्लेट को अप्रोच कर रहा था विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। दरअसल होगा क्या, जैसे ही पानी सॉलिड सरफेस पे पहुंचेगा तो नो स्लिप कंडीशन के कारण जो लोअर मोस्ट लेयर है ये तो इमीडिएटली रेस्ट पे आ जाएगी, ठीक है, मगर ऊपर की लेयर तो अभी भी मूव कर रही थी, तो इस लेयर और लोअर मोस्ट लेयर के और सेकंड लेयर के बीच में विस्कोसिटी के कारण फ्रिक्शन फोर्स आएगी। तो ये लेयर क्या करेगी, सेकंड लेयर को स्लो डाउन करेगी, फिर सेकंड लेयर थर्ड लेयर को स्लो डाउन करेगी, थर्ड लेयर फोर्थ लेयर को स्लो डाउन करेगी और इस तरह से प्रोसेस बढ़ता जाएगा। सो अगर हम कोई भी दो सेक्शन ले लें और उन दो सेक्शंस पे वेलोसिटी प्रोफाइल बनाए तो वो वेलोसिटी प्रोफाइल हमें कुछ ऐसे दिखाई दे रही है। सो दिस इज योर सेक्शन 1, दिस इज योर सेक्शन 1, दिस इज योर सेक्शन 2। तो इन दो सेक्शंस पे हमें वेलोसिटी प्रोफाइल ऐसे दिखाई दे रही है, ए ऐसे। ये आपका सेक्शन 1 का वेलोसिटी प्रोफाइल है, ये आपका सेक्शन 1 का वेलोसिटी प्रोफाइल है और सेक्शन 1 पे हमें एक पॉइंट दिखाई दिया L1, हमें एक पॉइंट दिखाई दिया L1। दरअसल L1 के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं सभी पॉइंट्स पे वेलोसिटी सेम है, कितना, 5 मीटर पर सेकंड का। तो 5 मीटर पर सेकंड के साथ अप्रोच कर रहे थे, U0 के साथ अप्रोच कर रहे थे, तो L1 के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं सब जगह वेलोसिटी सेम है U0। मगर L1 से नीचे चले जाएं तो जो पार्टिकल सरफेस के पास है उसकी वेलोसिटी कम है, जो पार्टिकल सरफेस से दूर है उसकी वेलोसिटी ज्यादा है, ठीक है ना। अब सिमिलर सिनेरियो हमें सेक्शन 2 पे भी मिल रहा है। तो सेक्शन 2 पे हमें क्या दिखाई दे रहा है, हमें दिखाई दे रहा है कि एक पॉइंट है L2 से ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं सभी पॉइंट्स पे वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड है, यानी कि U0। मगर L2 के नीचे की बात करें तो आपको वेलोसिटी ऐसे दिखाई देगी, जो पॉइंट सरफेस के पास है वहां वेलोसिटी ज्यादा और जो पॉइंट सरफेस से दूर है, जो पॉइंट सरफेस के पास है वहां वेलोसिटी कम और जो पॉइंट सरफेस से दूर है वहां वेलोसिटी ज्यादा, है ना, ऐसा ही है। इसका मतलब हर सेक्शन के लिए एक L पॉइंट होगा। तो जब उन सभी सेक्शंस के L पॉइंट्स का लोकस ले लेंगे, सभी सेक्शंस के L पॉइंट का लोकस ले लेंगे तो वो लोकस हमें कुछ ऐसा दिखाई देगा, ये हमें लोकस दिखाई देगा, ठीक है ना। अब ये लोकस क्या कह रहा है, लोकस ये कह रहा है कि कोई भी रैंडम सेक्शन बना लो, कोई भी रैंडम सेक्शन बना लो और इस रैंडम सेक्शन के ऊपर एक पॉइंट लो, पॉइंट का बॉटम से डिस्टेंस है y और पॉइंट पे जो वेलोसिटी है वो है u। अगर तो ये पॉइंट रेड लाइन से नीचे है तो ये वेलोसिटी y का फंक्शन होगी, क्यों, क्योंकि अगर y ज्यादा है तो वेलोसिटी भी ज्यादा है। और अगर ये पॉइंट रेड लाइन के बाहर है तो ये वेलोसिटी y का फंक्शन नहीं होगी, क्योंकि सभी जगह वेलोसिटी सेम है। सो ये रेड लाइन क्या कर रही है, दरअसल फ्लो रीजन को दो हिस्सों में बांट रही है। ऊपर वाला हिस्सा फ्री स्ट्रीम कहलाता है, जहां पे u y का फंक्शन नहीं होता, वेलोसिटी एट अ पॉइंट इज नॉट अ फंक्शन ऑफ y। व्हाट इज y, डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस। और नीचे वाला रीजन बाउंड्री लेयर कहलाता है, वेयर वेलोसिटी एट अ पॉइंट इज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द सॉलिड सरफेस। तो ये आपका बाउंड्री लेयर कहलाता है। तो इस तरह से विस्कोसिटी के कारण हमें दो रीजन दिखाई देते हैं, एक रीजन हमारा होता है फ्री स्ट्रीम और दूसरा रीजन हमारे पास होता है बाउंड्री लेयर। ये सुन लो गाइस, प्लीज डू लेट मी नो, इज दैट क्लियर, क्या मैंने सही बनाया है या कोई मिस्टेक किया है, एक बार जल्दी से बता दीजिए, एक बार जल्दी से बता दीजिए प्लीज, जल्दी से बता दीजिए। तो जब भी कोई वेलोसिटी कंपोनेंट, जब भी एक वेलोसिटी कंपोनेंट, तो ये कौन सा वेलोसिटी कंपोनेंट है, एक्स डायरेक्शन का वेलोसिटी कंपोनेंट है। तो अगर एक्स डायरेक्शन का वेलोसिटी कंपोनेंट परपेंडिकुलर कोऑर्डिनेट का फंक्शन है, वो बाउंड्री लेयर फॉर्मेशन बता रहा है। वो क्या चीज बता रहा है, बाउंड्री लेयर फॉर्मेशन बता रहा है। से फॉर एग्जाम्पल वो कह रहे हैं कि v इज अ फंक्शन ऑफ x, v इज अ फंक्शन ऑफ x। इसका मतलब क्या होगा, यहां पे एक सॉलिड सरफेस है, यहां पे एक सॉलिड सरफेस है और x का मतलब हो जाएगा डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द सॉलिड सरफेस, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द सॉलिड सरफेस।
ठीक है ऑल ऑफ यू। तो अगर ये सही है, अगर ये समझ आ गया है, तो बाउंड्री लेयर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लेते हैं। क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आएंगे बाउंड्री लेयर से रिलेटेड? सबसे पहले तो एक पॉइंट आएगा बाउंड्री लेयर थिकनेस। क्या पॉइंट आएगा? बाउंड्री लेयर थिकनेस पॉइंट आएगा। बाउंड्री लेयर थिकनेस पॉइंट आएगा। इनफैक्ट ऐसे मत चालू करो, ऐसे मत चालू करो, ऐसे चालू करो, ऐसे मत चालू करो, ऐसे चालू करो। सो हमारे पास क्या है? हमारे पास एक फ्लैट प्लेट है। सो ये जरूरी नहीं कि फ्लैट प्लेट ही हो भैया, हॉरिजॉन्टल हो सकती है, वर्टिकल प्लेट हो सकती है, पाइप हो सकती है, कोई भी सॉलिड सरफेस हो सकता है। और उस सॉलिड सरफेस के अक्रॉस एक फ्लूइड मूव कर रहा है। सो हमें भी पता है कि हमें एक रेड लाइन दिखाई देगी, इमेजिनरी लाइन। ये रेड लाइन किसी फ्लूइड पार्टिकल का पाथ नहीं है। रेड लाइन के ऊपर जो रीजन होता है उसको बोलते हैं फ्री स्ट्रीम, और रेड लाइन के नीचे जो रीजन होता है उसको बोलते हैं बाउंड्री लेयर। ठीक है ना? अब थोड़ा सा रेड लाइन को अलग तरीके से बनाओ। तो रेड लाइन को ऐसे दिखा दो, ऐसे दिखा दो। ठीक है? दरअसल होता क्या है कि जहां भी बाउंड्री लेयर फॉर्मेशन हो रहा हो, और अगर ये फ्लो डायरेक्शन है एक्स, तो बाउंड्री लेयर का जो इनिशियल पोर्शन होता है वो हमेशा लेमिनार फ्लो होता है। कैसा फ्लो होता है? लेमिनार फ्लो होता है। और ये जो फ्लक्चुएशन सी दिखाई है, ये फ्लक्चुएशन हो जाएगी ट्रांजिशनल फ्लो। किस तरह की फ्लक्चुएशन? इसको क्या बोलेंगे? ट्रांजिशनल फ्लो बोलेंगे। तो आपको पता ही है लेमिनार फ्लो का मतलब है फ्लूइड पार्टिकल्स लेयर की फॉर्म में मूव कर रहे हैं, ऐसे लेयर्स की फॉर्म में मूव कर रहे हैं। फ्लूइड पार्टिकल्स एक दूसरे के ऊपर स्मूथली स्लाइड कर रहे हैं, लेयर्स की फॉर्म में मूव कर रहे हैं पार्टिकल्स। ठीक है ना? ये लेयर फॉर्मेशन हो गया। सो यहां तो आपको मिलता है लेमिनार फ्लो। मगर ट्रांजिशनल फ्लो में क्या होता है? लेयर्स थोड़ा थोड़ा फ्लक्चुएट करने लग जाती हैं, तो पार्टिकल्स ऐसे मूव कर रहे होते हैं। और फिर उसके बाद का जो फ्लो होता है वो टर्बुलेंट होता है, क्योंकि पार्टिकल्स जो हैं वो हाईली रैंडम फैशन में मूव करते हैं। कोई पार्टिकल्स ऊपर, कोई पार्टिकल नीचे, कोई पार्टिकल आगे, कोई पार्टिकल पीछे। इस तरह से आपको टर्बुलेंट फ्लो दिखाई देता है। और टर्बुलेंट फ्लो और सॉलिड सरफेस के बीच में एक रीजन आता है जिसको हम लेमिनार सब रीजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेमिनार सब रीजन बोलते हैं। लेमिनार सब रीजन बहुत पतला होता है, मगर यहां पे फ्लो लेमिनार होता है। क्यों? क्योंकि सरफेस पास होने के कारण टर्बुलेंस कम हो जाती है, इसीलिए लेमिनार सब लेयर, लेमिनार सब लेयर। ठीक है? अब आप बोलोगे सर पता कैसे लगेगा कि कौन सा सेक्शन लेमिनार फ्लो है, कौन सा सेक्शन टर्बुलेंट फ्लो है? सो हमारे जो प्रिय मित्र थे ऑसबॉर्न रेनॉल्ड्स, ऑसबॉर्न रेनॉल्ड्स ने क्या बोला? प्रिय मित्र तो मैंने ऐसे बोला जैसे पड़ोसी हैं हम उनके। तो ऑसबॉर्न रेनॉल्ड्स साहब जो है, तो उन्होंने बोला मान लो x डिस्टेंस पे एक क्रॉस सेक्शन है, तो हम क्या करेंगे? इस सेक्शन का रेनॉल्ड्स नंबर लिखेंगे। रेनॉल्ड्स नंबर कैसे लिखते हैं? डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड बाय डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड इनटू द फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी इनटू डिस्टेंस ऑफ द सेक्शन। तो इस पर्टिकुलर सेक्शन का जिसका डिस्टेंस है x, कितना डिस्टेंस है x? कहां से? लीडिंग एज से। इस एज को आप बोलते हैं लीडिंग एज, लीडिंग एज, लीडिंग एज। और इस एज को आप बोलते हैं ट्रेलिंग एज। प्लेट की जो दूसरी साइड होती है जहां से पानी लीव करता है सरफेस को, उसको आप बोलते हैं ट्रेलिंग एज। और जो प्लेट की फ्रंट साइड है जहां पे पानी चढ़ता है सरफेस पे, उसको आप बोलते हैं लीडिंग एज। सो वो बोलते हैं लीडिंग एज से अगर x डिस्टेंस पे एक सेक्शन है तो उस सेक्शन का रेनॉल्ड्स नंबर निकालो। अगर ये रेनॉल्ड्स नंबर जो कि एक डायमेंशनलेस नंबर है, रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स टू विस्कस फोर्स है, अगर ये रेनॉल्ड्स नंबर 2 लाख से कम है तो आपका फ्लो लेमिनार होता है। अगर ये रेनॉल्ड्स नंबर 2 लाख से लेकर 5.5 लाख के बीच में है तो आपका फ्लो होता है टर्बुलेंट और ट्रांजिशनल, यानी कि मिक्स कैरेक्टर। और अगर आपका रेनॉल्ड्स नंबर 5.5 लाख से ज्यादा है तो आपको मिलता है टर्बुलेंट फ्लो। क्या मिलता है? टर्बुलेंट फ्लो मिलता है, टर्बुलेंट फ्लो मिलता है। ठीक है? ये आपके पास हो गया लेमिनार, ये आपके पास हो गया ट्रांजिशनल, और ये आपके पास हो गया
टर्बुलेंट फ्लो। गाइस याद रखना है, ये जो आपने रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू लिखी है, दीज आर ओनली फॉर फ्लो ओवर फ्लैट प्लेट्स। दीज वैल्यूज आर नॉट ट्रू व्हेन यू आर टॉकिंग ऑफ फ्लो थ्रू पाइप्स। अगर फ्लो थ्रू पाइप्स की बात कर रहे हो तो ये वैल्यूज सही नहीं होंगी, ये वैल्यूज गलत हो जाएंगी, आपको बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ जाएगा, ठीक है ना। ये वैल्यूज सिर्फ फ्लो ओवर फ्लैट प्लेट्स के लिए हैं। सो ये जो मैंने पहला सेक्शन बनाया था ये वाला, सो यहां पे रेनॉल्ड्स नंबर है 2 लाख, क्योंकि इससे पहले फ्लो लेमिनार है, इसके बाद में फ्लो ट्रांजिशनल है। और ये वाला जो सेक्शन है यहां पे रेनॉल्ड्स नंबर है 5.5 लाख, क्योंकि इसके बाद फ्लो टर्बुलेंट है, ठीक है। सो दिस इज योर फर्स्ट पॉइंट, ये आपका फर्स्ट पॉइंट है। अब गाइस नेक्स्ट पॉइंट रिगार्डिंग बाउंड्री लेयर। सो अभी मैंने टर्बुलेंट फ्लो की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो नहीं बताई, वो मैं टर्बुलेंट फ्लो चैप्टर में ही बताऊंगा। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, सो ये आपके पास फ्लैट प्लेट है, ये आपके पास बाउंड्री लेयर फॉर्मेशन है, फ्लूइड वाज मूविंग अलोंग द एक्स डायरेक्शन। तो अगर आपने कोई भी सेक्शन लिया एक्स डिस्टेंस पर, तो इस सेक्शन पर बाउंड्री लेयर की जो थिकनेस आएगी, इस थिकनेस को हम बोलते हैं डेल्टा, यानी कि बाउंड्री लेयर थिकनेस। इसको आप क्या बोलते हैं, बाउंड्री लेयर थिकनेस। और हमारे पास एक बहुत बड़ा मैथमेटिशियन था ब्लेसियस नाम का। इस मैथमेटिशियन ने बोला, अगर आपका सेक्शन लेमिनार बाउंड्री लेयर में लाई कर रहा है, तो भैया आपका जो डेल्टा है दैट विल बी 5x बाय रूट REX। तो आपका जो डेल्टा है वो 5x बाय रूट REX आएगा। सर लेमिनार सबलेयर का रेनॉल्ड्स नंबर क्या होगा? ऋषभ बेटा, ये जो डिफाइन किया गया है ना, क्या कहते हैं, रेनॉल्ड्स नंबर, ये एंटायर क्रॉस सेक्शन के लिए डिफाइन किया गया है। और मेरे ख्याल से तो जो लेमिनार सबलेयर होती है वो यहीं पे ही स्टार्ट हो जाती है। लेमिनार सबलेयर ना यहीं से स्टार्ट हो जाती है। दरअसल क्या होता है, टर्बुलेंस का मतलब होता है एडी फॉर्मेशन। एडी फॉर्मेशन का मतलब है कि जैसे ये स्पेस है ना जहां फ्लूइड मूव कर रहा है, तो यहां भी एक छोटा वोर्टेक्स है कुछ मिलीमीटर के ऑर्डर का, यहां भी एक वोर्टेक्स है। तो इस तरह से थ्रू आउट द फ्लो फील्ड वोर्टेक्स फॉर्मेशन होती है। अब सरफेस के पास क्या होता है, फ्रिक्शन हाई होती है, तो ये जो वोर्टेक्स होते हैं ये एलिमिनेट हो जाते हैं, तो यहाँ पे एडीज खत्म हो जाते हैं और यहां सिर्फ लेमिनार फ्लो रह जाता है। तो ये जो आप रेनॉल्ड्स नंबर डिफाइन करते हो ना, ये एंटायर क्रॉस सेक्शन के लिए होता है। तो अगर यहां पे रेनॉल्ड्स नंबर 6 × 10⁵ आ रहा है, इसका मतलब यहां पे एक टर्बुलेंट फ्लो होगा और यहां पे लेमिनार फ्लो होगा। आपका क्वेश्चन बनना चाहिए कि सर लेमिनार सबलेयर की थिकनेस का फॉर्मूला क्या होगा, आपका क्वेश्चन ये बनना चाहिए। आप समझ रहे हैं मेरी बात? आई होप मैंने डाउट को सही क्लियर किया, कि कोई मिस्टेक नहीं किया। आई होप मैंने डाउट को सही क्लियर किया। जहां भी टर्बुलेंट फ्लो आ जाएगा वहां एक लेमिनार सबलेयर होता ही है, क्योंकि सरफेस के पास एडी फॉर्मेशन खत्म हो जाती है। सरफेस के पास फ्रिक्शन फोर्सेस हाई होती है तो एडी फॉर्मेशन खत्म हो जाती है, तो लेमिनार सबलेयर तो होती है। मगर क्वेश्चन ये है कि उस लेमिनार सबलेयर की थिकनेस कितनी होगी, जिसका फॉर्मूला अभी हमारे पास है नहीं। एक्सपेरिमेंट से पता तो लगाया गया है फॉर फ्लो थ्रू पाइप्स, मगर फ्लो ओवर फ्लैट प्लेट्स के केस में कितना है मुझे पता नहीं है। ऋषभ बेटा सही कह रहा हूं मैं, मतलब मेरे ख्याल से मैंने सही आंसर दिया है। प्लीज डू लेट मी नो इफ दिस इज करेक्ट और नॉट। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू ब्लेसियस अगर लेमिनार बाउंड्री लेयर हो तो आपके पास 5x बाय रूट REX बनता है। मगर ब्लेसियस सॉल्यूशन की कुछ एजम्पशंस हैं जो मैं अभी बताऊंगा, थोड़ी देर में बताऊंगा। अच्छा, सो ये आपके पास बन गया। थोड़ी देर में मतलब जब हम एक बार बाउंड्री लेयर चैप्टर देखेंगे ना, तब मैं दोबारा से ये सेम सॉल्यूशन लिखूंगा, डिराइव नहीं करूंगा, सिर्फ सॉल्यूशन लिखूंगा। अभी इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि आपको कंटिन्यूटी इक्वेशन नहीं पता है, वो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन कैसे यूज करते हैं वो नहीं पता है, इसलिए। अब नेक्स्ट पॉइंट, डेफिनेटली जैसे जैसे एक्स आगे बढ़ेगा तो बाउंड्री लेयर थिकनेस
बढ़ती जाएगी। अब जरा इस फॉर्मूला को देखिए, इस फॉर्मूला को आप क्या लिखेंगे, 5x बाय रूट आर ई एक्स। तो आर ई एक्स क्या बन जाएगा, रो यू नॉट एक्स बाय म्यू बन जाएगा। अब मेरे ख्याल से x बाय रूट एक्स दैट इज रूट एक्स ओनली, सो डेल्टा इज प्रोपोर्शनल टू रूट एक्स। डेल्टा किसके प्रोपोर्शनल है, रूट एक्स के प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पता है क्या बनता है, यहाँ पे क्वेश्चन बनता है और 2-3 बार पूछा गया है, एक बार सिविल में, एक बार मैकेनिकल में। ये क्वेश्चन कॉमन क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बनता है कि भैया डेल्टा इज प्रोपोर्शनल टू रूट एक्स, हमें भी पता है। वो क्वेश्चन दे देते हैं, फॉर फ्लो ओवर फ्लैट प्लेट the boundary layer thickness at 1 meter, the boundary layer thickness at 1 meter from the leading edge is 2 mm। तो वो बोल देते हैं कि अगर हम एक क्रॉस सेक्शन लें जो कि 1 मीटर है लीडिंग एज से, तो वहां पे बाउंड्री लेयर थिकनेस 2 mm है। सो वो बोल देते हैं कि एक और सेक्शन है जो कि यहां से 3 मीटर है, तो यहां का बाउंड्री लेयर थिकनेस क्या होगा। तो आप सीधा बोलोगे डेल्टा 2 बाई डेल्टा 1 इज इक्वल टू रूट x2 बाई x1। तो सीधा डेल्टा 2 क्या बन जाएगा, डेल्टा 1 बन जाएगा, रूट x2 बाय x1 बन जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मगर कई बार थोड़ा सा ट्रिकी खेल जाते हैं। ट्रिकी कैसे खेलते हैं, वो बोलते हैं अगर ये सेक्शन ए है, ये सेक्शन बी है, सो सेक्शन बी इज 2 मीटर्स डाउनस्ट्रीम ऑफ ए। तो सेक्शन बी का जो ए से डिस्टेंस है वो 2 मीटर्स है, मगर हमेशा याद रखना है जो x होता है, x इज द लीडिंग डिस्टेंस फ्रॉम लीडिंग एज। तो 2 मीटर इज नॉट द डिस्टेंस फ्रॉम लीडिंग एज, द डिस्टेंस फ्रॉम लीडिंग एज इज 3 मीटर्स। तो ये क्वेश्चन काफी कॉमन क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। और जो मैकेनिकल के बच्चे हैं उनको डेल्टा तो हीट कन्वेक्शन में भी फाइंड आउट करना पड़ता है फॉर थर्मल बाउंड्री लेयर। तो अभी कुछ दिन पहले मैंने 1-2 दिन पहले ही कन्वेक्शन के क्वेश्चन सिखाए हैं, तो उनमें ये सब क्वेश्चंस भी थे। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट। सो नेक्स्ट पॉइंट इज शेयर स्ट्रेस। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, शेयर स्ट्रेस का फॉर्मूला है। नेक्स्ट पॉइंट इज शेयर स्ट्रेस। सो हमें पता है कि एज पर न्यूटन टाउ इज इक्वल टू म्यू डी यू बाय डी वाई। ठीक है, जिसमें डी यू बाय डी वाई रिप्रेजेंट्स द रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब बहुत आसान है कि यार ये आपके पास एक फ्लैट प्लेट थी, फ्लैट प्लेट के ऊपर पानी मूव कर रहा है, तो क्या होगा, जैसे ही पानी सरफेस के कांटेक्ट में आएगा, नो स्लिप कंडीशन के कारण लोअर मोस्ट लेयर चिपक जाएगी, वो सेकंड लेयर को स्लो डाउन करेगी, सेकंड लेयर थर्ड लेयर को, और इस तरह से हमें 2 रीजन्स दिखाई देंगे, ऊपर का रीजन फ्री स्ट्रीम और नीचे का रीजन बाउंड्री लेयर। अब क्या कहते हैं, अगर आप एक क्रॉस सेक्शन ले लें, ठीक है, तो इस क्रॉस सेक्शन पे मैंने एक पॉइंट लिया जो कि y डिस्टेंस पर है। अब ये पॉइंट क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा 2 लेयर्स का इंटरफेस। तो इस पॉइंट के ऊपर जो लेयर है वो थोड़ा फास्ट मूव करेगी क्योंकि सॉलिड सरफेस से दूर है। इस पॉइंट के नीचे जो लेयर है वो थोड़ा स्लो मूव करेगी क्योंकि सॉलिड सरफेस के पास है। तो अगर हम इन 2 लेयर्स की बात करें, इन 2 लेयर्स के बीच में रिलेटिव मोशन है, और वो रिलेटिव मोशन किसके कारण है, विस्कोसिटी के कारण आई है ना। मतलब इनके बीच में एक फ्रिक्शन फोर्स भी दिखाई दे रही है। सो वो फ्रिक्शन फोर्स कैसे लगेगी, ऊपर की लेयर फास्ट है तो उस पर फ्रिक्शन फोर्स लगेगी पीछे, और नीचे की लेयर स्लो है तो उस पर फ्रिक्शन फोर्स लगेगी आगे। तो इसी फ्रिक्शन फोर्स को हम टाउ कह रहे हैं, फोर्स पर यूनिट एरिया को टाउ कह रहे हैं। तो टाउ क्या होता है, म्यू डी यू बाई डी वाई होता है। मगर बात क्या है, तो आपके पास एक कार है, आपके पास से फॉर एग्जांपल कार है, तो जब कार आगे मूव करती है तो कार के रिस्पेक्ट में हवा पीछे मूव करती है। तो ऐसा नहीं है कि आपको किसी भी रैंडम पॉइंट पे शेयर स्ट्रेस निकालना है, आपको जो शेयर स्ट्रेस निकालना है वो तो आप गाड़ी के सरफेस पे फाइंड आउट करना चाहते हैं, सॉलिड सरफेस पे फाइंड आउट करना चाहते हैं ताकि आप ड्रैग फोर्स निकाल सकें। उसी तरह आप एक बिल्डिंग का डिजाइन बना रहे हैं, आप एक स्काई स्क्रैपर डिजाइन कर रहे हैं, तो जब आप एक स्काई स्क्रैपर डिजाइन कर रहे हैं, स्काई स्क्रैपर की हाइट बहुत ज्यादा होती है तो उस पर विंड लोड बहुत ज्यादा लगता है, विंड लोड में ड्रैग फोर्स भी होती है। तो आप क्या करना चाहते हैं, आप किसी भी पॉइंट पे शेयर स्ट्रेस निकालना चाहते हैं। तो पॉइंट पे शेयर स्ट्रेस का मतलब ये नहीं कि हवा में शेयर स्ट्रेस, पॉइंट पे शेयर स्ट्रेस मतलब सॉलिड सरफेस पे शेयर स्ट्रेस। सो आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे मुझे ऐसे रैंडम किसी पॉइंट पे शेयर स्ट्रेस नहीं चाहिए, मुझे तो ये वाले पॉइंट पे शेयर स्ट्रेस चाहिए। मगर इस पॉइंट का y डिस्टेंस कितना है, इस पॉइंट का y डिस्टेंस कितना है, आई थिंक इस पॉइंट का y डिस्टेंस है 0। सो पॉइंट ऑन सॉलिड सरफेस, क्या पॉइंट है ये,
पॉइंट ऑन सॉलिड सरफेस, यानी कि y इक्वल टू 0। तो आप इस पॉइंट पे शेयर स्ट्रेस फाइंड आउट करना चाहते हैं, सो आप सीधा बोलेंगे टाउ एट y इक्वल टू 0, यानी कि म्यू du बाई dy फॉर y इक्वल टू 0। इसको हम बोलते हैं वॉल शेयर स्ट्रेस। क्या बोलते हैं? वॉल शेयर स्ट्रेस। दैट इज द शेयर स्ट्रेस ऑन द सॉलिड सरफेस। वॉल शेयर स्ट्रेस। ओके गाइस, ठीक है? इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो ये आपके पास सॉलिड सरफेस है, ये आपके पास बाउंड्री लेयर फॉर्मेशन है। अगर आप x डिस्टेंस पे एक क्रॉस सेक्शन लेंगे, इस क्रॉस सेक्शन का रेनॉल्ड्स नंबर आएगा रो यू नॉट x बाय म्यू। इस सेक्शन की जो बाउंड्री लेयर थिकनेस आएगी डेल्टा, और डेल्टा इज प्रोपोर्शनल टू रूट x। अगर लेमिनार बाउंड्री लेयर है, इस पॉइंट पे इस y डिस्टेंस पे एक पॉइंट होगा, यहां कुछ वेलोसिटी होगी, इस पॉइंट पे एक शेयर स्ट्रेस भी होगा टाउ, और अगर इस पॉइंट की बात करते हैं तो शेयर स्ट्रेस होता है टाउ w। सो ये आप फिगर छोटा सा बना के रख सकते हैं, ठीक है? अब देखो, मैंने कई बार प्रूव किया है कि भैया जैसे मैं ऐसे प्रूव करता होता हूं, तो मैं एक बार फटाफट से रफ में निकाल देता हूं। अगर आपको नहीं पता होगा तो पूछ लेना, और जिन्होंने क्लास में अटेंड किया उनको मेरे ख्याल से याद आ जाएगा। सो मैंने क्या किया, दो सेक्शन लिए, एक x1 डिस्टेंस पर और एक x2 डिस्टेंस पर, ठीक है? अब ना इसके बाद खाना वाना खाते हैं। सो दो पॉइंट्स लिए, एक x1 डिस्टेंस पर और एक x2 डिस्टेंस पर, और ये हमारी बाउंड्री लेयर फॉर्मेशन है। सो x1 डिस्टेंस की जो बाउंड्री लेयर थिकनेस होगी वो होगी डेल्टा 1, और x2 डिस्टेंस की जो बाउंड्री लेयर थिकनेस होगी वो होगी डेल्टा 2। अभी जरा सेक्शन 1 की बात करते हैं। सो मेरे ख्याल से सेक्शन 1 की वेलोसिटी प्रोफाइल दिखाई देगी ऐसे, और सेक्शन 2 की वेलोसिटी प्रोफाइल दिखाई देगी ऐसे, ठीक है ना? मैं सेक्शन 1 को व्हाइट कलर से और सेक्शन 2 को ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट करता हूं, और दोनों सेक्शन की वेलोसिटी प्रोफाइल एक ही फिगर पे बनाता हूं, ठीक है? दोनों सेक्शन की वेलोसिटी प्रोफाइल एक ही फिगर पे बनाता हूं, u वर्सेस y। अब देखो, ग्रीन की बात करते हैं पहले। तो ग्रीन के केस में y इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी कितना था? 0, और y इक्वल टू डेल्टा 2 पर वेलोसिटी कितना है? u नॉट। मगर उसके बाद सभी पॉइंट्स पे वेलोसिटी u नॉट है, ऐसे ही है ना? सेक्शन 2 के लिए अगर हम बात करें, जैसे जैसे y की वैल्यू बढ़ती है वेलोसिटी बढ़ती है, मगर y इक्वल टू डेल्टा 2 के बाद सभी पॉइंट्स पे वेलोसिटी सेम है। तो ये सेक्शन 2 का u वर्सेस y ग्राफ है। उसी तरह सेक्शन 1 का u वर्सेस y ग्राफ बनाते हैं। तो सेक्शन 1 के लिए y इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी कितनी है? 0, मगर y इक्वल टू डेल्टा 1 पे वेलोसिटी कितनी है? u नॉट, और उसके बाद सभी पॉइंट्स पे वेलोसिटी सेम है। तो आपका सेक्शन 1 का ग्राफ बन जाएगा। अब एक काम करते हैं, जब हम टाउ w लिखते हैं तो टाउ w इज म्यू du बाई dy एट y इक्वल टू 0। ये वाली स्लोप y इक्वल टू 0 के लिए स्लोप। So when you will talk of the slope, this is the slope for white color graph, this is the slope for green color graph. Obviously the slope for white color graph is more, so tau w1 is greater than tau w2। इससे हमें क्या पता लगता है? इससे हमें पता लगता है अगर x की वैल्यू कम हो तो वॉल शेयर स्ट्रेस ज्यादा होता है, x की वैल्यू कम हो तो वॉल शेयर स्ट्रेस ज्यादा होता है। गाइज, आई होप आप लोगों ने ये किया होगा। मैंने जल्दी जल्दी बताया, बस आपको मैं रिवाइज करा रहा था कि कैसे निकालते हैं। आई होप ये क्लियर है। अगर नहीं क्लियर है तो प्लीज डू आस्क मी, आई विल एक्सप्लेन इट। जल्दी से बता दीजिए। सो टाउ w की अगर बात करते हैं तो टाउ w इज मैक्सिमम एट द लीडिंग एज, और जैसे जैसे x की वैल्यू कम बढ़ती जाती है टाउ w की वैल्यू कम होती जाती है। तो इट इज मैक्सिमम एट द लीडिंग एज एंड मिनिमम एट द ट्रेलिंग एज। ऑल ऑफ यू, Is that clear? Is that clear to all of you? Is that clear to all of you? आपका बाउंड्री लेयर का तो कितना सारा हिस्सा यहीं रिवाइज हो रहा है। बाकी अभी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद कंटिन्यू करेंगे। ब्रेक के बाद क्या देखेंगे? ब्रेक के बाद देखेंगे बाउंड्री लेयर फॉर्मेशन इन पाइप्स ऑल्सो, वो भी देखेंगे, है ना? और एक बार हल्का सा हिंट लेंगे
कि फ्लूइड मैकेनिक्स में विस्कोसिटी के क्वेश्चंस कैसे आते हैं, बहुत सिविल मैकेनिकल सिमिलर क्वेश्चंस आते हैं। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोनों ब्रांचेस के लिए, टाइप ऑफ फ्लूइड, जिससे डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। और फिर सरफेस टेंशन चलेगा और सरफेस टेंशन खत्म हो जाएगा। सो मुझे लगता है कि जो नेक्स्ट 1 आवर में हमारा फ्लूइड प्रॉपर्टीज खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद 1.5 आवर या 1 आवर 45 मिनट्स फ्लूइड स्टैटिक्स में लगेगा। काइनेमेटिक्स छोटा है, डायनेमिक्स छोटा है, वो फटाफट हो जाएंगे। तो गाइस प्लीज डू लेट मी नो अगर कोई डाउट है तो, अगर कोई डाउट है यहां तक तो प्लीज डू लेट मी नो, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। मैंने पहले से ही बता रखा है, पहले से ही डेट डिसाइड की हुई है नेक्स्ट सेशंस की भी। अभी 1 घंटे बाद फिर से हम सेशन कंटिन्यू करेंगे और आज जो जो चीजें रह जाएंगी जिसमें डायमेंशनल एनालिसिस, टर्बाइंस और पंप्स और कंप्रेसिबल फ्लो, उनकी सेपरेट क्लासेस प्लान है। तो उन केसेस में हम क्लासेस भी करेंगे और रात को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इन टॉपिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी काफी सारे करा चुका हूं, थ्योरी भी काफी सारी डिस्कस कर चुका हूं, तो इनके लिए अभी सेपरेट सेशन नहीं कर रहा हूं, ठीक है। पहले उन चैप्टर्स को कवर अप करेंगे ढंग से। बाकी आज का एजेंडा यही है, ये जो पहले के 5-6 चैप्टर्स हैं इनको रिवाइज कर लें, जिनकी हम अच्छी खासी थ्योरी भी डिस्कस कर चुके हैं यूट्यूब पे। चलो ठीक है, फिर 1 घंटे का ब्रेक ले लो और ब्रेक के बाद खाना वाना खा लो। 4 बजे हम कंटिन्यू करते हैं, 4 बजे हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। मैंने अपनी अटेंडेंस भी मार्क नहीं कर रखी है मेरी, तो क्या कहते हैं, पहले वो भी मार्क करने का आ गया है, मैसेज आ गया है, ठीक है। चलो फिर कर लो, खाना वाना खा लो, 1 घंटे बाद मिलते हैं, एग्जैक्टली 4 बजे मिलते हैं। भाविन बेटा आई होप थोड़ा सा रिवीजन हो रहा है, थोड़ा सा पता लग रहा है, और कोई भी डाउट होगा तो तुम मेरे से पूछ लेना। जो लोग भी हैं, ऋषभ, अनीश वगैरह, आप सब जानते ही हैं। अगर कोई न्यू स्टूडेंट भी है जो कोई डाउट पूछना चाहता है तो वो जरूर पूछ सकते हैं, ठीक है। कोई हिचकिचाने वाली बात नहीं है, टेंशन नहीं लेना, ठीक है। और मान लो अगर मेरे से ना क्लियर हो तो अपने टीचर से पूछ लेना, कोई ना कोई तो बताएगा ही आंसर। चलो फिर ठीक है, थैंक यू, सी यू इन 1 आवर, थैंक यू।